you are using for recording your session. So, welcome to Bombay Flying Club. The first module is stakeholders and their laws, drone rules 2021. So, before I begin the first session, I would like to hear from you guys what is your idea about the drone rules 2020? What is your idea about the drone industry in India and abroad or globally? Where do you see this already? I mean, just want a small one or two points from each of you to understand what Sir, you're not audible, sir. is your Your understanding about it. Your voice Yeah. is breaking, sir. Hello. Now, can you hear me now? Now it's The Bombay Flying Club yeah. stakeholders Yes. and their. Can you hear me? Bombay Flying Yes. Club. Can you hear me? The Bombay Flying Club yes, 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 stakeholders and yes, their laws. Rules yes. 2021. Sometimes it may be due to some internet issue. I don't know. Probably. Okay. I'm just looking at my router. My router is showing me a good green strength, so that's why uh, I don't know. Might be somewhere it might be a fluctuation. So Bombay Flying Club stakeholders and their laws, Road Rules 2021. I was asking from your perspective, what is your understanding on drone rules 2021? Do you have any idea about it? Do you have any background or have you read anything about it? I just want a small one or two inputs from your end so that I can plan my session accordingly so that whatever doubts are there or whatever clarity you required more to be given accordingly I can give you. Yes, over to you, Parth, Kundan. Like I To be know, honest, yeah. Kundan, you can start. Like you can. no. You go ahead. Then, Okay. So for me, like I know the mechanism of the drone. I know how to take. Like I can guide if there is a drone pilot with me, which I always do. Because whenever I be on shoots where we use drones, for example, in warehouse or in a construction site or something like that. So I know how to take shots. I guide that drone pilot to take shots like this, or take a wide shot, or take a pan in, pan out. But Okay. rules wise, also I know a few rules that there are three different zones like green, yellow, and red, which are mostly red is where the airports is there, and for example military base, and yeah, and in yellow which you can fly over a height, and in green you Okay. can fly as much like you can. Okay. Okay. Yeah, the basic rules that I know this one. Right. So you have a overview understanding of the drone rules, but I still don't want. know how to like fly Uh, and like a proper have you flown a drone, Parth, anytime yourself? no. I tried once. Yeah, like I was in a shoot, so I just wanted Which to drones try. are you using? You people are using? DJI DJI Air 3 Yes. 3S. Yeah, Okay. Okay. That's a good drone actually. yeah. So is it recently acquired drone or it is the old drone? Uh, so even I don't know, because we used to rent the drone and the Okay. drone pilot. We don't have our own Yeah, drone. okay. 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 So Got after it. this, we are planning to buy our own drone. Right. 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 Yeah. Great. 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 Yeah, Kundan, your inputs. to be honest, I don't know anything. I want to start from Okay. the scratch. No problem. No problem. So nothing worry about it. Whether you know or you don't know, I will make sure by end of the fifth day you are completely well versed with the rules 2021. Okay, so everything and anything related to drone industry, first thing you need to know is your drone rules 2021. Okay, so welcome to the first module, stakeholders and their laws, drone rules 2021. So before we start with the drone rules, let's understand the overview of the aviation industry. Okay, how the aviation industry functions or basics of aviation industries, the international rules, regulations, standards, and practice. How and from where does all these things comes. Okay, so if you see the first slide yesterday, if you see in the group, I have specifically shared you one particular image. Okay, every group I form, I share that first image. If you see that first image, is all about uh, the first flight on the Earth, that is on 17 December 1903.
okay, by Wright brothers. Okay, so Wright brothers actually flew the first aircraft heavier than aircraft, heavier than air. Okay, it was heavier than aircraft, a powered aircraft. Okay, so these are whatever the points, wherever the words I am emphasizing, these are the important words, and you will see them in your documents also. Okay, I will show you those words also. Why I am emphasizing, why I am putting a lot of weightage on those words. So you have to capture those words, you have to remember those words. Okay, so it is heavier than air powered aircraft was flown on 17 December 1903 at Kitty Hawk by Wright brothers. So that is the first flight by humans. So humans always dreamed of flying the aeroplanes. I mean, flying like a bird, in fact. Okay, though we are not capable of doing it, but then we always have that eager. Okay, we dreamed about flying ourselves in the sky. Okay, and that's how the birth of aeroplane has come up. Before that, people have attempted gliders, balloons, all that things are there. But on 1903, the first flight was happened and successfully. You know, the first flight it was only for 12 seconds. Okay, just fly for 12 seconds. 12 seconds is a very small time, but that is gave us the concept, gave us the confidence that yes, we can fly. Okay, and subsequently on that day, Wright brothers almost made multiple flights, and their last flight was almost for 120 minutes. 120 seconds. So 120 seconds is almost for 2 minutes. So their aeroplane fly for almost 2 minutes successfully, and that's where they broke the record, and they were the first person to fly the aeroplane. Okay, so now as you see, people understood that we can build aeroplanes, we can make them fly, and all the things. Suddenly, the entire world started building the aeroplanes. People were a lot of inventors, scientists who were all working on this segment, started building aeroplanes and started flying and all the things. And by over the progress, by 1914 to 1919, World War One was happening, and World War One was more about trenches and rifles. Okay, so that end of the World War One, the military people thought that the aeroplanes could be used in the war also. So basically initially the aeroplanes were used for reconnaissance missions. Like they used to fly the aeroplane over the enemy territory using the camera, because that time even the aeroplanes as well as cameras were not so developed. They were big and bulky. So, but still, they started thinking of utilizing this technology, these inventions for different purposes. And they used to fly the aeroplanes with the camera and take the photographs of the enemy territory. And that's how the aeroplanes and the camera was utilized for this purpose. Over the period of next 20 years after the World War One, most of the development happened in the aeroplane or the aviation segment, as well as the drone segment. The drones were almost there for almost more than 100 years. Okay, initially the remotely piloted aircraft were used by military people only, though there was no utilization or no segment by commercial or the civilian people and all that. So if you see the first 30 years of 19th century was more about the flying the aeroplane, flying the aircraft, and they were mostly flown by either government bodies or by rich people or by princely states. Okay, those who can really afford such kind of infrastructure, such kind of big mobility device kind of. Okay, and that's where actually, and by the time I think 1939, World War II also started, and during the last 30 years there was a lot of development has happened in the aircraft and all those things. So World War II was more about tanks and the aircrafts. Okay, so World War One was about the rifles and the trenches. Okay, so now it was difficult to cross the trenches in World War One. That's where by end of World War One, the tanks were developed. Okay, if you understand the history and how the technology development has happened, so tanks were developed because tank can easily cross. They were having the belt on which they could cross the trenches. So because the jeeps which were used, or the other smaller devices, smaller vehicles which were used by military at that point in time, they cannot cross the trenches, and that's where the tanks were developed. Okay, so tanks got developed, and then we saw the evolvement of the aircraft also. So same time, tanks and the aircrafts were developed, and by the time 1939 the World War II started,
World War II is all about tanks and the aircraft. Okay, so if you see the documentaries which are there online available, you can see extensively use of tanks and aircraft in World War II, and that's where you see a lot of aircrafts were developed, a lot of development has happened, and especially during the wartime, the technology development becomes very fast paced, and utilization and testing also happens at that point in time. Like you recently, you might have seen during the war with the Pakistan for last 5-10 days in month of May, has evolved the drone industry also enormously because we tested a lot of our drones at that point in time, and that's where we see even other war which is happening across the globe, like Russia-Ukraine war, which is not fought between the people or not fought between the tanks, but it is more of now the war of drones. Okay, so we see the Ukrainians are building. I mean, Ukraine was nothing nowhere in the drone industry, but now they are geared up so enormously in last 2 years. They have developed such kind of a drones. I mean, they are just using drones now for their safeguarding their borders and fighting the Russians. Similarly, Russians also have stopped using the heavy artillery and all the things. They are utilizing drones. So it is completely now become a drone warfare. Similarly, the war between Israel and the Palestinian, what is happening there also you have seen a lot of drones being used now. So drones has been evolved and becoming the forefront of the warfare now. Okay, and that's why you have seen the Indian government has also heavily invested this year in the budget also for the military as well as for the drone industry. Okay, so with respect to that, as we see in 1934 onwards, those last 10 years was enormous in development of aviation. So, and as the war was also going on, all the developed nations thought that we need to have some kind of a standard international rules and regulation. There has to be some body has to be there where all the countries should follow that international rules and regulations, and that's where on 7th December 1944 at Chicago Convention, there was a treaty signed and a body was formed. Okay, so treaty was basically to achieve a uniformity agreement between the nations in technical, economic, legal, operational matter with respect to civil aviation. A treaty of establishment of international organization was signed by 36 contracting states. 36 contracting states means 36 nations came together and they formed an organization called as International Civil Aviation Organization, which we called as ICAO. Okay, currently it is headquartered at Montreal, Canada. So the head office of the International Civil Aviation Organization (ICAO) is currently at Canada, Montreal. Okay, initially it was a treaty which was signed by 36 countries. Now there are almost more than 100 plus countries. Okay, so almost everybody from the globe are part of this treaty and part of this organization with respect to the civil aviation. Okay, so simultaneously the ICAO thought about that since we have a similar treaty of civil aviation, all the SOPs, all the documents, all the rules and regulations come from the International Civil Aviation Organization or ICAO. Similarly, ICAO thought that by 2015, as drones were getting utilized, commercialized, people are using it for hobby, people are using, civilian people are started using the drones and all the things. They thought that we need to have some guidelines, some rules, some regulations, some standards, some practice to be developed with respect to RPAS. RPAS is nothing but remotely piloted aircraft system. Okay, so there were three categories which they thought was very important. One is international instrument flying operations, global interoperability with regards to certificate of airworthiness, operator certificate, and remote pilot license. And the third important aspect is national authority focus. That means framework for domestic operations.
So these are the three main focus areas of ICAO with respect to ARPAs or drone operations. Okay, first is international instrument flying operations. That means, like for example, I will give you example from the civil aviation perspective. You are flying a aircraft from Mumbai to, let's say, Dubai. If you are flying from Mumbai to Dubai, your aircraft may be belonging someone from operator from India. Okay, let's assume that it is an Indian Airlines aircraft. So that aircraft needs to be airworthiness. The Air India should have an operator certificate. The pilots who are flying, they should be having a pilot license. So all these rules and regulations are there. That global interoperability has to be there. Okay. Plus, since these aircraft are flying, it's carrying passengers and all other things. It needs to not only be flown by humans, but it's also have instrumental flying operation capabilities. That means it should be remotely capable. It should be capable of flying on its own, capable of flying with guiding the aircraft by different instruments. Okay. Plus, even you are flying this aircraft within your country. Like I'm flying from Mumbai to Surat. I'm flying from Mumbai to let's say Ahmedabad or Delhi, Kolkata, Chennai, Hyderabad, any domestic locations. I need to have certain rules and regulations for my domestic operations. So similarly for drone operations also, you need to have international instrument flying rules and regulations. Similarly, certificate of airworthiness. Your drone, you might develop a drone in India, but whether that drone is capable of airworthiness from a safety security perspective or not, there has to be some body to certify your drone is capable of all safety and security guidelines. Similarly, the person who is developing their drones or they are selling the drones, they are having an operator certificates. Okay, that means they should be authorized for manufacturing those drones. Third, the people who are flying that drones, they should be a certified pilots. So their license has to be valid. So right now, if you see globally, none of the countries' license are applicable for international flying. That means if you become a drone pilot in India, your license is only as of now valid in India. Similarly, if you become a drone pilot in US, your license is only valid in US. If you come to Europe, you have to acquire a separate license. If you come to India, you have to apply for a separate license. If you go to from India to let's say another location like South Africa or maybe Europe or maybe US, Canada, any other location, you have to acquire their licenses. This is not the same case for your aviation or civil aviation. Once you become a pilot in India, you are pilot across the globe. Or you become a pilot in US, you become a pilot across the globe. So you don't require again to recertify yourself as a pilot. Yes, Kundan, you have a question? Yes, there is no international license like permit that we As can, which of we now, yes, as use. of now that rule is not come up. Okay, the ICAO is working on that international interoperability of your license, which will come in Okay, next couple of I would say couple of months, probably by end of this year or probably early next year. This regulation is going to come from ICAO. Okay, okay, right now uh, only the license is valid with the current domestic operations. So now, right now, okay, whatever sir. the license you will get, you will become only certified pilot for flying pan India. Okay, so Okay, for example, if you want to fly in Europe, you may have to give their test and acquire a license for European countries. You might have to give a okay, test for US depending upon type of license. Because see, for example, let's say I give example, let's say a British person want to come India and acquire a license, he cannot acquire because he is not a citizen of India. So he will not get license in India. Similarly, you will not get license in US because you are exactly. not citizen. Because currently these licenses are only applicable to respective citizen of the country. Okay, Hmm. so that Okay, rules is not been set up by ICAO as of now, but in near future we will have that interoperability where you will be authorized to fly maybe a small test or maybe a small flying session you need to do and acquire a license for a particular location will come. okay, We do not know how the rule will be set up by ICAO, but that is going to come. For example, yeah, if you see the aircraft, you become a pilot, aircraft pilot in India. That doesn't mean that you can fly a Boeing airplane.
that doesn't mean that you can fly Airbus. Even though you are a certified pilot, you still need to take a training on those particular aircrafts also. Then only you are able to fly the Boeing aircraft or maybe any aircraft. Because when you become a pilot, you are trained on a small training aircraft like Cessna or Bombardier, all those small aircraft which are being used for training. You are not actually trained on a bigger aircraft. You have to get them trained separately to fly those aircraft also. Like sometimes if you join, let's say you join Cathay Pacific or you join US Airlines, so those airlines, once you are employed as a pilot, they will send you for 3 months training on those aircraft which they are being using. Probably it could be Airbus, it could be Boeing, or maybe any Michael 747. Douglas or all those, okay? Or McDonald's, or those kind of aircrafts which are being used in US. Okay? So depending upon the aircraft, they will train you. Similarly, from drone perspective, also currently your license is only applicable for domestic operations. Okay, your Okay. drone license is valid pan India, across pan India. That means right from north to south, east to west in India, you can utilize. If you go to Europe, you may have in Europe there is I think there is some fee of $10, $10 or $15 fees is there, and you have to give a test, and they give you a temporary license, which is valid for a month or a 3 months period. Okay, 90 days Okay. something. So you can acquire that kind of license if you are going there. Like for some people, go from cinematographers and all those people who go and they wanted to fly their drones, or some people who go to South Africa also, or Dubai location also, where they give you a temporary license. These are not full-fledged or Okay. permanent license, but they are a temporary license. Whereas our license, what we get in India, is valid for 10 years. Okay, so your license, what you get by end of this course, is validity is for 10 years. Yes, Parth? Also, if we go as a tourist, for example, I have a drone and I have gone to Dubai, Right. and if I want to fly a drone in some event or some area, so for that also we have to give the test and we Yes, have to you pay have the to take amount. approval on that. You have to take approval. Okay. Okay. Okay, so you can't fly drone like that anywhere. Like similarly in India, you can't fly drone anywhere. Similarly, Dubai also have their own rules and regulations for it. Okay. Similarly, any country, wherever you go to Wherever, right. Switzerland, you go to France, you go to Germany, you go to UK, you go to New York, any location you go, you have to follow the rule of land. As simple as that. You have to check what is their rules and regulations are. Like more or less, the rules and regulations are almost similar, Same, but right. there would be plus minus of some amendment Right, in the right. rules and regulations. Okay, in this Okay. module, we'll see the difference in those also. Okay. Okay. So clear on the international rules, regulations, standards, and practices. So it started in 2015. The three focus areas was international instrument flying operations, global interoperability with respect to certificate of airworthiness, operator certificate, and remote pilot license. And the lastly, the national authority focus framework for domestic operations. Okay. So that's how the ICAO functions. So ICAO, now the drone is also under the ICAO rules and regulations, and we'll see a lot of new rules and the regulations coming from ICAO, which will be adopted by local bodies. Like for us, the local body is DGCA, Director General of Civil Aviation, headed by Ministry of Civil Aviation. Okay, what we call as MOCA. MOCA is MOCA, Ministry of Civil Aviation, which comes under the DGCA. So DGCA is under the Ministry of Civil Aviation. Okay, so now if you see the international rules, regulations, standards, and practice, RPAS, the remote piloted aircraft system panel, was formed from the Aircraft Navigation Commission in 2015 as a single point for all the UAS, that is unmanned aircraft system related to matter in ICAO. So Sorry to ICAO, interrupt. Can you repeat MOCA, like Ministry of Civil Aviation. Civil Aviation? Okay, thank you. Okay. So basically, single focal point for all US related matter in ICAO. So RPAS consisted the working group members from airworthiness, air traffic management, detect and avoid system, human performance, pilot licensing, RPAS operations, safety management, communication, and C2 leads. Okay, so all the members, so all these people who are veteran into this kind of segment like airworthiness, air traffic management,
So they have taken couple of peoples from these teams, so, and they formed a separate team for Arbas. And then this team actually sat and developed the first set of rules and regulations framework for all the countries to follow. So if you see the rules and regulations what we are following right now, it is being adopted from the ICAO documents. Okay. So ICAO 2015 May they released the document which was adopted initially by US, Canada, European countries, Singapore, Australia, New Zealand, all these developed countries, they have adopted these rules and started. We were little bit late at that point in time since there was not much thing happening on the drone segment. Our drone segment started actually somewhere around 2018, 2019. So that is the time when the government of India or Ministry of Civil Aviation thought that we have some kind of Sir, voice is breaking. that is where the first guidelines was set up. Can you hear me now? Yeah, now I can hear you. Sometimes in between happen, but I keep on repeating. Don't worry about it. So the Yeah. civil aviation requirement, AIP and NOTAM. So before we begin with the drone, let's understand the civil aviation with respect to India. So the first act for the aircraft was formed in 1934. That is the time when we were already under the British rule. Okay, though it was under the British rule, there were a lot of aircrafts were there in India. Lot of princely states, richly people, okay, they were possessing the aircraft and they were flying the aircraft from one location to another location within the India, and that's where British thought that we need to have some kind of a act to be there so that people can possess, manufacture, use, operate, sell, import, export of aircraft within the India. Like for example, some princely state wanted to purchase the aircraft. They have to purchase the aircraft from either US or from UK. Okay, because at that point in time, UK, France, and US they were actually manufacturing the aircraft. So there was nobody manufacturing the aircraft in India. But that import, export, and all the things needs to be happen. If you want to possess, you need to use, you need to operate, you need to sell, you need to manufacture some components of the aircraft. All that was governed by the Aircraft Act 1934. So that is the first act of the civil aviation in India. Till date, we are following this rule. Okay, till date, this rule is applicable to us. The Aircraft Act 1934. Subsequently, the government thought there needs to be some amendment has to be done into this act. So in 1937 there was a rule. Okay, it is called Aircraft Rules 1937. Okay, under the Aircraft Act 1934, which applies to and to person on aircraft register in India, aircraft operators in India, as well as aircrafts for time being in and over Indian airspace. Okay, so these two important lines are very important. One is Aircraft Act 1934. So whenever we say Aircraft Act, that means we are referring to 1934 document or the act which was passed by the British government at that point in time. Okay, whereas when we talk about rules or aircraft rules, we are talking about the document of 1937 which was signed under the Aircraft Act 1934, applied to and to person on aircraft registered in India, aircraft operators in India, as well as aircraft for time being in and over Indian airspace. That means even the aircraft may be belonging to UK government, aircraft belonging to Germany, aircraft belonging to US, France, or any third party countries. If they are flying over the Indian airspace, they have to follow the aircraft rule 1937 till the time they are flying over the Indian airspace. And this rule is applicable to everybody. Like for example, if I am flying my aircraft which belongs to India, belongs to Indian operator, flown by Indian air pilots, if I am flying over Dubai, I have to follow their rules and regulations because I am flying over their airspace. So there might be some rules with respect to that
location. So we need to, as a pilot, you are supposed to know what is the rules and regulations, and you need to follow. So similar things are applicable for the drones also. We'll see in the drone rules 2020. Okay, there are some documents which have been released by aviation industry, by ministry also, which is called as CAR. CAR is nothing but civil aviation requirement. For example, if you see aircraft rules 1937 में उन्होंने rule बनाया था. But over the period of time, we will find that okay, this rule or this document doesn't have certain guidelines or doesn't have clarity on certain aspects. Like for example, in 2003, there was a document which talks about carrying the dangerous goods on the aircraft. Till that time, we were not aware what is applicable or what are the goods we can carry on the aircraft and what is not we can carry on the aircraft. Can you tell me what are the things we can carry and what are the things we cannot carry on the aircraft? Can you carry what are the things we cannot carry? You cannot. I cannot. We cannot hear you, sir. Can you repeat again Exactly. I am the saying whole when, sentence? Yeah. when we are flying the aircraft, when we are flying in a domestic or international aeroplane, what are the things we cannot carry in our luggage? Any item. Do you know anything about like that? Flammable, like you can't carry a lighter, Yeah. Correct. Flammable. any Batteries, weapon or anything like. Uh, electronics. right. Yeah, Any liquid substances Yeah. exactly. or maybe any danger. So these all come under even like stapler, knives, Nail scissors, cutter nail and cutters, Hazardous. yes, Yeah, hazardous, all hazardous, yeah, even some hazardous. kind of chemicals, some kind of yeah. the radioactive elements also. Flammable So, and yeah, there is a document which talks about dangerous goods, okay, which needs special permission. It's not that you cannot carry or you cannot transfer them, but then you need to take approval. You need to take permission. You can't simply carry. Like how we carry our clothes, how we carry our laptop, how we carry our mobiles. Some regular items we carry, right, where we don't require separate approvals or permissions. But there are some goods which are defined as a dangerous goods, which need special approvals or maybe not be allowed also to carry. Okay, so that document is called as CAR, which was released in 2003 in India. So that is amendments. Similarly, in 2018, there was a CAR which was circulated for drone rules. Okay, so there was a document which was released in 2018-2019 period, uh, which was very complicated document. People, were lot of confused, lot of ambiguity was there in that document. And that car which was released in 2018 under the aircraft rules 1937 provision rule 15A and rule 133A of aircraft rules 1937. That car was very complicated. It was having almost 25 forms to be filled. It was having what we see fees of almost from 1,000 rupees to 5,000 to 25,000 rupees. The penalty was almost like more than a lakh rupees to 5 lakh rupees of penalty was there in that document. So it was almost a document which talks about the drone rules in India, but there were a lot of restrictions and there were a lot of challenges in understanding those rules where the people from the country, people from the civil aviation club, people from the aero modeling, people from the drone building community wrote back to DGCA that there is lot of clarity, lot of easiness is required to be there in these rules. Okay, and that's where that car of 2018 was scrapped. Okay, and DGCA invited people from various segments. People were invited from civil aviation, people were invited from the aviation club, people were invited from educational institutions like IITs, NITs, people were invited from builders group and innovator groups kind of things, those who are actually into building the aircrafts, building the drones and all this. So there were people almost of I would say 30 plus people were there in that team, and they were actually asked and helped participate in discussion along with the DGCA in forming the drone rules for the country. Okay,
So Drone Rules 2021 was circulated in July 2021. So in July 2021, the first draft rules were circulated among these 30 people to review and provide the final suggestions, final amendment, so that the government of India can circulate these rules to everyone. So next 1 month, people sat on that document. They discussed. They have a brainstorming sessions. They have seminars, workshops, and all that things were happening. And within the 1 month, the entire document was finalized and released on 25th of August 2021. That was the first document we follow, which talks about like, Voice is breaking, sir. the drone rules, which was released on 20th of August in 2021, which talks about type certification by QCI, talks about drone registration, talks about drone pilot training by DGCA approved schools, then talks about getting drone pilot license, insurance, then talking about the drone zones, different zones, green zone, yellow zone, red zone, then there are limitations around those zones. All that things are covered under the Drone Rules 2020. So that is the first document and the document which we follows when we talk about Drone Rules 2020. Okay. So before I deep dive into Drone Rules 2021, there are two documents which we need to understand from the civil aviation is AIP. AIP is nothing but Airport or Aeronautical Information Publication. Okay, AIP is nothing but Aeronautical Information Publication. Is a prime document. It's a document released by Ministry of Civil Aviation under DGCA. Okay, so DGCA will finally release this document under Ministry of Civil Aviation. This document is published by a country, okay, which talks about a new setup coming up in the country. Like for example, I am setting up a new five airports in India. Okay, or maybe next 5 years I am going to set up another 50 plus airports in India. New facility which is I am going to set up, new technology, new rules, new regulations, or new infrastructure setup, whatever I am going to come up will be there in my AIP document. But for example, like I am upgrading a terminal, let's say in Surat. So that small change, what I am going to do, will be released in a document called NOTAM. NOTAM is nothing but notice to airmen. Okay, this is transmitted by means of telecommunication containing information concerning the establishment condition or change in aeronautical facility, service procedure, or hazard or timely knowledge of which is essential for personal concern with the flight operation. It is information of temporary validity, usually for 1 month. For example, like अभी Ahmedabad airport पे crash हुआ था, right? So that point in time, the Ahmedabad airport was closed for almost more than 10 months. 10 days. Okay, it was closed for 10 days, so there was no operations happening at the Ahmedabad airport. So that information was available in NOTAM because this is a temporary validity, temporary information, temporary change in the facility. Okay. So these temporary info, like for example, कभी-कभी weather के वजह से मेरा airport functional नहीं रहता है. Might be I'm upgrading the facility, like I'm upgrading the radar services at Mumbai airport, upgrading the instrumental services at Surat airport, or maybe Hyderabad airport, any airport across India. If I am making any changes, upgrading, downgrading, not available, faulty. Like for example, आपको पता होगा Terminal 1 at the Delhi airport was not functional for a couple of months because it was under renovation last year. You might have heard there was only Indigo flights were flying from the Terminal 1. Rest of the no flights were operating from the Terminal 1. Only Terminal 2 and Terminal 3 were used in domestic and international operations. Terminal 1 was only allowed for Indigo. Rest of all other service providers, they were not functioning for Terminal 1 because it was under renovation. So that point in time, all this information will be available in NOTAM. Whereas permanent nature of information will be available in
AIP document, which is AIP, Aeronautical Information Publication. publication. NOTA means Notice to Airmen. Okay. So there are three important documents. I said car is Civil Aviation Civil Requirement. aviation requirement. AIP is Aeronautical Information Publication, and NOTA Publication. is Notice to Temporary. okay, which is temporary object. Yeah. Okay, then coming back to Drone Rules 2021, which was released on 25th August 2021. So अभी ये month के 25 अगस्त को will be 4 years for Drone Rules 2021. Okay, we'll be completing 4 years of rules. What is this rules? It talks about type certification. Means like for example, tomorrow Kundan wanted to form a company and he wants to build a drone. Okay, so if you want to build a drone, you have to build a drone and you have to get it certified for airworthiness, for safety, security, all that aspect certified by a body called yeah, So when you repeat that again, your voice is gone. so I am saying Yeah. if you want to manufacture the drone, you need to get it certified by a body called QCI, Quality Council of India. Okay, so this company or this organization certifies your drone. Okay, they actually they give you the manufacturing authority to use. Okay, then only you can mass produce this drone. You know, you can make 100 drones, 1000 drones, whatever number of drones. I mean, you are manufacturer of drones and your drones are legally allowed to be sellable in India or across globe also. Okay. As of now, restrict yourself to only Indian segment because for selling across globe market is a different rules and regulations. But from an India perspective, if you want to manufacture and sell that drone in India, you need to have a type certification for your drone. As of now, there are only 110 plus drones certified for manufacturing and selling in India. Okay, which is been certified by QCI body. Similarly, the drones which you are flying in India, they need to be registered on a portal. Okay, so there is a portal called Digital Sky Platform on which you need to रजिस्टर योर ड्रोन. जैसे आपका कार या बाइक का रजिस्ट्रेशन होता है आरटीओ में, लिटरली डीजीसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ड्रोन का. तो ड्रोन विल हैव इट्स ओन नंबर प्लेट which we call as UIN number. Okay, that is your drone registration. Similarly, you being a pilot, you need to become a pilot, right? So आपको drone license मिलना चाहिए. Some body has to be trained, so some body has to be authorized for training. कोई भी उठ के ट्रेनिंग नहीं दे सकता, right? Nobody can come just and say, okay, I will train you and you become a pilot. You can't. Some body has to follow certain rules, regulations, set up the infrastructure, set up the training mechanism, training modules, training documents, training methodology. They should have a certified instructors. You know, so all that things needs to be. So you need to have a RPTO or drone training school has to be there. Drone pilot license needs to be trained and certified by those organizations. So all that is being defined in Drone Rules 2021. Simultaneously, since you are flying the drones, they are prone for crash, they are prone for some kind of a damage, they can cause a damage, injury to human life also. So you need to have a insurance mechanism for this also, right? And you need to be covered under insurance also. Plus, you need to have certain rules and regulations where you can fly, where you cannot fly the drone. So all these, aspects are defined in Drone Rules 2021, which is 55 rules. There are total 55 rules divided in 12 segments. How much? In Drone Rules is of 12 segments and 55 rules. Okay. So we'll start with, you want to take a 10 minutes break so that we can start with the Drone Rules 2021. Right? No, it's fine. You can continue. No, it's okay, sir. Yeah. Okay. If you want to take break, if you don't mind. Yeah, let's do a couple If you of want to have some slides. water, like. Yeah, no, we'll do a couple of slides and then we'll take a break. Okay, another 10 minutes we'll continue and then Okay, sir. okay.
So if you see Okay. Drone Rules 2021, which was released on 25th of August 2021, okay, it talks about classification and categorization of drones. Okay, so your drones are categorized, okay, or classified, two different aspects. Okay, they are categorized as rotorcraft, they are categorized as aeroplane, they are categorized as hybrid. So there are only three categories of drones. Okay, if somebody asks you what are the three categories of drones, you should say there are only three categories of drones, namely rotorcraft, aeroplane, and hybrid. So if you see the first line, it talks about UAS. Okay, understand this terminology. It is saying unmanned aircraft system. That means we are talking a drone which is unmanned aircraft system. That means there is no person inside that aircraft. Okay, any aircraft which is unmanned, there is no person inside that aircraft. It is called as unmanned aircraft system or UAS, or also called as drones. Okay, so these drones are categorized as rotorcraft, categorized as aeroplane, categorized as hybrid. Okay, rotorcraft means where you have propellers. Four propellers are there, two propellers are there, three propellers are there, single propeller is there also. You know, even any propeller is there, it is a rotorcraft. Okay, so rotorcraft is a type of a drone or a category of a drone. Similarly, the aeroplane is also a drone. So when I'm talking about here as an aeroplane in the drone category means without pilot. It is unmanned. Okay, so like small aeroplanes which have been flown by aero modeling. When you fly a aero modeling aircraft, that is nothing but it is a drone. It comes under the drone category, aeroplane. Okay. Similarly, you must have seen bigger aeroplane drones like Predator drones or the drones which were flown during the war with Pakistan recently. Okay, or even in Israel or even in the Ukraine-Russian war also those drones which have been flown. They could be a rotorcraft or they could be aeroplane also. Okay, which are piloted remotely. Okay, it is unmanned aircraft system. That's why we call it as RPAS, remotely piloted aircraft system. Okay, that's why rotorcraft aeroplane. So don't get confused by the word aeroplane. When we're talking a word aeroplane with respect to the drone means what? It is a remotely piloted, unmanned it is. There is no human being on board. Okay, so that is the aeroplane what we are talking. Now the combination of rotorcraft and aeroplane is called as hybrid. So the best of the rotorcraft and the best of the aeroplane is combined into a different type of category called hybrid. Okay, hybrid is nothing. That means it is can fly like a rotorcraft as well as it can fly like a aeroplane also. Okay, so it can transition from rotorcraft to aeroplane and aeroplane to rotorcraft also. Rotated That one. is called as hybrid. The different name for hybrid is VTOL, VTOL, vertical takeoff landing. Okay, so hybrid is also called as VTOL, vertical takeoff landing. So in that case, even your rotorcraft is also VTOL. Okay, but rotorcraft is called only rotorcraft because it cannot transition from rotorcraft to aeroplane. That's why it is only called as rotorcraft because it will function only as a rotorcraft. Okay, though it functions like a VTOL, but it is not a full-fledged VTOL. Okay, or not a full-fledged hybrid. Why we call it as hybrid? Because it can transition from rotorcraft to aeroplane and aeroplane to rotorcraft. That's why we call it as a hybrid. Okay, whereas aeroplane also can fly like an aeroplane. It is an unmanned aircraft, but it cannot take off vertically. It needs a runway. Okay, if you see an aeroplane kind of drones, they need a runway or they need some mechanism to fly in the air. Okay, it may be a catapult mechanism or it may be thrown by hand in the air. You know, some mechanism needs to be there to fly that aeroplane device. Okay, so that's are the three categories of
UAS, that is unmanned aircraft system, that is rotorcraft, aeroplane, hybrid. Any questions on the category? Are we clear on the category Yeah. of the drones? So Yes. anybody asks you the question, what are the three categories? We should say there are three categories in unmanned aircraft system: rotorcraft, aeroplane, Aeroplane and hybrid. European hybrid. okay. Now let's see the classification. Okay, there are five classifications of unmanned aircraft system in India. This classification is only applicable with respect to India. Okay, so there are five classifications: nano, micro, small, medium, and large. You might have heard on the first slide this word small, right? Small, rotorcraft, and violas. So this is the small word come from your classification. Rotorcraft come from categorization. That means you are going to be trained on small class of drone, rotorcraft category, and type of VLOS. That means VLOS stands for visual line of sight. That means you are going to see the drone yourself and flying it. You are not going to fly drone if you are not able to see it. Okay, that condition is called as Virtual BVLOS, line. beyond visual line of sight. As of now, Indian government has not released the rule for BVLOS. Current rule is only applicable for the drone rules 2021. It's only applicable for BLOS condition. That's why all the license which have been released, all the pilots who have been trained, all the pilot who have the license, they have only BLOS condition rules applicable. Okay, currently BPLR's condition is not released. The rules and regulations are not been released by Indian government. Currently अगर आपको पूछा गया, कोई भी आपको पूछता है after you become a certified pilot, you should tell them that I am certified for small class, rotorcraft, and BLOS condition. Okay, that is what you should know. You should know about your license applicable. जैसे हमारा मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर whether we are certified for light motor vehicle, heavy motor vehicle, multi axle, four wheeler, two wheeler, जैसे कैटेगरी है ना. Similarly, drone में भी कैटेगरी और classifications है. Okay, so you are certified for rotorcraft, you are getting certified for small class. Okay, lot of time people make mistake by saying word small category, मीडियम कैटेगरी, लार्ज कैटेगरी. अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो सामने वाला आपको will think that you do not know the proper terminology. So you should never say small category. It is small class, medium class, class. Okay, so these are very important terminology to understand. So we have three categories: rotorcraft, aeroplane, and hybrid. We have Hybrid. types, that is nano, micro, small, medium, and large. Now, how do we define this class? These are defined based on weight. The weight is defined as MTOW, maximum takeoff weight. MTOW, maximum takeoff weight. जो भी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है आपका ड्रोन का, वो वेट के बेसिस पे आपका ड्रोन का क्लासिफिकेशन होगा. The drone will be classified based on your maximum takeoff weight. So nano. Can you repeat? Sir, can you repeat the? Yeah, I'm repeating. Like, I'm repeating. yeah. I'm repeating. Just listen. Oh. Maximum takeoff weight of a drone will be defining its class. Now, if you see nano, maximum takeoff weight of that drone limit is up to 250 grams. अगर आपका ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज up to 250 grams, less than or up to 250 grams, it is classified as nano drone. Okay, if your drone maximum takeoff weight lies between about 250 grams and up to 2 kg, 250 up to 2 kg, then that drone is classified as micro. Okay, don't worry, there will be a screenshots will be shared to you about this. Don't worry. Okay,
Okay. Listen to me what I am trying to say. Okay. So from 250 grams to 2 kg, it is micro. From 2 kg to 150 kg, it is, sorry, 2 kg to 25 kg, it is small class. From 25 kg to 150 kg, it is medium class. And above 150 kg, it is large. Okay, so I will repeat again. 250 grams, less than 250 grams is nano. 250 grams to 2 kg is micro. From Micro. 2 kg to 25 kg, it is Small. small. From 2 kg, sorry, from 25 kg to 150 kg is medium. Medium. And from 150 kg above is large. Clear? Okay. Are we clear Yes. on the classification based on MTOW, that is maximum takeoff weight? That Takeoff means weight. अगर मेरा drone, for example, our drone is agriculture drone, उसका weight है 24.9, 24 kg उसका weight है, 24.900 grams. तो वो कौन सा क्लास में आ गया? Small. Small, right? अगर वो 20, yes correct. अगर उसका weight suppose 25 kg होता या फिर let's say 26 kg होता, तो वो कौन से क्लास में आएगा? medium, Medium. If my drone is of 1 kg, then it will be nano, Micro. Nano. micro. micro, 1 And kg, sorry. 250, Less than is 250. less than 250. अगर मेरा drone is 250 grams, Nano drone. नहीं 250 grams. On Yeah, the actually nano is less than 250 grams. mic, it will come under micro, Mic. right? हाँ, Right. 250. So similarly, अगर मेरा ड्रोन का weight 2 kg है, क्या होगा? Micro. Become a micro. Micro, Less than 2 kg. So your outer limit is less. less. Okay. जैसे आपने 2 kg क्रॉस किया, जैसे आपने 250 ग्राम क्रॉस किया, it will not be a that class. It will be above class. जैसे अभी मेरा देखो, मैंने क्या बोला, मेरा ड्रोन का weight कितना है? 24.9. मैंने 25 नहीं बोला. 24.9 पे मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है मेरा ड्रोन का weight, so that it will become So small. a small class. Small. The moment it becomes 25, the moment it becomes 25, though my limit is up to 25, 25. less than 25, not 25, less So than. it will go under medium. तो अगर 25 है तो मीडियम पे चला जाएगा, अगर लेस देन 25 है तो स्मॉल. Small. अंडरस्टैंड करो, Small में. कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे. Yeah. Okay. Yeah. तो नैनो लेस देन 250, माइक्रो 250 to 2 2 kg, kg. 2 kg. small starts from 2 kg 2 to kg to 25 kg. 25 kg. 25 kg. 25 kg to 150. 150. Large is 150 kg above. And above. 150. अभी अगर आप देखोगे DGCA ने इंडिया में only RPTOs are authorized to give license for small. Okay, there are 120 or 130 RPTOs or training institutes across pan India which are authorized to give you license for small. First, recently last 1.5 years, some institutes have upgraded themselves to give license for medium also. Okay, some institutes are upgraded themselves for giving license for medium also. But as of now, if you see the category as well as the class of the small, okay, the small का weight क्या है? 2 kg to 25 kg. That's a 25 big kg. range. That's a quite big range, and globally 90% of your drones fly in this class. तो आपको दूसरा क्लास का ड्रोन का लाइसेंस की जरूरत है क्या? अभी आप सोचो भाई, नहीं. क्योंकि आपका 2 kg से 25 kg is a big range. Yeah. मैक्सिमम आपका जो भी ड्रोन्स है, whether it is a surveillance drone, inspection drone, cinematography drones, agriculture drones, parcel delivery drones, whatever drones are there, maximum drones are in this small class. So you are equipped to have your license enough as of now. अभी क्या हो गया? There are some agriculture drones which are of heavy category. जैसे मेरा अभी जो agriculture drone है,
वो 10 लीटर का है, उसका वेट है 24 kg। बट अगर मैं वो एग्रीकल्चर ड्रोन हायर बैटरी, हायर टैंक कैपेसिटी के लिए अपग्रेड करता हूँ या बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, उसका वेट हो जाता है मोर देन 25 kg, इट गोज अप टू 28 kg। तो क्या होगा, मेरा ड्रोन का क्लास चेंज हो जाएगा। My drone will be no longer under the small, it will come under medium class. So I have to get my drone recertified as a type certification. Okay, मुझे recertify करना पड़ेगा, तब मैं वो ड्रोन को मैन्युफैक्चर करके सेल कर पाऊंगा। So that will become a medium। अगर मीडियम क्लास का ड्रोन है, I need a people to be certified for medium class also। Okay, डिफरेंस कुछ नहीं है, जस्ट वेट चेंज हो रहा है। ओके, सो आपको ऐसा लगेगा अरे मैं स्मॉल क्लास का क्यों कर रहा हूँ, मैं मीडियम क्लास का क्यों नहीं ड्रोन सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ? Because as of now there is not much worldwide medium class drones not being used। ओके, अभी एग्रीकल्चर में यूज करना चालू हो गया है। 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रोन दीदी का स्कीम रिलीज किया है, वेयर दे आर गिविंग 15,000 ड्रोन्स टू फार्मर्स ऑन सब्सिडाइज रेट। वो जो ड्रोन स्कीम अभी रिलीज हुआ है वो मीडियम क्लास में था। उसके पहले 2023 में एक स्कीम रिलीज हुआ था, ड्रोन दीदी स्कीम था पहले भी। ओके, वो स्कीम में दे रिलीज ड्रोन, आई थिंक 7,000 या 8,000 ड्रोन्स वर गिवन टू द फार्मर्स, दे वर इन अ स्मॉल क्लास। अभी उन्होंने अपग्रेड किया है क्योंकि जो ड्रोन स्मॉल क्लास में था वो 10 लीटर कैपेसिटी का था, और बैटरी जो कैपेसिटी था का कैपेसिटी था कवर ओनली 1 एकड़ और 2 एकड़। तो गवर्नमेंट लाइफ साइकिल ऑफ they are not able to cover large area of वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। they asked the manufacturer to develop the bigger size of drone। So the manufacturer developed drones which are of higher category, which was of capacity of like somewhere around 16 liter of tank and capacity of almost like 35 minutes to 40 minutes of flying time। Okay, which was able to cover 3 acres of land। जो अभी करंट स्मॉल ड्रोन जो है which is covering only 1 acre और maximum 2 acre of land। 2 acres। Okay, तो मीडियम क्लास में क्या हो रहा है, सिर्फ कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, बाकी आपका फ्लाइंग का कोई चेंज नहीं हो रहा है, रूल्स रेगुलेशंस कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आप सिर्फ क्या चेंज कर रहे हो, क्लास चेंज हो रहा है आपका, बिकॉज आपका वेट चेंज हो रहा है, बाकी आपका फ्लाइंग कंडीशंस, रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। दैट मींस इवन यू बिकम अ स्मॉल क्लास पायलट, यू डोंट नीड अ सेपरेट अंडरस्टैंडिंग। ओके, लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा अगर आप मीडियम क्लास के ड्रोन फ्लाई करने चाहोगे, और यू हैव अ रिक्वायरमेंट, यू नीड टू सर्टिफाई। जैसे आपने अगर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, तो आप ट्रक नहीं ड्राइव कर सकते हो, राइट? दो इट इज ऑल्सो 4 व्हीलर, राइट? 4 व्हीलर ऑफ हायर कैटेगरी आपको ड्राइव करनी है, तो आपको क्या बोलते हैं, हेवी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आपको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिमिलरली स्मॉल से आपको अगर मीडियम पे अपग्रेड करना है तो मीडियम का आपको, बट तभी आपको 5 दिन का ट्रेनिंग नहीं करना पड़ता है, तभी आपको 2 दिन का रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना पड़ता है, एंड दैट इज बीन अवॉर्डेड ओनली टू सर्टेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया ओनली। आई थिंक हार्डली देयर आर 10 to 12 RPTOs which are authorized to give a medium class training। Okay, we also have applied for medium class, maybe 2 या 3 महीने के बाद we will be also authorized for giving medium class training also। we are already in process of purchasing medium class drones also। Okay, हमारे पास अभी 2 small class drones है, okay, which are type certified। we are not using small drones, as I told you during the admission process also, that we are not using small training drones, we are using enterprise agricultural drones। Okay, big size drones we are using because we want to give our students the enterprise class of training। they need to know, they need to be ready for the industry। ऐसे नहीं कि क्या होता है ना, मैं अगर आपको स्मॉल अभी पार्क कैन टेल यू लाइक इट इज वेरी सिंपल टू फ्लाई अ DJI ड्रोन, अब आपको लगेगा भी नहीं कि आप फ्लाई कर रहे हो, you do not have feeling, but when you come for a training,
Okay, so when I train you, when I give you remote control to fly a drone, आपको पहले डर रहेगा आपके मन में। जैसे हम लोग कार जब ड्राइव करने जाते हैं तो इंस्ट्रक्टर भले हमारे बाजू में बैठा है, Yeah. राइट, हमको डर रहता है, राइट, ड्राइविंग करते हो, अरे कैसे करूंगा, मेरे से अगर ज्यादा फास्ट ड्राइव हो जाएगा, Hmm. मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, यू नो, ऑल दैट फियर विल बी देयर एंड दैट फियर इज इन एवरीबॉडीज माइंड। मेरे माइंड में भी था, मेरे माइंड में अभी भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे बोलते हैं ना हम लोग, डर हमारे दिमाग से क्या होता है, कम हो सकता है, लेकिन पूरा जीरो नहीं। पूरा नहीं। Okay, similarly, it is only a proper training, proper understanding, proper following the rules and regulation will become a better pilot, a better person. Okay. So similarly, when you are flying our enterprise drone, initially first दो flight रहेगा ना, आपको थोड़ा सा डर रहेगा आपके मन में, लेकिन first दो flight कर लिए ना, I am 100% sure you will be become a comfortable. You will have an enormous, आपका confidence इतना boost हो जाएगा कि आप easily fly कर पाओगे. In fact, you will be boosting my confidence so that I can trust giving a remote in your hand and telling Yeah. you at the door. Okay, so that is the way I am going to train. I will tell you lot of secrets, lot of surprises during the course of your flying, which you will be not knowing, but unknowingly you will be doing lot of things. But I will be revealing you during the course of the time of your training and by end of your training also. Okay, so stay tuned for that surprises and surprise for your training. Yeah. But I will make sure that I will make you the best of your pilot training and all that. Okay, you will Yeah. realize Thank you. by day 5 what I am telling you on day 1 now. Okay, so coming back to our topic, category, rotorcraft, aeroplane and hybrid, classification, nano, micro, small and medium and large, right? So now there is a question here, a lot of students ask, large का आपने सर बोला 500 kg above, but what is the outer limit? उसकी outer limit क्यों नहीं define की? तो drone rule में there is no outer limit defined for large, because large class can be anything above 500. 500, right. डायरेक्ट अबाउ 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है। तो लार्ज का आपका स्टार्ट क्या रेंज है? 150, लेकिन उसका एक सॉफ्ट लिमिट है 500। बट अगर 500 के ऊपर भी जाएगा तो भी उसको ड्रोन बोल सकते हैं, बट दैट नीड्स टू फॉलो द एयरक्राफ्ट रूल 1937 रूल आल्सो। अगर आप ये देखोगे जो भी क्लास ऑफ ड्रोन्स है, कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स है, इनके ऊपर एयरक्राफ्ट एक्ट or aircraft rules does not apply. Okay, they have to follow drone rules 2021. Okay, but if your drone weight is more than 500 kg, aircraft rules 1937 become applicable on those drones. Okay, clear on this statement? Yes, sir. So these are a couple of slides and then we'll take a break. So category again, hybrid, aeroplane and rotorcraft. See, पहला slide में क्या था? पिक्चर नहीं था। क्यों पिक्चर नहीं था? Purposely because I want to focus on the words, Right. on the terminology. इसलिए मैंने कोई पिक्चर नहीं देखा था, blank रखा था, only words, only definitions, only points. Now you can see, rotorcraft is nothing but 4 rotors, 4 or more rotors will be rotors. जहाँ पे propellers है, that is a rotorcraft. जहाँ पे wing है, that is aeroplane. Fixed wing. Aeroplane is also called as fixed wing. Propellers, 4 or more propellers, 2 or more propellers is rotorcraft. Okay, जहाँ पे propellers आया, it will be a rotorcraft. Fixed wing है, it is called aeroplane. Combination of rotorcraft and aeroplane is hybrid. So अगर hybrid देखोगे, उसमें wings भी है and propellers भी है. Propellers भी है. तो दोनों है, इसीलिए hybrid है. और it is also called as VTOL, vertical takeoff and landing. Okay, so you have 3 categories: rotorcraft, aeroplane and hybrid. Okay, similarly category का सब category भी है. अगर आप ये देखोगे, ये स्लाइड में हमने सब category के बारे में बात नहीं किया, right? Here we are talking about sub category. So every category has a sub category. तो rotorcraft का भी 3 सब category है, aeroplane का भी 3 सब category है, hybrid का भी 3 सब category. So all these categories can be divided into subcategory as RPAS, model RPAS, and autonomous. What are these subcategories? Okay,
remotely piloted aircraft system. That means I am flying a rotorcraft, I am flying a aeroplane, I am flying a hybrid. It can be controlled by a remote control. That is remotely piloted aircraft system. Okay, it is called RPAS. Okay, तो मेरे पास रिमोट है, मैं रिमोट से फ्लाई कर रहा हूँ. You can see a remote in my hand. Okay, it has the joystick on it. I can using the joystick. I am trying to fly either an aeroplane, either a rotorcraft or a hybrid. It is called RPAS category, subcategory. Okay. दूसरा है मॉडल आरपास. अभी मॉडल आरपास में रिमोट यूज होता है, बट all of these three categories can be categorized as a model when it is not a type certified. यानी कि कोई बॉडी ने उस ड्रोन को, उस एरोप्लेन को या उस हाइब्रिड कैटेगरी को सर्टिफाई नहीं किया. आई एम फ्लाइंग इट एज अ मॉडल. क्यों मॉडल? क्योंकि मैं प्रोटोटाइप बना रहा हूँ. बिफोर गेटिंग सर्टिफाइड आपको ड्रोन को टेस्ट करना पड़ेगा ना, आपको मॉडल बनाना पड़ेगा ना, प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा. So in that scenario, your drone, how you will test it? So that time you are flying it as a model. या फिर आप एरो मॉडलिंग कर रहे हो, राइट? यू आर डूइंग एरो मॉडलिंग. एरो मॉडलिंग में क्या करते हैं हम लोग? एरोप्लेन बनाते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं ना, ऑल दैट थिंग. So all your aero modeling aircrafts come under model RPAS. So before getting your drone, either it is a rotorcraft, either it is an aeroplane or a hybrid, is a model or it is a prototype. अभी ये मॉडल कैसे सोचेंगे हम लोग? क्योंकि उसको टाइप सर्टिफाइड नहीं है तो मॉडल बोल सकते हैं, बट मॉडल का भी एक डेफिनेशन है. मॉडल किसको बोल सकते हैं? इट शुड बी लेस देन 25 kg. इट शुड बी फ्लोन ओनली अंडर VLOS कंडीशंस, यानी कि विजुअल लाइन ऑफ साइट में ही आपको फ्लाई करना है. इसलिए एरो मॉडलिंग जब भी आप फ्लाई करते हो, आपको विजुअल लाइन ऑफ साइट में ही फ्लाई करना है. ऐसे नहीं कि आपने एरोप्लेन फ्लाई किया और वो कहीं से कहीं और चला गया और आपके विजुअल लाइन ऑफ साइट में नहीं है. देन इट इज नॉट aero modeling activity. It not be called as a model aircraft. Okay, so when you are doing a model, flying a model aircraft, flying under the subcategory model RPAS, it has to be flown within visual line of sight. The weight of that particular model has to be less than 25 kg only. Okay, and the third subcategory is autonomous. Autonomous मतलब आप रिमोट से फ्लाई नहीं कर रहे हो, आपके सामने एक लैपटॉप है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जिसमें आपने पूरा फ्लाइंग प्लान सेटअप किया हुआ है और का, रोटरक्राफ्ट का या हाइब्रिड का कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट ऑब्जर्वर, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग एज अ पायलट. एंटायर फ्लाइंग इज रन बाय द सिस्टम. आपका ड्रोन टेक ऑफ कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, आपका ड्रोन पिक्चर्स ले रहा है, आपका ड्रोन स्प्रेइंग कर रहा है, सीटिंग कर रहा है, बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है, you know, whatever activity is doing is automatically happening. So that is called autonomous UAS. The pilot is not actually flying, he just execute the flight plan. So that is called autonomous UAS. जैसे आप डिफेंस के ड्रोन फ्लाई होते हैं, प्रेडेटर ड्रोन फ्लाई होता है, या अभी इंडियन गवर्नमेंट में जो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन फ्लाई किए थे, those were all autonomous. Okay, so there were pilot, दो पायलट रहते हैं, कंटेनर में बैठे हुए रहते हैं, सिस्टम्स रहते लगे हुए, मॉनिटर्स लगे हुए रहते हैं, पूरा मॉनिटर करते रहते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली फ्लाइंग, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग, बिकॉज पूरा ऑटोनॉमस प्लान बनाया रहता है, जिसमें आप ऑटोनॉमस प्लान को अपलोड करते हो ड्रोन में और उसको एग्जीक्यूट करते हो. दैट इज ऑटोनॉमस फ्लाइंग. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको ऑटोनॉमस का देता हूँ. आप फील्ड में स्प्रेइंग कर रहे हो, अगर आप मैनुअल फ्लाइंग कर रहे हो, आप ड्रोन को टेक ऑफ करोगे, फील्ड के ऊपर लेके जाओगे, स्प्रेइंग करोगे, ये करोगे, तो जो आप स्प्रेइंग कर रहे हो मैन्युअली करोगे ना, उसको आपको 25 मिनट लगेगा 1 एकड़ कंप्लीट करने के, और वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. उसमें मल्टीपल टाइम्स आपको ड्रोन लैंड करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. मतलब यू विल स्पेंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज मैन्युअली फ्लाई. बट वही ड्रोन अगर आप ऑटोनॉमस कंडीशन में फ्लाई करोगे, तो आपका 1 एकड़, 1 एकड़ ऑफ लैंड विल कंप्लीट इन 8 मिनट्स. हाउ मच? 8 मिनट्स. और एक बैटरी साइकिल, मतलब आपने ड्रोन रेडी किया, टैंक को 10 लीटर का टैंक को फिल किया,
तो बैटरी लगाए तो ड्रोन टेक ऑफ होगा, एक एक कर लैंड कंप्लीट करेगा और लैंड होगा. Within 8 to 10 minutes, your activity will get completed and you will save your resources. Like right from your fertilizers to your battery life cycle. Okay, that is autonomous. इसीलिए हम लोग जब भी एग्रीकल्चर ड्रोन फ्लाई करते हैं तो हम लोग ऑटोनॉमस मोड में फ्लाई करते हैं. Okay, we do not fly the drone in manual conditions because it will waste of time, resource, and fertilizer also, as well as battery life cycle. Everything will be wasted. Okay, so clear on category and subcategory. Any questions? Any Yes, doubts yes. here? Okay, No, don't no. worry. We will be repeating this. अभी next 5 दिन में यही चीजें बातें करने वाली. Our entire training is around these topics. Okay, category, subcategory, class. ये 3 चीजों के ऊपर अराउंड ही सब कुछ हम बात करते हैं. तो we will be repeating. मैं पूछते रहूंगा आपको ये कौन सा क्लास है, ये कौन सा कैटेगरी है, ये कौन सा सब कैटेगरी है, है ना? There might be doubts coming in your when we are talking on different topics. So आप कभी पूछोगे, automatic things will get clarified. लेकिन I hope by the time now what we have reached, आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी क्लियर हो गई. Yes, sir. Yes, sir. Okay, the last slide now, classifications. Okay, पहला स्लाइड में पिक्चर नहीं था, अभी पिक्चर है, right? So nano is less than 250 grams, micro is 250 grams to 2 kg, small is 2 kg to less than 25 kg, medium is 25 kg to less than 150 kg, large is greater than 150 kg, right? So now if you see here, medium, मैं medium का थोड़ा सा बात करूँगा. Medium here it is showing 25 to 150 kg, but as of now DGC has given only permission up to 50 kg. अगर आप मीडियम क्लास के ड्रोन्स भी देखोगे, they will be less than 50 kg के अंदर ही होंगे. 50 kg के ऊपर किसी को अभी तक सर्टिफाई नहीं किया गया है. ओके, अगर आप टाइप सर्टिफिकेशन ड्रोन देखोगे, उसमें जो भी मीडियम क्लास ड्रोन सर्टिफाइड है, they will be less than 50 kg only. So government has not given license or certification above 50 kg. So as of now it is limited only. तो उसका range in a rule it says about 25 to 150. Government is only given license up to 50 kg. Okay? एक मिनट, एक क्वेश्चन है सर. हाँ बोलिए. लाइक अभी अपने को अगर ये क्वेश्चन आया रूल बुक में, मतलब एग्जाम में, 25 to 150 kg मीडियम लिखने के गवर्नमेंट रूल के हिसाब से लिखने के? गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मीडियम का आपका रेंज क्या है? वॉइस ब्रेक होता है. If the question is with respect to drone rules, refer to drone rules. See, as of now, the limitation it is by the government. It is not as per the rule. Government ने अभी restrict किया है. For example, अभी मैं बोलता हूँ ना कि आप ये टाइम पे ये टाइम नहीं कर सकते, वो temporary restriction. ऐसा नहीं कि permanent है. अभी देखो drones develop हो रहे हैं. Medium में there are drones which have been flown above 50 kg भी also. But वो अभी type certified नहीं हुए. ओके. तो गवर्नमेंट अभी तक उनको सर्टिफाई नहीं कर रहा. दे आर स्टिल अंडर टेस्टिंग. जब वो सर्टिफाई हो जाएंगे तब गवर्नमेंट से कि हम लोग अभी तक 100 केजी तक दे रहे. तो पॉसिबली अभी वो रेंज जो 50 केजी तक लिमिट किया है, दैट विल गेट एक्सटेंडेड अप टू 100 केजी. एंड सब्सिक्वेंटली बिकॉज़ दे डोंट नो, बिकॉज़ 100 केजी का ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, अगर वो किसी के सर पे गिर गया तो कितना डिजास्टर होगा, राइट? तो इसके लिए उन्होंने अभी वो लिमिट रेस्ट्रिक्ट करके रखा. इवन 30 केजी का No voice. Hello, can you hear me now? Hello, Hello. hello, hello. Can you hear me now? Oh yes sir. Hello. Is it loud and clear? Hello, Not hello. good, but we can. I can hear you. Voice तो पूरा full है. Hello, can you hear me now? Yeah, we can. Yes. वो शायद बीच में कभी-कभी इंटरनेट थोड़ा स्लो होता है. सिग्नल तो पूरा दिखा रहा है मेरे को on the router. Okay, I'll repeat. So I am saying you have to first follow the drone rules 2020. Document क्या बोलता है? मेरा मीडियम का रेंज क्या है? 25 to 150. So medium is 25 to 1. अभी temporary restriction दिया हुआ. It is only for certification, not for flying.
सर्टिफिकेशन के लिए वो सिर्फ अभी 50 केजी तक ही सर्टिफाई कर रहे हैं। मे भी फ्यूचर में, क्योंकि अभी टेस्टिंग चल रहा है, कुछ ड्रोन्स है जो अबाउ 50 केजी है, जैसे मैंने बोला था, एग्जांपल दिया था, एम्बुलेंस वाला जो ड्रोन है या फिर डिलीवरी वाला जो ड्रोन है, दे आर अबाउ 50 केजी। तो उनका टेस्टिंग चल रहा है, एक बार उनका टेस्टिंग हो जाएगा, उनका इकोसिस्टम रेडी नहीं है। जैसे कि अभी हमारे पास flying this large drone needs a bigger ecosystem like BVR चाहिए, UTM चाहिए, all that things are required. तो जब तक वो अवेलेबल नहीं है, आप तो वो कैटेगरी लिमिट नहीं किया जा सकता। ओके, तो when you are answering the question, always refer what does my drone rules 2021 document says. Okay, don't limit yourself to the current rules and regulations, current limitation. Those are temporary in nature. Yeah. So remember like to okay. तो अगर मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरा ड्रोन का वेट है 70 kg, which class does it belongs to? So what you will say? 70 kg है तो मीडियम क्लास में आ गया, राइट? तो मैं प्रैक्टिकली मैं अभी 50 का लिमिट कर रहा हूँ, आप बोलोगे 50 का लिमिट करो तो 70 का मीडियम कैसे कर सकते? तो दैट इज करंट प्रैक्टिकल लिमिटेशन बेसिस पे। हाँ, बट रूल के हिसाब से तो कैटेगरी क्लास क्या है मेरा, मीडियम का 25 to 150 तो 70 150 मीडियम का क्लास में आएगा। ठीक है, क्लियर? Yes. We take a break over here because next talk about different topic. Okay, this is about the category and classification as of now. We take a 10 minutes break. We'll come back by 12:30 and we'll complete this. Okay, so far any questions on the category and classification? Are we clear on these two important points? Yes. Right. Category is rotorcraft, aeroplane and hybrid. Subcategory is RPAS, model RPAS and autonomous UAS. Classification is nano, micro or medium, large. Right? और उनका रेंज भी आपको पता है, nano is less than 250, micro is 250 to 2 kg, small is 2 kg to less than 25 kg, medium is 25 kg to less than 150 kg, and large is more than 150 होगा। ठीक है? Yes. और whatever the category classifications you have seen, understood, learned is with respect to India. Okay, with respect to India. India has only the rules which specifies the classification of a drone based on weight. Okay, हम लोग क्या कर रहे हैं, weight पे define कर रहे हैं, whereas other countries do not consider weight. Okay, they have a different way of classifying the, जैसे हम लोग तो नैनो बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, वर्ड्स, रोटरक्राफ्ट, एरोप्लेन, हाइब्रिड, whatever these words we are using, small, medium, large, whatever. Other countries might be using different terminology or different limits. Okay, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल का 2 kg से 25 kg, वहाँ पे मे बी उनका स्मॉल मे बी फ्रॉम let's say 750 grams to 2 kg, you know, depending. I'm just giving an arbitrary example. या फिर मे बी उनका स्मॉल का लिमिट अप टू 7 kg भी हो सकता है, या 7 kg के अबव और बिलो इज स्मॉल एंड अबव 7 kg इज लार्ज, और विद वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज, ऐसे थोड़ा वियर्ड डेफिनेशंस है। As of now, don't worry about what other people are saying. Only follow Drone Rules 2021. Okay, that is the proper and properly defined rules. Okay, I'm just giving you a couple of slides to show you the difference in different countries. Okay, especially US के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, because US का ही follow करते हैं mostly, यूरोप में या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, most of the locations they follow the similar terminology. Okay, so you see the UAE classification by range and altitude. Okay, by Federal Aviation Academy. Okay, Federal Aviation Academy. That is US का जो, जैसे हमारा DGC हम बोलते हैं इंडिया का, वैसे Federal Aviation Academy जो है US का, they classify their unmanned air vehicle based on range and altitude. Okay, so there are different of UAVs like hummingbird है, predator, आपने predator नाम तो काफी बार सुना रहेगा, मूवीज में भी देखा रहेगा, डॉक्यूमेंट्रीज में, न्यूज में ये देखा, ये बहुत फेमस ड्रोन है, यूएस डिफेंस यूज करता है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी परचेस किए हैं कुछ 7 या 11 ड्रोन
यूएस से परचेस किए हैं, राइट? नेवी एंड एयरफोर्स हैज परचेस्ड these drones and been deployed on Ladakh border as well as Pakistan border also. Okay. Similarly, there is a Skystar hybrid VTOL, Global Hawk, yeah, MD4. Okay, these are some drones of US made. Okay, which are being classified based on range and altitude. यानी इनकी रेंज कितना है या उनका एल्टीट्यूड क्या है उसके ऊपर डिफाइन करता है उनका नाम या टर्मिनोलॉजी, ओके, या क्लासिफिकेशन. वन मोर थिंग इज हियर डू ए क्लासिफिकेशन बाय रेंज एंड एल्टीट्यूड. ओके, सो रेंज जैसे देखो माइक्रो या मिनी यूवीए, ओके, माइक्रो और मिनी यूएवी डिपेंड्स अपॉन दैट इज MUAV. का रेंज क्या है? लेस देन 10 किलोमीटर्स. एल्टीट्यूड क्या है? 300 मीटर्स. एंड्योरेंस यानी फ्लाइट टाइम क्या है? 2 आवर्स. 2 hours. और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना है? 30 kg. व्हाट इज द एग्जांपल? MD4 200 यानी ये वाला, दिस ड्रोन. ओके, whereas मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस माल, MAL माल, उसका क्या है? मोर देन 500 किलोमीटर्स. It can go up to 300 meters, sorry, 3000 meters, that is 3 kilometers. It can fly for almost 4 hours. वो उड़ता ही रहेगा. Okay. Continuously fly for 48 hours. उसका weight capacity कितना है देखो, 1500 grams, kilograms to 7000 kilograms. Calarium या Predator drones, ये वाले drones. ये वाला ड्रोन प्रेडेटर ड्रोन, ये काफी बड़ा ड्रोन है ये. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस. मीडियम क्यों? क्योंकि जस्ट 300 मीटर्स, सॉरी 3000 मीटर्स, दैट इज 3 किलोमीटर के रेंज में फ्लाई करता है. ओके, बट इट कैन फ्लाई अप टू 24 to 40, एक दिन 2 दिन कंटिन्यूस. जैसे आपने देखा रहेगा तालिबान का जो सर्वेलेंस चल रहा था अफगानिस्तान बॉर्डर पे, व्हाट इज दैट टेररिस्ट नेम? ओबामा ना, नहीं, क्या नाम है उसका? द टेररिस्ट लीडर ऑफ द टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को जो जिसने यूज किया था जो ड्रोन को, प्रेडेटर ड्रोन, 2 दिन तक फ्लाई हो रहा था वहां पे अफगानिस्तान पे अफोटाबाद में. ओके, सर्वेलेंस करने के लिए एंड गिविंग अ सपोर्ट टू द ग्राउंड क्रू. सो दैट ड्रोन वाज प्रेडेटर ड्रोन. ओके, सिमिलरली हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हिच इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 2000 किलोमीटर्स and 20,000 meters, यानी 20 kilometer high up in the altitude it can fly. This also can fly almost for 24 hours to 48 hours. इसका range medium weight, maximum takeoff weight देखो 4,000 kilograms to 15,000 kilograms. Global Hawk यानी कौन सा ड्रोन है? बिगर ड्रोन, ये वाला Global Hawk. Okay. जबकि जो मैंने दूसरा वाला माल जो बोला था वो प्रेडेटर ड्रोन था, कैलेरियन ड्रोन. इसका रेंज क्या है? ओनली 3000 किलोमीटर्स. इसका क्या है? 20,000 किलोमीटर ऊंचाई पे वो जा सकता है. ओके, और इसका रेंज भी काफी अच्छा है. कितना है? 2000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर. ओके, तो अफगानिस्तान बॉर्डर से इट कैन गो इनसाइड द पाकिस्तान बॉर्डर्स. ओके, whereas this can go beyond that. यूरोप में से फ्लाई करोगे तो इंडिया तक आ सकता है. 2000 किलोमीटर काफी हो गया बड़ा. Whereas VTOL UAV is between 5 kilometers to 200 kilometers. Okay, and the altitude can be 6000 meters, यानी 6 kilometers height तक range तक उड़ सकता है. But उसका endurance capacity देखो कितना है? Only 20 minutes to 8 hours. Yes. And the maximum takeoff weight can be 20 grams to 1400 kilograms. Okay, MQ-9 nanobird, human bird, these are like different kinds of drones are available. छोटा ड्रोन, आपने नाम अगर आप सर्च करोगे हॉर्नेट ड्रोन करके है, वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर है. वो ड्रोन का कॉस्ट, ड्रोन है इतना सा छोटा सा, मेरे हाथ से भी, मतलब पाम से भी छोटा है ड्रोन. ओके, इट मस्ट बी समथिंग लाइक दिस मच साइज. इतना छोटा ड्रोन रहेगा. That drone cost 1 crore rupees. But क्या नाम बोला सर आपने? Hornet. Yeah, it's like a helicopter. Toy helicopter. छोटा हेलीकॉप्टर है वो. But almost crore of rupees, 1 crore के ऊपर है उसका कीमत. Okay, it is used by US Defense for surveillance. Okay, it
It is not used for commercial purpose or not been afforded or not been sold to commercial people. Okay, but there are other Okay. drones. Okay, so these are classified based on range and altitude. Okay, ये आपका फेडरल एविएशन एकेडमी, ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है. ओनली फॉर नॉलेज पर्सपेक्टिव आई हैव पुट दिस टू स्लाइड्स. ओके, अगर क्लासिफिकेशन बाय एफएए बाय साइज भी है, साइज में क्या बोलता है? वेरी स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज. वेरी स्मॉल का क्या साइज है? लेस देन 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर इतना सा छोटा सा. ओके, मिनी का क्या है? 50 सेंटीमीटर टू 2 मीटर्स, 2 मीटर्स. ओके, मीडियम इज 5 मीटर्स टू 10 मीटर. मीडियम में देखो, मीडियम में प्रेडिटर ड्रोन है 10 मीटर लंबा, काफी बड़ा ड्रोन जिसको रनवे लगता है फ्लाई करने के लिए, राइट? या फिर आपका ग्लोबल हॉक देखो, बड़ा, बहुत बड़ा ड्रोन है ये, लार्ज, बिगर देन 10 मीटर. दिस इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक एरोप्लेन ओनली. एरोप्लेन ओनली. दिस इज एक्चुअली एरोप्लेन ओनली. फर्क क्या है? इसके अंदर पायलट नहीं है, इसको रिमोटली फ्लाई किया जाता है. इसके लिए इसको बोलते हैं ड्रोन या एरोप्लेन विच इज अनमैन्ड. एरोप्लेन विच इज अनमैन्ड. तो नॉर्मली कार्गो डिलीवरी, सर्वेलेंस, ये सब चीजों के लिए ये ड्रोन यूज होते हैं. जैसे ये प्रेडेटर ड्रोन है या फिर आपका लार्ज ड्रोन. ये दोनों ड्रोन कैटेगरी है. More of these are drones used by defense, not by normal people or commercial people, civil people and all. These are mostly flown by defense, military, air force, navy. ये लोग fly करते हैं. Okay? So clear on the classification with respect to range, altitude and size for FAA. These are out of syllabus, out of topic. ये slides है. Okay? बस आपको समझने के लिए मैंने ऐड किए हैं slides. ऐसे अगर आप यूरोप का देखोगे तो मोर और लेस सिमिलर रहेगा. ऑस्ट्रेलिया का देखोगे तो मोर और लेस सिमिलर रहेगा. दुबई का भी देखोगे मोर और लेस सिमिलर रहेगा. हमारा डिफरेंस कैसा है? हमारा क्लियर कट डेफिनेशन है कैटेगरी. रोटरक्राफ्ट, एरोप्लेन एंड हाइब्रिड सब कैटेगरी. आर पास, मॉडल आर पास, यूएस ऑटोनॉमस, राइट? और हमारा क्लासिफिकेशन ऑन वेट, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. क्लियर? यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट होता है. ओके, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ ड्रोन रूल्स 2021 गेट्स ओवर. ओके, नॉर्मली इसके बाद हम लोग ब्रेक लेते हैं, बट अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया. नो वरीज, लेट्स मूव अहेड. द नेक्स्ट सेगमेंट इज टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स. मैंने बताया आपको, एग्जांपल दिया कि कुंदन को अपना एंटरप्रेन्योर बिजनेस चालू करना है. ही थिंक्स दैट आई वांट टू बिल्ड अ ड्रोन फॉर सर्वेलेंस पर्पस. मैं एक ड्रोन बनाना चाहता हूं जिसको सर्वेलेंस के लिए यूज कर सकता हूं, और आई वांट टू मास प्रोड्यूस दिस एंड मेक अ सेलिंग ऑफ दैट. मैन्युफैक्चर करके मुझे सेल करना है कंपनीज को, बॉडीज को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले 3 प्रोटोटाइप बनाने पड़ेंगे. टेस्टिंग करोगे आप उनका, डॉक्यूमेंटेशन करोगे, मैनुअल्स बनाओगे, उसके डिफरेंट सिनेरियोज में टेस्टिंग किया जाएगा. डिफरेंट वेदर कंडीशंस में आप टेस्ट करोगे, डिफरेंट टेम्परेचर में टेस्ट करोगे, हॉट, कोल्ड, रेनी, डिफरेंट सिनेरियोज में आप सिटी में फ्लाई करोगे, फॉरेस्ट में फ्लाई करोगे, एग्रीकल्चर सेगमेंट में फ्लाई करोगे, माउंटेनस टेरेन पे फ्लाई करोगे. तो आप अपना ड्रोन को आप तब टेस्ट करोगे, और आप जब टेस्ट करोगे उनके टेस्ट रिजल्ट्स बनाओगे, डॉक्यूमेंटेशंस करोगे. ऑल दैट थिंग्स यू विल डू इट बिफोर गोइंग फॉर टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ ड्रोन. जब आपका सब टेस्टिंग थ्रू हो जाएगा, फिर आप डीजीसीए को बोलोगे कि मेरा ड्रोन को मुझे टाइप सर्टिफिकेशन करना है. तो आप एक फॉर्म है D1 करके फॉर्म, यहाँ पे लिखा है फॉर्म D1. मैंने आपको बोला था बिफोर ड्रोन रूल्स 2021 देयर वाज कार व्हिच वाज रिलीज्ड इन 2018 दैट वाज हैविंग 25 फॉर्म्स. कितना? 25 फॉर्म्स. whereas now drone rules 2021 which was released in 25th August of 21 has reduced those 25 forms to only 5 forms. Only 5 forms are there now. Okay, and the fees is only 1000 rupees. पहले फीस कितना था? 1000 था, 5000 था, 10000 था, 25000 था. डिफरेंट चीजों के लिए फीस था. वो फीस कितना था? 25000 तक फीस था. Now that fees has been reduced only to 1000 rupees. Minimal fees है 100 rupees. यानी अगर आपको ड्रोन को सर्टिफाई करना है, ड्रोन को रजिस्टर करना है, पायलट का लाइसेंस बनाना है, राइट, ड्रोन को री रजिस्टर करना है,
फीस इज ओनली 100 रुपीज। कितना है? 100 रुपीज। 100. एकदम सिंपल कर दिया है आपका। 5 फॉर्म एंड फीस इज ओनली अप टू 100 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। तो आपको फॉर्म D1 फिल करना है, गिविंग योर डिटेल्स, योर ड्रोन डिटेल्स, everything, and make an application for type certification by paying fees 100 rupees. Okay, so no person shall operate an unmanned aircraft system in India unless such unmanned aircraft system conforms to a type certificate or exempted from requirement of a type certificate. Under this, these words, what we are saying, we are listening, we are hearing, these are all from Drone Rules 2021 document. Okay, मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट नहीं शोकेस कर रहा हूँ because that is very difficult to read and understand document. So we have made a simplified slides to read. We have made simplified documents so that you understand the definitions, understand the words. Okay, so क्या बोलता है टाइप सर्टिफिकेशन किसके करना चाहिए? आप वही ड्रोन फ्लाई कर सकते हो जो टाइप सर्टिफाइड ड्रोन। Okay, as per the drone rules 2021. But there are certain class where this exemption of making a drone type certified is exempted. Okay, so we'll see in due course which drones are exempted from becoming a type certified. Now, who can give you the type certification? Director General or any entity authorized by Director General in this behalf may, on recommendation of Quality Council of India, that is QCI, or an authorized testing entity, issue a type certificate for a particular type of unmanned aircraft system. मतलब क्या कि कुंदन ने अभी 3 ड्रोन को बना लिए, प्रोटोटाइप बना लिया, टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमने अपने D1 फॉर्म भी भर दिया। अपने D1 फॉर्म भरा तो क्या होता है, QCI जो बॉडी है वो आपको एक ऑथराइज्ड टेस्टिंग एंटिटी के साथ अलाइन करेगा। वो ऑथराइज्ड टेस्टिंग एंटिटी क्या बोलेगा, कुंदन आप मुझे 3 ड्रोन, आपके टेस्ट रिजल्ट्स, आपके डॉक्यूमेंटेशन सब सबमिट करो। वो आप सबमिट करने के बाद दैट ऑथराइजिंग टेस्टिंग एंटिटी विल टेस्ट योर ड्रोन बेस्ड ऑन योर टेस्टिंग। आपने बोला मैंने 500 बार ड्रोन को टेक ऑफ करके लैंड किया है, माय ड्रोन इज कैपेबल ऑफ 500 टाइम्स टेक ऑफ एंड 500 टाइम्स लैंडिंग, मतलब मेरा लैंडिंग गियर इज कैपेबल ऑफ 500 टाइम्स टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वो उसके रिजल्ट्स देखेगा, अगर रिजल्ट से सेटिस्फाई है तो ओके करेगा, सेटिस्फाई नहीं है तो वो खुद 500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग करके देखेगा। अगर आपने बोला कि मेरा ड्रोन कैन विथस्टैंड अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री, वो 50 डिग्री टेम्परेचर एनवायरनमेंट में आपका ड्रोन को फ्लाई करके चेक करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो देन इट विल डिस्क्वालीफाई और आपको जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा या फिर आपको फाइन ट्यून करने के लिए बोला जाएगा, राइट। वो देखेगा आपने सर्टिफाई किया कि मेरा ड्रोन इज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इन -10 डिग्री टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर। वो माइनस टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट सिनेरियो में वो टेस्ट करके देखेगा। आप बोल रहे हो कि मेरा बैटरी फ्लाइंग टाइम इज ऑफ 20 मिनट्स, वो 20 मिनट्स तक आपका ड्रोन फ्लाई करके देखेंगे। अगर 20 मिनट्स आपका ड्रोन फ्लाई नहीं होगा, उसके पहले ही आपका बैटरी 0 हो गया, then it will not certify as 20 minutes flight time. Okay, so आप जो भी डिफाइन कर रहे हो आपके डॉक्यूमेंटेशन में, वो सारे कंडीशंस, सारे पैरामीटर्स, सारे डेफिनेशन will be tested by the testing body. Once they are satisfied with all your test results, all the testing, all the definitions what you have defined, then they will tell QCI good to certify this drone as type certified. जब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये रिपोर्ट चला जाता है कि भाई ये ड्रोन को हम सर्टिफाई कर सकते हैं, तभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DGCA को बोलता है कि दिस मैन्युफैक्चरर कैन बी सर्टिफाइड एज अ टाइप सर्टिफाइड ड्रोन। फिर क्या करता है, DGCA takes 15 days to validate all the documents and then they releases the certificate of type certification. उसके बाद once Kundan has that type certificate document, then he can mass produce that drone. यानी आप 1000 ड्रोन्स, 10,000 ड्रोन्स, 1,00,000 ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हो। With that specifications, with that documentation,
with that guidelines. क्लियर? अभी समझ में आया टाइप सर्टिफिकेशन Yes. के बारे में? Yes, sir. तो द एंटायर जब ने आपने D1 फॉर्म भरा ना, उसके बाद 60 डेज टाइम है जो टेस्टिंग अथॉरिटी बॉडी लेती है आपका टेस्ट करने के लिए। 60 डेज के बाद वो अपना रिजल्ट देती है और 15 दिन DGCA लेता है। तो टोटल मोटा मोटा 75 डेज आर रिक्वायर्ड। 5 days. 75 डेज आर Time है. रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज। बट क्या होता है ना, जब आप टेस्टिंग करने जाते हो, टेस्टिंग देते हो, जब टेस्टिंग एंटिटी बोलता है नहीं आपका ड्रोन तो आपने बोला है 500 लैंडिंग कैपेबल है, लेकिन नहीं है, वो 400 बार ही हो रहा है। 400 के बाद आपका लैंडिंग गियर ब्रेक हो रहा है, क्रैक हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो वी कैन नॉट सर्टिफाई योर ड्रोन फॉर 500 लैंडिंग्स। आइदर यू चेक बैक एंड रीसबमिट, तो वो उसमें टाइम जाता है, राइट? या फिर बोलते हैं आप बैटरी आपने सर्टिफाई किया है 20 मिनट्स फ्लाइट टाइम के लिए, लेकिन आपका ड्रोन तो 15 मिनट ही उड़ रहा है, तो मे बी आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा, वापस टेस्टिंग करना पड़ेगा, यू नो ऑल दैट थिंग्स। और मे बी आपको डॉक्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा कि रादर सेइंग 20 मिनट्स फ्लाइट टाइम यू मे हैव टू से 15 मिनट्स। तो वो सारा जो होता है बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टेस्टिंग बॉडी एंड यू, उसमें टाइम जाता है। ओके, तभी वो मीटर बंद होता है। 60 डेज का मीटर स्टॉप करते हैं टेस्टिंग बॉडी, बोलते हैं अभी आप इसको वापस करो और मेरे को वापस सबमिट करो। तो ये आगे पीछे जो होता है ना, में आपका 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल भी लग सकता है। तो टाइप सर्टिफिकेशन भले हम लोग बोलते हैं 60 to 75 डेज में होता है, एक्चुअल में उतना टाइम में नहीं होता है। वो कब होगा? जब आपका सब कुछ परफेक्ट है, आपने सब कुछ प्रॉपर पहले से टेस्टिंग करके परफेक्ट करके रखा है और सबमिट किया है, तो भी 75 डेज नहीं लगते, मैक्सिमम 90 डेज लगते हैं, 90 to 120 डेज लगते हैं। उसके लिए आपको सोचो, आपको देखो अभी मैंने क्या बोला, टाइप सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको खर्चा कितना है? सिर्फ 100 रुपीज, नॉट जस्ट 100 रुपीज, वो सिर्फ एप्लीकेशन का चार्ज है। आप जब टाइप सर्टिफाइड ड्रोन, टाइप सर्टिफाइड बॉडी आपके साथ एसोसिएट होती है, वो जो टेस्टिंग करती है, उनका चार्जेस है 3 से 4 लाख रुपए। ठीक है, आपको एक कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं डिजाइनिंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, सारों चीजों के लिए कंसल्टेंसी देता हूँ, तो मैं चार्ज करता हूँ समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज टिल योर ड्रोन गेट टाइप सर्टिफाइड। मतलब वो फिर पीरियड ऑफ 3 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। उतना टाइम के लिए मेरे को आपको कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी आपको। ओके, दैट टाइम आई हैव टू बी ऑथराइज्ड विद यू एज अ कंसल्टेंट। तो जो भी आपको हेल्प लगेगा, गाइडलाइंस लगेगा, जो भी रहेगा वो मैं आपको एक्सटेंड करूंगा एज अ कंसल्टेंट। तो मेरा 10 लाख रुपया हो गया, यानी कितना होगा? वो 4 लाख रुपया टेस्टिंग वाले का पकड़ो, मेरा 10 लाख पकड़ो, 14 लाख रुपया हो गया। उसके बाद आप ड्रोन मैन्युफैक्चर करोगे, 3 ड्रोन मैन्युफैक्चर करोगे। एक ड्रोन मैन्युफैक्चर करने के लिए, टाइप सर्टिफाइड ड्रोन मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कम से कम 5 लाख से 10 लाख रुपया खर्चा आएगा, राइट? मिनिमम समझो 5 लाख रुपया खर्चा आया। 3 ड्रोन बनाने का कितना आया? 15 लाख, राइट? तो 14 प्लस 15 कितना हुआ? 29 लाख रुपीज। फिर ये सब चीजें करने के लिए आपको टीम लगेगी, आपको मैकेनिकल इंजीनियर लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर लगेगा, आपको टेस्ट पायलट्स लगेंगे, टीम मतलब डिजाइनिंग टीम लगेगी, टेस्टिंग टीम लगेगी, ये सब मतलब एक टीम सेटअप करना पड़ेगा। उनकी सैलरी आप 3 महीना पकड़ो, 6 महीना पकड़ो या 1 साल पकड़ो, 1 साल के हिसाब से अगर सैलरी पकड़ोगे, वो सैलरी का कॉस्ट, आपको ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, वो कॉस्ट, ये सब इन्वेस्टमेंट है आपका। तो समझो वो एक 10-15 लाख रुपया पकड़ो, तो कितना हुआ? 30 lakhs प्लस 15 lakhs, तो मोटा मोटा 45 to 50 lakhs रुपीज आपको लगेंगे टू गेट योर वन ड्रोन टाइप सर्टिफाइड। यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स करके लिए हैं, उनको मिनिमम 30 lakhs to 50 lakhs रुपीज खर्चा आया है। गॉट इट? तो इट इज नॉट दैट इजी कि पापा भले 100 रुपीज का एप्लीकेशन तो कर दोगे, लेकिन आगे का क्या है ना? इसके लिए कंपनी, स्टार्टअप्स कंपनी बनाते हैं, फंडिंग लेते हैं, ड्रोन्स बनाते हैं, सर्टिफाई करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और फिर तो मतलब अगर आपका बिजनेस प्लान के हिसाब से देखोगे तो आपको 1 साल से 3 साल का प्लान बना के पूरा करना पड़ता है, तब जाके आप सक्सेसफुल देते। तो कंपनी लाइक आयोटेक, एक मिनट, आयोटेक, जेरुडा, एस्केरिया, पारस, फिर ड्रोन डेस्टिनेशन, एनोस, मारू ड्रोन, जो भी मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन्स कंपनीज है, उसको इतना खर्चा आया है। यस सुंदर।
लाइक सर आप बोल रहे थे आपने भी कोई तो प्रोटोटाइप बनाया राइट? यस। तो अभी आपका सेट अप्रूव हुआ है कि इट्स इन द नहीं प्रोसेस नहीं ऑफ नहीं, गेटिंग? अभी अभी डिजाइनिंग टेस्टिंग फेज में है। अभी हम लोग दो ओके ड्रोन ओके बना रहे हैं, मैं दो कंपनी के लिए एसोसिएटेड हूँ। एक मुंबई बेस्ड ओके कंपनी है जो सर्वेलेंस का काम करती है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग, दे आर इनटू प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सर्वेलेंस ड्रोन। ओके, तो ओके स्मॉल क्लास पे हम ड्रोन बना रहे हैं, क्वाडकॉप्टर। ओके, इसके ऊपर आरजीबी कैमरा और थर्मल सेंसर्स लगे हैं, एंड फ्यूचर में हम लोग उस पर लाइडर भी लगाने वाले हैं। तो ये हमारा प्लान है। तो उसका हमने अगर डिजाइन और मटेरियल प्रोक्योरमेंट चल रहा है, वो फेज में है। और दूसरा एक ड्रोन ओके है, राजस्थान का कंपनी है, वेयर आई एम एक्चुअली एसोसिएटेड फॉर डेवलपिंग अ कार्गो ड्रोन। ओके, ओके कार्गो बड़ा ड्रोन है, इट इज एक्चुअली अ वीटॉल ड्रोन, यानी कि वो टेक ऑफ करेगा वर्टिकली और फ्लाई करेगा एज एरोप्लेन। ओके, सो हाइब्रिड ओके ड्रोन है। वो हम लोग डिजाइन, अभी अभी वो डिजाइन फेज पे ही है, मतलब डिजाइन रेडी हुआ, अभी डिजाइन का स्ट्रेस टेस्टिंग का प्रोसेस अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन वो चालू होगा अभी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। ये एक्सपेंसिव रहेगा ना कार्गो ड्रोन? कार्गो ड्रोन भी है, दिस इज फॉर बिगर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एग्जैक्टली। एक्चुअली हम लोग डिलीवरी और डिफेंस के लिए डिजाइन करते हैं। ओके, सो देयर इज वेयर आई एम इन्वॉल्व। ओके, सो ओके मैं आपको गुड टू नो। पिक्चर शेयर करता हूँ sometime हाँ later, both the drones के प्रोटोटाइप। आप I want to know that what the one in the market there are few drones which are customizable, where you customize the drone and you put the GoPro camera like a FPV. So how about that? So those are not type certified drones. Okay. First of Okay, all, those drones are just normal drones. They are not type certified drones. Ideally क्या है ना, एक्चुअली देखा है तो क्या डेफिनेशन है, देखो पहला ही लाइन क्या बोलता है, नो पर्सन शैल ऑपरेट okay, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट unmanned aircraft. सिस्टम अनलेस सच अनमैन्ड सिस्टम कंफर्म्स टू टाइप सर्टिफिकेट। तो जो भी आप ड्रोन्स बोल रहे हो ना, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट टाइप सर्टिफाइड, दे आर नॉट सपोज टू बी ऑपरेटेड। Operated. बट Okay, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, और इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ अ टाइप सर्टिफिकेट अंडर दिस रूल। यानी ये रूल के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए हैं, where you don't require to be type certified, but still you can fly there. okay. You're not audible, sir. Okay, okay. Yeah, I am saying टाइप सर्टिफिकेट जरूरी है, कंपलसरी। इसीलिए हम लोग आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो कौन से ड्रोन पे कर रहे हैं? टाइप type सर्टिफिकेट। certified. स्मॉल Right. ट्रेनिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आर ओनली ऑथराइज्ड टू ट्रेन यू ऑन अ टाइप सर्टिफाइड ड्रोन। नहीं तो Understood. मैं कोई भी छोटा मोटा टीजीआई का ड्रोन लेके आता था और आपको उस पर ट्रेनिंग देता था, या फिर Hmm. उससे भी सस्ता टॉय ड्रोन मिलता है 10,000 रुपए में, और मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के आपको ट्रेनिंग करवाता था। नहीं पॉसिबल, बिकॉज मेरा को ऑथराइजेशन ही नहीं करता था टीसीसी। टीसीसी क्लियरली बोलता है कि तुमको ट्रेनिंग देना है तो तुमको टाइप, तो ट्रेनिंग के टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स भी है, छोटे ड्रोन्स जो ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं। बट हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वी विल नॉट यूज स्मॉल ट्रेनिंग ड्रोन, बिकॉज ट्रेनिंग ड्रोन इज लाइक अगेन वेरी स्मॉल ड्रोन, उसमें आपको फीलिंग नहीं आएगा, या आपको वो जो कॉन्फिडेंस या Confident. जो Right. एक्सपीरियंस चाहिए फ्लाइंग करने का, जो आप पायलट बन रहे हो। अगर मैंने आपको एक छोटा सा एरोप्लेन में बिठाया और उसमें मतलब आपको इतना जैसे आप मारुति 800 ड्राइव करते हो या ऑल्टो ड्राइव करते हो, तो आपको इतना फीलिंग नहीं आता है कार ड्राइव करने का। लेकिन जब आप इनोवा ड्राइव करोगे, एक्टिवा ड्राइव करोगे, फॉर्च्यूनर ड्राइव रेंज करोगे, रोवर। जो फील आता है आपको ड्राइविंग का, सेम एक्सपीरियंस आपको ड्रोन में आता है। बट देयर आर एफपीवी ड्रोन्स, जैसे अभी पार्थ ने एग्जांपल दिया, देयर आर एफपीवी ड्रोन्स जिसमें गिम्बल लगा हुआ रहता है, जिसमें आप कैमरास लगा सकते हो, अलग अलग गोप्रो लगा सकते हो, अलग अलग मॉड्यूल लगा Action सकते cameras. Right. हो। तो दोज आर कस्टमाइजेबल ड्रोन, बट दे आर नॉट टाइप सर्टिफाइड ड्रोन। Okay. अगेन वो अभी कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं वो देखना पड़ेगा। बेस्ड सर ऑन वन दैट, based on that the rule will be applicable। yes, okay. like now Parth is asking for GoPro camera, right? He's into videography. Correct. Hello. Go ahead, go ahead, So go ahead. like is like legally, if you want to fly in Mumbai, is it okay to fly without this type certification, or it's not illegal to fly? That is my question. Okay, the answer, I am just giving you a very simple answer. Legally you are not allowed to fly in Mumbai। Okay. Okay, No, I am just making clear. Like in future, like there are a lot of opportunities. I'm coming. That Yeah, I am giving you very simple, small, blunt answer.
लीगली यू आर नॉट अलाउड टू फ्लाई इन मुंबई. फिर आप पूछोगे कि अरे लीगली Okay. अलाउड नहीं है तो मैं फ्लाई कैसे करूँ, राइट? विल कम टू दैट टॉपिक. अप्रूवल कैसे लेना है, कहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं फ्लाई कर सकते, फ्लाई करना. तो सिंपल आंसर इज यू कैन नॉट फ्लाई इन मुंबई. आउटसाइड Yeah. मुंबई यस यू कैन फ्लाई, बट अगेन वहां पे भी Yeah. रेस्ट्रिक्शंस है. ग्रीन जोन का मतलब नहीं कि आप बिंदास कहीं पे भी फ्लाई किधर भी कर चल. सकते. हाँ, Exactly. नहीं है. तो देयर आर सर्टेन, सो आई विल गिव यू सिनेरियोस. ओके, जस्ट होल्ड, वेट फॉर सम टाइम. ओके, तो Okay. ये टाइप Okay. सर्टिफिकेशन का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, Hmm. राइट? तो आपको Yeah. ड्रोन मैन्युफैक्चर करना है तो आपको टाइप सर्टिफिकेशन में जाना पड़ेगा. एज ऑफ नाउ यू आर गेटिंग ट्रेन फॉर पायलट. तो आपको ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू. ओके, so Yeah. any person who intend to obtain the type certification shall make a application in form D1 on Digital Sky platform along with the fees specified in Rule 46. Okay, on the following particulars of applicant, details required, document in respect to prototype US as specified, prototype physically handed over to authorized testing entity. और क्या बोल रहा है, within 60 days from the date of receipt of application. यानी कि टेस्टिंग बॉडी क्या करेगी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करेगी विद इन 60 डेज. ऑन बेसिस ऑफ टेस्ट रिपोर्ट along with the recommendation from Director General Civil Aviation will issue a type certificate for a specific type of unmanned aircraft system within 15 days. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये पूरा ये स्लाइड में, और ये सेम वर्ड्स आपको ड्रोन रूल्स 2021 में मिलेंगे. ओके, तो ये आपको रीड करना है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग to become a pilot you just need to follow two documents. One is the drone rules 2021 का document, और जो मैं आपको समरी शीट दूंगा. ये दो डॉक्यूमेंट आपको फॉलो करना. ठीक है, ये अपने को आएगा ना शाम को सर इसमें लाइक. जैसे सेशन खत्म होगा इवनिंग में आपको मिल जाएगा. ओके. ठीक है. Now what is the acceptance on the basis of approval granted by the types unmanned aircraft system contracting states. यानी कोई भी कंट्री में, इंडिया में अगर मैं अप्लाई करता हूँ, कुंदन अप्लाई करता है, पार्थ अप्लाई करता है, एनीबडी अप्लाई फॉर टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ ड्रोन, मेरा ड्रोन सब कुछ सेटिस्फाई करता है, आई विल गेट अ टाइप सर्टिफिकेशन. ओके, इंपोर्ट अगर मुझे कुछ इंपोर्ट करना है ड्रोन, तो इंपोर्ट करना है तो किससे मुझे परमिशन लेना पड़ेगा? दैट इज बीन रेगुलेटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. अगर मुझे कोई फॉरेन ड्रोन लाना है, प्रेडेटर ड्रोन लाना है, कैलेरन ड्रोन लाना है, DJI ड्रोन लाना है, कोई भी ड्रोन लाना है, एनी आउटसाइड ड्रोन, ओके, तो मुझे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी मैं ड्रोन ले सकता हूँ. अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि इंडिया में तो DJI ड्रोन बिक रहा है. सिंपल स्टेटमेंट है, इंडिया में DJI ड्रोन आर बैंड, ओके, ऑफ सेल, परचेस एंड एवरीथिंग, राइट. बट स्टिल इलीगली आपको अवेलेबल है. आप परचेस कर सकते हो, डिजिटल स्काई पे आप उसको रजिस्टर भी कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, तो आप अलाउड हो. बट अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे आप प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन अगर आप कहीं पे अट गए तो पहला आएगा कि आपका DJI ड्रोन है, तो आपका DJI ड्रोन कॉन्फिस्केट किया जाएगा. सिंपल. ओके, आप उसमें से बच सकते हो अगर आपने DJI ड्रोन को रजिस्टर किया रहेगा तो. ओके, अगर रजिस्टर किया है तो आपको वो रिटर्न मिल सकता है बाय पेइंग सम फाइन और समथिंग लाइक दैट. ओके, या सर्टेन घूस अंडर टेबल भी लोग लेते हैं और आपको दे देंगे. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑफलाइन. Then what are the exemption for getting the type certificate? Type certification किसको exempted है? मॉडल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम. यानी कि आप एरो मॉडलिंग कर रहे हो, मैं एवरी संडे एरो मॉडलिंग के लिए जाता हूँ, तो एरो मॉडलिंग के लिए मेरे पास एक एरो मॉडलिंग एरोप्लेन है छोटा, तो मैं उसको फ्लाई करता हूँ, तो उसको मुझे टाइप सर्टिफिकेट, मैं अपने फन के लिए फ्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज लेस देन 25 kg, आई एम फ्लाइंग अंडर VLOS कंडीशन. वो मेरा सब कैटेगरी क्या है? मॉडल आर पास में आ रहा है. ओके, मॉडल आर पास में है, तो इट इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम गेटिंग, बिकॉज मैं उसको अपने फन के लिए फ्लाई कर रहा हूँ, मेरे रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे हॉबी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. ओके, सो दैट इज बीन exempted फ्रॉम टाइप सर्टिफिकेट. आल्सो द नैनो ड्रोन्स, नैनो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम. नैनो मतलब क्या हुआ सर? वेट कितना वेट हुआ मेरा नैनो का? Less than 250 less than 250 grams. टू बी वेरी प्रिसाइज. आप देखो कोई भी नैनो ड्रोन देखोगे ना,
उसका कभी ऐसे नहीं लिखा रहेगा लेस देन 250, वो हमेशा लिखा रहेगा 249 ग्राम्स। आप कभी भी देखो नैनो ड्रोन जो रहेगा ना उसका कभी भी वेट है ना 249 ग्राम्स लिखा रहेगा, सो दैट आपका एम्बिगिटी नहीं है 250 है तो माइक्रो है या नैनो है, इससे अच्छा दे मेक इट 240, 1 ग्राम कम कर देते। So for example, DJI 3S is around 720 grams. So it, 724 ग्राम्स so it comes under micro, right? Micro. यस। लेकिन अगर DJI नैनो देखोगे, DJI फ्लिप देखोगे तो लेस देन 249 है और 249 ग्राम्स है, दे विल कम एज नैनो। Nano. इस ड्रोन Also, DJI Avatar 2, like, which is a FPV drone, which also comes under 249 ग्राम, जितना भी 249. 249 के नीचे है दे आर नैनो, Nano. यू डोंट रिक्वायर्ड टाइप सर्टिफिकेट। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं दूसरा बताता हूँ, टू फ्लाई अ नैनो ड्रोन यू डोंट रिक्वायर्ड लाइसेंस, यू डोंट रिक्वायर्ड पायलट लाइसेंस। Okay. दो एग्जाम्पशंस आपको पता चल गए, एक नैनो का क्लास वेट के हिसाब से 249 से लेस है तो मुझे टाइप सर्टिफिकेशन जरूरत नहीं है, इवन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है उसका, You can fly. यू कैन फ्लाई। ओके, बट नैनो में कुछ ड्रोन्स है जो अबव 50 मीटर्स 50 फीट हाइट के ऊपर फ्लाई होते हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ता। ओके, नहीं तो नैनो आर बीन exempted from type certification, nano are been exempted from registration, nano are been exempted from pilot license also। तो आप मतलब छोटे ड्रोन से मैनो माइनो माइनो देखो, अभी ये मेरे हाथ में देखो, ये नैनो है, see this? Yeah. Nano, This is the custom made, right? custom made, yes। Okay. बट नैनो में ये 250 249 से छोटा है। Yeah. Okay, मैं So ये घर में tomorrow if I buy, I fly this at home। okay. It's like a FPV, right? हाँ, FPV कैमरा के साथ है, आगे कैमरा Okay. की। Okay. सब फ्लाइट टाइम ज्यादा नहीं है, 5 मिनट है, 5 से 7 मिनट है। Okay. 5 से 7 मिनट बहुत टाइम है फ्लाई करने Yeah. Yeah. में। तो ये मैं घर में हॉल में फ्लाई करता हूँ या फिर गार्डन में फ्लाई कर सकता हूँ छोटा, क्योंकि ये 50 फीट के ऊपर नहीं जाता है, छोटा सा ड्रोन है। तो टेस्ट मेरे को ट्रेनिंग के लिए टेस्टिंग के लिए मैं यूज करता हूँ या बच्चों के लिए फन के लिए फ्लाई करता हूँ ऐसे। So if tomorrow if I buy, for example, a nano drone which is DJI Avatar 2 FPV drone, so I don't have to do all the बट registration. उसको आप मुंबई में फ्लाई नहीं कर सकते, Mumbai, yeah, obviously, any drone cannot fly in Mumbai. ये आप समझो। Understood. तो क्या सोचते हैं, अरे नैनो को तो एक्सेप्टेड है, No, no, नैनो no. को लाइसेंस भी नहीं चाहिए, Yeah. स्टिल नॉट एबल बिकॉज देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ जोन। Yes, yes, right. तो हम लोग आएंगे वो टॉपिक पे। Okay, so clear on the type certification and the exemptions and the import. Import is important. Director General of Foreign Trade, DGFT. DGFT can only give you the import license of the drone. अगर मैं बाहर से कोई ड्रोन लाना चाहता हूँ, जैसे कि बीच में मेरा एक स्टूडेंट है, he wanted to bring DJI Inspire और DJI 330, The big one. 30T, sorry, Third, DJI 30T, 30T. ये इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ड्रोन है, Enterprise. वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। Yeah. ठीक है, तो इसका कुछ 8.5 9 लाख रुपया कॉस्ट है। तो वो दुबई से लाना चाहते थे, तो लेकिन दुबई में तो सस्ता मिल रहा था लाने, बट इंडिया में लाने नहीं दिया, उनका कस्टम में कैप्चर कर लिया। फिर आई गेव देम अ सजेशन दैट आप वो डिटेल्स ले लो, वो ड्रोन को रजिस्टर करो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे एंड एवरीथिंग, एंड देन सबमिट दोस डॉक्यूमेंट, वो आपको ड्रोन देंगे। बट फिर भी उन्होंने अलाउ नहीं किया, उन्होंने बोला ये ड्रोन आपको वाया दुबई नहीं आ सकता है, आपको यूएस से लेके आना पड़ेगा। तो उन्होंने वो ड्रोन को दुबई से यूएस कुरियर किया और वहां से कुरियर से इंडिया लेके आए। ओके, सो देयर आर वे टू गेट द थिंग्स डन। ओके, तो ये सब चैलेंजेस है, थोड़े से कस्टम में चैलेंजेस है, कहीं कहीं पे कोई पूछता नहीं, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा पूछ लेता है, तो कस्टम्स इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल फॉर अस। बट एज सिंपल, आपको कस्टम में से ड्रोन लाने नहीं देते। ओके, until unless you have a proper document and you have proper justification for it, Connection. है ना, and connections also, all that things matters। Okay, so this is a different topic to talk and discuss all about it। Yeah, So coming back to type certification, these are the things। So अभी आप type certification ड्रोन बना रहे हो, आपने ड्रोन मैन्युफैक्चर करने का, तो कुछ मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स आपके ड्रोन में होने चाहिए जो ड्रोन रूल्स के हिसाब से बताया गया। तो देयर आर 3 mandatory safety precautions। One is no permission, no takeoff for hardware firmware। Okay, तो एक पिक्चर है
NPNT करके बोलते हैं, NPNT, दैट इज नो परमिशन नो टेक ऑफ। ओके, अभी ये जो फीचर है ना, कोई भी टाइप सर्टिफाइड ड्रोन में अवेलेबल नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा सेफ्टी फीचर है, आपका ड्रोन शुड ब्रॉडकास्ट अबाउट इट्स इंफॉर्मेशन, जैसे सिस्टम का लोकेशन, सिस्टम का डिटेल, सिस्टम का स्पीड, सिस्टम का अल्टीट्यूड, सिस्टम का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूआईएन नंबर, ये सब चीजें ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, तब जाके वो रडार पे डिटेक्ट होगा और आपको पता चलेगा ड्रोन आएगा। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई रडार ही नहीं है जहाँ पे हम ड्रोन डिटेक्ट करें, राइट? अगर ड्रोन रडार ही नहीं डिटेक्ट करने के लिए तो ड्रोन ब्रॉडकास्ट करके फायदा क्या करेगा? ये फीचर भी हमारे ड्रोन में अभी अवेलेबल नहीं है। ये रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन फीचर इज आल्सो नॉट एज ऑफ नाउ इम्प्लीमेंटेड इन टाइप सर्टिफाइड ड्रोन। ये भी 110 ड्रोन टाइप सर्टिफाइड है, उसमें ये पहले दो फीचर्स नहीं है एज ऑफ नाउ। So our drone rules 2021 says that these are mandatory features, but these are not implemented as of now by government of India. Okay, document में कहा गया है, okay, but not. Only the third feature, which is called geofencing capability, यानी आपका ड्रोन फ्लाई हो रहा है, उसके लिए आप एक वर्चुअल बाउंड्री बनाना चाहिए आपको। by let's say by 1 किलोमीटर by 1 किलोमीटर का मुझे एक सर्कल चाहिए, उसके अंदर ही मेरा ड्रोन फ्लाई होना चाहिए। That is called virtual boundary or geofencing. Okay, so that moment my drone try to go outside that boundary, it should trigger remote to home. That is called RTH, or remote to launch. That is called RPL. These are emergency protocols. ये प्रोटोकॉल ट्रिगर होना चाहिए और ड्रोन आपको वापस लैंडिंग पे या फिर लॉन्च लोकेशन पे आना चाहिए अपने आप। तो वो बाउंड्री के बाहर आपका ड्रोन फ्लाई नहीं होना चाहिए। That capability is called as geofencing capability. तो आपका ड्रोन should be having that feature. ये फीचर आपको enable करना आना चाहिए अपने ड्रोन में। ओके, वो ड्रोन में आपका जब भी अभी ये टाइप सर्टिफाइड ड्रोन बनते हैं तो OEM ये फीचर आपको सेटअप करके देता है ऑलरेडी geofencing। ओके, हाइट का भी लिमिटेशंस होता है और वर्चुअल बाउंड्री का भी लिमिटेशन होता है, तो उतने ही रेंज में आपका ड्रोन आप फ्लाई कर सकते हो। जितने भी टाइप सर्टिफाइड ड्रोन है उसमें जियो फेंसिंग ऑलरेडी OEM करके देता है आपको उसका एक्सेस नहीं दिया जाता है। दैट इज बीन गिवन ओनली एक्सेस बाय OEM एंड द ऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम द कंपनी। ओके, पायलट को भी एक्सेस दिया जाता नहीं है जब तक वो सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर या मास्टर पायलट है। ओके, सबको नहीं। अभी समझ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में समझो 10 पायलट है, तो मैं 10 के 10 पायलट को एक्सेस नहीं दूंगा जियो फेंसिंग चेंज करने का। ओके, आई विल गिव ओनली एक्सेस टू सर्टेन पायलट्स हु आर सर्टिफाइड, ऑथराइज्ड एंड ओल्ड टाइमर्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक दैट। या मे बी ऑपरेशनल्स गाय को मैं दे दूंगा, समथिंग एक्सेस। तो वो एक्सेस लिमिटेड लोगों को ही दिया जाता है। ओके, OEM stands for ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। आपका कोई भी कंपोनेंट बोला, कार हु इज OEM ऑफ मारुति सुजुकी इज OEM, राइट? या होंडा कार का होंडा इज OEM, लाइक दैट। सो जैसे DJI ड्रोन का OEM कौन है? DJI। अभी आप DJI ड्रोन जब खरीदते हो तो DJI ड्रोन में क्या आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है, तो आप उसमें आपका जिम्मेदारी एज अ ड्रोन पायलट टू सेट अप दी जियो फेंसिंग। ओके, आपका रिस्पांसिबिलिटी। तो ये सब फीचर्स आपको सेटअप करने चाहिए। अभी एक नया फीचर, अभी रिसेंटली DJI ड्रोन्स में एक नया फीचर आया है और ऑटो ब्रेकिंग। ऑटो ब्रेकिंग का मतलब है, पहले कैसा आप एक जियो फेंसिंग कैसा ना एक बड़ा बाउंड्री सेट किया होगा, बट अगर DJI के ड्रोन्स में अगर आप देखोगे देयर आर ऑब्स्टिकल सेंसर्स। अभी ड्रोन आपका फ्लाई हो रहा है और मेरे सामने आ रहा है तो आके मेरे को हिट कर सकता है, राइट? हिट करता है, बट दो इट इज डिटेक्टिंग द ऑब्स्टिकल, इट इज नॉट स्टॉपिंग। और अभी नया फीचर आया है ऑटो ब्रेकिंग। ऑटो ब्रेकिंग मतलब है क्या होता है, वो सेंसर से ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करता है। अगर उसने सेंसर से ऑब्स्टिकल डिटेक्ट किया ना, तो वो जाके उस ऑब्स्टिकल को हिट नहीं करेगा, वो रुकेगा। तो भी आपने उसमें डेफिनेशन किया रहेगा, 2 मीटर का डिस्टेंस पे रुकना चाहिए, 3 मीटर पे, 5 मीटर, व्हाटएवर डेफिनेशन, या 50 फीट पे रुकना चाहिए, 10 फीट पे रुकना चाहिए, 5 फीट पे रुकना चाहिए, व्हाटएवर डिफाइन यू किया है, ड्रोन तक जाएगा। आप जितना भी उसको पुश करोगे, पावर दोगे, तो भी वो ड्रोन आगे जाएगा नहीं, वो रुकेगा वहां पे, उसका क्रॉस नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड ऑटो ब्रेकिंग। ये सब
सेफ्टी फीचर्स अभी ड्रोन्स में आने चालू हो गए, जैसे जियो फेंसिंग कैपेबिलिटी था, ऑटो ब्रेकिंग फीचर अभी मैंडेट अभी कंपलसरी हो गया, डीजीआई ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया उनके ड्रोन्स में। अभी बाय डिफॉल्ट ड्रोन्स में ऑटो ब्रेकिंग फीचर अवेलेबल है, आप उसको सेटअप कर सकते हो। तो क्या होगा, आप अपने ड्रोन को बचा रहे हो और सामने वाले पार्टी को या फिर सामने वाले ह्यूमन लाइफ को या उसके प्रॉपर्टी को भी बचा रहे हो फ्रॉम गेटिंग डैमेज। समझो कोई ड्रोन कांच को जाके हिट कर लिया, मैं कांच क्लीनिंग कर रहा हूँ, right? I am using drone for cleaning the big high tower glasses. तो वो टाइम पे मैं जब वो स्प्रे करता हूँ तो मेरा ड्रोन कभी कभी हिट कर सकता है, क्लोज जा सकता है। तो वो अगर ऑटो ब्रेकिंग फीचर रखूंगा कि भाई मेरे को 3 मीटर मेरा दूर से मेरा ड्रोन फ्लाई होना चाहिए फ्रॉम द ग्लास विंडो, वो ग्लास विंडो तक ड्रोन जाएगा ही नहीं। वो अगर मैंने पुश भी दिया तो क्या होगा, ड्रोन विल कम बैक एंड लैंड हो जाएगा बिकॉज आई हैव ब्रीच्ड द सेफ्टी प्रोटोकॉल। Got it? So these are the Yes. mandatory features. Out of these 3 mandatory, only one is enabled as of now. Remaining 2 are not being made compulsory, but in due future it will come because अभी तक हमारे पास previous condition और UTM टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये 2 फीचर्स तो। इसलिए आप देखो कोई भी ड्रोन में ना रियल टाइम बीकन अवेलेबल नहीं है। ओके, वो फ्यूचर में आएगा बिकॉज उसके लिए एक अलग से मॉड्यूल आता है। इट्स एक्चुअली कॉस्ट लाख ऑफ रुपीज, जिसकी वजह से आपकी ड्रोन की कॉस्ट बढ़ सकती है, इसीलिए वो फीचर ही नहीं डाला है उन्होंने, वो मॉड्यूल ही नहीं डाला है। राइट, जैसे अभी अगर मैं जीपीएस चाहिए मेरे डिवाइस में, तो एक जीपीएस डिवाइस मेरे को मिनिमम 20,000 to 50,000 रुपीज आता है। अगर मैं 2 डीपीएस सेंसर्स लगाता हूँ तो मुझे कम से कम लाख रुपया खर्चा होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं जीपीएस एनेबल करता हूँ मेरे ड्रोन्स को, 2 लगाता हूँ, तो मेरे को लाख रुपया कॉस्ट ऑफ माई ड्रोन इंक्रीजेस, प्लस जीपीएस सर्विस का चार्ज लगेगा मुझे, तो मेरा कॉस्ट ऑफ ड्रोन विल इंक्रीज। इसीलिए बहुत सारे ड्रोन जो टॉय ड्रोन में जीपीएस नहीं होता है, बट अगर डीजीआई ड्रोन लो या फिर टाइप सर्टिफाइड ड्रोन लो उसमें जीपीएस रहेगा बिकॉज दैट इज अ मैंडेटरी फीचर। बिकॉज बिना जीपीएस आप जियो फेंसिंग एनेबल ही नहीं कर पाओगे, राइट? तो some features are required, some components are required, which is required, that's there, which is not as of now mandatory or not required, that is not there. That is how you reduce the cost of drone as of. But future में ये जब requirement आएगा तो लगेगा, that time maybe your cost of your drone may increase. जो आज 8 लाख रुपए का ड्रोन है हमको मिल रहा है एग्रीकल्चर, we may go up to 9 lakh rupees or 10 lakh rupees, okay, depending upon the features. ठीक है? Similarly, as I said, आपका ड्रोन टाइप सर्टिफाइड है, आपने कोई भी ड्रोन आप उड़ाना चाहते हो इंडिया में, तो फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर्ड ऑन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर ये ड्रोन है, अभी ये तो नैनो है, इसको मैंने रजिस्टर नहीं किया, बट इससे मेरे पास एक बड़ा ड्रोन है, ओके, जैसे फॉर एयर 3S है, तो एयर 3S आई हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड ऑन डीजीआई प्लेटफॉर्म, सो नॉट डीजीआई, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर मुझे उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। So no person shall operate US without obtaining a unique identification number. यानी कि आपको एक नंबर मिलता है, जो नंबर आपको ड्रोन पे लगाना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है। ओके, टाइप सर्टिफाइड ड्रोन पे वो मेटल प्लेट रहता है, फायर रिटार्डेंट मेटल प्लेट, उससे लगाना पड़ता है। यानी कि आपका ड्रोन जल भी गया तो भी नंबर प्लेट आपकी रहेगी वैसे की वैसे। ओके, तो फायर रिटार्डेंट मेटल प्लेट लगा हुआ रहता है। हम लोग जब फील्ड पे देखेंगे हमारे ड्रोन, I will show you our divine numbers and the metal plate के साथ. Okay, the registration record shall be maintained by director general. यानी कि आप जो भी ड्रोन रजिस्टर करोगे उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? DGCA. DGCA के पास पूरा मेंटेनेंस डिटेल्स रहेगी आपके ड्रोन के बारे में। यानी कि आप एक डॉक्यूमेंट बना के देना पड़ता है, which is called D2 form. Okay, so it is a responsibility of a person operating an unmanned aircraft system to ensure to that sure US conforms to a valid type certificate. तो मतलब ये थोड़ा सा मैंडेटरी किया है, बट इट इज नॉट 100% एप्लीकेबल, क्योंकि हम लोग डीजीआई ड्रोन्स की रजिस्टर करते हैं ड्रोन प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो क्या है इन सिंपल टर्म्स, UAN is license plate of your unmanned aircraft system. Nano drones weighing less than 250 grams can't fly above 50 grams. These are exempted. And US owned by armed forces are exempted from getting UAN number. यानी मेरा nano drone is exempted from getting UAN number. So I don't really required to register this drone. Okay. Also drones used by or owned by, used by and owned by, दो चीजें हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं।
ओन मतलब ओनर हो, खरीदे। ओनर। लेकिन देयर माइट बी अ ड्रोन, जैसे कि हम कुछ ड्रोन्स इजराइल से लिए हैं, राइट, दे आर लीज्ड, दे आर नॉट ओन्ड, दे आर लीज्ड। ओन। ओके, तो वो भी ड्रोन्स, बट दे आर यूज्ड बाय मिलिट्री, they are used by मिलिट्री। armed forces यानी military, navy and air forces, all these three organizations are exempted for getting UN numbers. ओके, आपका यूआईएन नंबर है तो आपको उसको आइडेंटिफाई और विजिबल मैनर में दिखना चाहिए, तो उसमें लगाना चाहिए। जैसे अभी देखो यहाँ पर फैंटम ड्रोन है, उसके ऊपर हमने स्टिकर बना के लगा दिया, राइट, बिकॉज फैंटम ड्रोन इज इन माइक्रो कैटेगरी, माइक्रो क्लास में आता है। यूआईएन कैन बी ग्रांटेड ओनली टू, अभी यूआईएन कौन ले सकता है? ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे अभी ब्रिटिश ऑफिसर आ गया, इसराइल वाला आ गया, वो यूआईएन नहीं ले सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इंडियन कंपनीज विद 2/3 इंडियन डायरेक्टर्स। तो क्या किया इसराइल और इंडिया का कंपनी, इंडिया का कौन सा कंपनी इसराइल के साथ एसोसिएटेड है? अडानी। तो अडानी एंड इसराइल हैज फॉर्म्ड अ कंपनी and they have registered a company where they have 2/3 Indian directors and 1/3 Israeli directors. They can make an application and get the UI number. तो उन्होंने टेम्पररी उनको यूआईएन नंबर दिया। जब उनका लीज खत्म होएगा, they will deregister those two. डिपेंडिंग अपॉन क्या, इधर उन्होंने अगर इंडिया को दे दिया है तो वो कंटिन्यू करेंगे, अगर इंडिया से कंटिन्यू नहीं कर रहे और ड्रोन वापस लेके जा रहे हैं तो उनको डीरजिस्टर करके लेके जाना पड़ेगा। ओके, that company has to take. So central government, state government entities, foreign entities leasing the unmanned aircraft to above, है ना, एक इसराइल का एग्जांपल किया मैंने, या फिर यूएस गवर्नमेंट ने अपने को कुछ ड्रोन लीज पे भी दिए, प्रेडेटर ड्रोन्स, तो उनको भी हम कर सकते हैं। बट सिंस दे आर कमिंग अंडर डिफेंस, उनको यूएन नंबर की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, जैसा अभी मेरा कंपनी है, मैंने अगर कुछ कंपनी के साथ टाई अप किया है, यूरोपियन कंपनी के साथ, एक कंपनी है विंट्रा करके, ओके, यूरोपियन कंट्री मेक्स हाइब्रिड ड्रोन्स, उनके साथ हमने टाई अप किया है और उनके ड्रोन हम टेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, इंडियन टेरेन कंडीशंस। तो वो टेम्पररी जो 6 महीने का पायलट टेस्टिंग चल रहा था, तभी हमको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था। तो वी डिड दैट पॉइंट इन टाइम। जब टेस्टिंग कंप्लीट हो गया और ड्रोन वापस लेके गए, हमने ड्रोन को रजिस्टर कर दिया। ओके, अगर मुझे रजिस्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू फिल अ D2 फॉर्म, और फीस है इसका 100 रुपीज। तो उसमें मुझे सारा मेरा डिटेल्स, मेरा ड्रोन का डिटेल्स, ड्रोन के ऊपर के, नीचे के, बैक साइड के, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अबाव, बिलो, ऑल सॉर्ट ऑफ ऑल एंगल्स के फोटोग्राफ्स मुझे सबमिट करने पड़ते हैं, तब जाके मुझे DGCI UI नंबर दिखता है। तो फी फॉर D2 इज ओनली 100 रुपीज एंड D2 फॉर्म भरना है, तो मैं अपने ड्रोन को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकता हूँ। इट इज अ सिंपल 1 डे एक्टिविटी, दैट्स इट। एक दिन में आपका ड्रोन रजिस्टर हो जाता है और आपको यूआईएन नंबर मिल जाता है। आपको यूआईएन नंबर मिला, आप उसको रजिस्टर कर लो, ठीक है। अगर आपके पास DJI ड्रोन है तो भी रजिस्टर कर सकते हो, और कोई थर्ड पार्टी कंपनी का ड्रोन है, जैसा स्काईडियो का है, होटल का है, टेरियन का है, एनी थर्ड पार्टी ड्रोन है, आप उसको रजिस्टर कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ द ड्रोन। क्योंकि क्या, देखो लास्ट लाइन पढ़ो, no person shall replace the flight control module or remote pilot station of an unmanned aircraft system whose serial number is linked to such UAN। यानी आपने ये ड्रोन रजिस्टर किया, इसके साथ आपका रिमोट कंट्रोल भी है, ये उसके साथ लिंक्ड है, तो आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ये बाइंड हो जाएगा, ये एक वन यूनिट हो जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज UAV, इट इज कॉल्ड एज UAS। एस मतलब सिस्टम है, सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है आपका, ड्रोन प्लस रिमोट प्लस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, पायलट, ये सब चीजें मिला के एक सिस्टम बन जाता है। ओके, सो आपका फ्लाइट कंट्रोलर, ये ड्रोन के अंदर एक फ्लाइट कंट्रोल है, सर्किट है अंदर, फ्लाइट कंट्रोलर जिसको बोलते हैं, वो उसका भी सीरियल नंबर उसमें आपको एंट्री करना पड़ता है। तो यू कैन नॉट चेंज, कल जाके आपका ड्रोन क्रैश हो गया, फॉर्मेट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, आपको रिमोट कंट्रोल चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको फ्लाइट कंट्रोलर चेंज करना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये सब चीजें बाइंडेड है। इन दैट सिनेरियो यू नीड टू डीरजिस्टर योर ड्रोन, change the components and re-register back the drone. Okay, yes Parth, you have a question? Yeah, so whenever if I buy the DJI 3S, if I buy a drone, so I have to fill this form, right? Form Yes, D2. D2 फॉर्म, D2 फॉर्म Okay. भर के आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो।
Okay. कि आपके पास कहीं भी जाओगे ना तो एक तो आप सर्टिफाइड पायलट हो पहली बात, दूसरा बात आपका लाइट आपका ड्रोन भी सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कोई भी लॉ एनफोर्समेंट बॉडी आपको ड्रोन पे कॉन्फिस्केट नहीं कर सकता है, या मतलब ये नहीं मतलब कॉन्फिस्केट करेगा क्योंकि अगर आपने इलीगल फ्लाई किया है, Yeah. अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स वैलिड है ना तो वो आपको ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे और अगर आपका सब क्लियर है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे आपके पास फ्लाइंग का परमिशन भी रहेगा, आप पायलट भी हो और आपका ड्रोन भी रजिस्टर्ड है, तो आप सारे सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस और फॉलो कर रहे हो। क्लियर? Okay. Okay, so you and shall be linked to unique manufacturer, यानी कि ड्रोन का सीरियल नंबर भी होता है, हर कंपनी जब मैन्युफैक्चर करती है उसका एक सीरियल नंबर रहता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर रहता है, उसके साथ लिंक रहता है। जैसे हमारा लाइसेंस जो रहता है या हमारा गाड़ी का पेपर्स जो रहता है वो क्या रहता है, गाड़ी का चेसी के नंबर, इंजन का नंबर के साथ लिंक रहता है, राइट? क्योंकि हमारा 15 साल होता है, अगर हमको ग्रीन टैक्स के लिए हमको अप्लाई करना है तो वो सब चीजें और तब जाके हमको रिन्यूअल मिलता है 5 साल के लिए। सिमिलरली हमारा ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोल या फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर, इनके साथ सब लिंक रहता है। यूआई नंबर जो गाड़ी का जो नंबर प्लेट नंबर है इज लिंक टू कार मॉडल, लिंक टू कार बॉडी, कार कलर, कार मेक, मॉडल, इंजन नंबर, चैसी नंबर, ऑल दैट थिंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? क्लियर? तो आपको D2 फॉर्म भरना है विद 100 रुपीज एंड विद इन 1 डे यू विल गेट यूआई नंबर रजिस्टर। ठीक है? सिमिलरली कोई सिनेरियो में आपका जैसा मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, कुंदन मैन्युफैक्चर है एंड ही इज सेलिंग अ ड्रोन टू पार्क, जब कुंदन मैन्युफैक्चर करता है तब उसने ड्रोन रजिस्टर किया तो एक यूआई नंबर आया, बट फ्यूचर में ड्रोन इज नॉट बीइंग केप्ट बाय कुंदन बिकॉज़ कुंदन इज अ मैन्युफैक्चरर, ही वांट टू सेल द ड्रोन टू पार्क, अभी पार्क पे उसको परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया, नाउ हु इज द ओनर ऑफ द ड्रोन? पार्क। हाँ। पार्क को अभी वो ड्रोन ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आपको ड्रोन का यूआई नंबर ट्रांसफर करना है। जैसे अभी हमारा एंटरप्राइज ड्रोन जो है हम लोग ट्रेनिंग के लिए जो यूज करते हैं, दैट वाज बिलोंगिंग टू कंपनी कॉल्ड आयोटेक एविगेशन। ओके, दैट कंपनी पे देता है तो यूआई नंबर उनको बिलोंग करता है। जब मैंने परचेस किया, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब ने जब ड्रोन परचेस किए, परचेस कंप्लीट हुआ, तो क्या किया आयोटेक की कंपनी ने वो ड्रोन को ट्रांसफर कर दिया ऑन आवर नेम, यूआई नंबर गॉट ट्रांसफर्ड। So the person may transfer an unmanned aircraft system to another person by way of sale, a lease, gift or any other mode after providing requisite details of transfer, transferee and UI number on unmanned aircraft system form D3 on digital sky platform along with the fee specified in rule number 46। यानी कुंदन आइदर सेल कर सकता है या लीज पे दे सकता है या फिर गिफ्ट भी दे सकता है, whatever it is, whatever transaction he does, end of the day who is person who is actually owning that drone, उसके नाम पे यूआई नंबर होना चाहिए। जैसे आपने कार खरीदा तो मारुति जब कार बनाती है तो तभी वो लोग रजिस्टर नहीं, देखो तभी कार रजिस्टर्ड नहीं रहता है, उस पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, बट जब आप कार फर्स्ट टाइम खरीदते हो तो आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपका जो नंबर प्लेट है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होता है। बट वो कार अगर आप किसी सेकंड पर्सन को सेल करते हो, सेकंड हैंड सेल करते हो, तो सपोज एक्स पर्सन को सेल करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आरटीओ में जाके उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, यानी कि वो कार अभी doesn't belongs to कुंदन, it belongs to पार्क। अगर एक्सीडेंट करता है तो कुंदन को नहीं पकड़ना चाहिए, पार्क को पकड़ना चाहिए, बिकॉज लीगली हु इज द ओनर? पार्क। तो सिमिलरली ड्रोन में भी यही एप्लीकेबल है कि ड्रोन जब हु इज पर्सन फ्लाइंग, यानी अभी अभी देखो मैं फ्लाई कर रहा हूँ बट आई एम नॉट ओनिंग द ड्रोन, हु इज ओनिंग द ड्रोन? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इज ओनिंग द ड्रोन, तो वो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब के नाम पे। लेकिन अगर मैं ओनर होता तो शायद मेरे नाम पे मैं ट्रांसफर करके लेता एज अ इंडिविजुअल, so depending upon scenario it could be a company or it could be individual also, तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए कौन सा फॉर्म है? इन सम सिनेरियो आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, आपका ड्रोन लॉस्ट हो जाता है, पानी में गिर गया, समुद्र में गिर गया, नदी में गिर गया, विच इज बियॉन्ड रिकवरेबल, या फिर आपका ड्रोन क्रैश हो गया, फूट गया, बियॉन्ड फ्लाइंग कंडीशन, अभी रिकवरेबल ही नहीं है, मतलब वो ड्रोन का कुछ काम ही नहीं है, पड़ा है, वेस्ट है, तो वो ड्रोन को मेरे को डी रजिस्टर करना पड़ेगा। आई नीड टू डी रजिस्टर। कभी कभी क्या होता है कि ड्रोन खराब हो गया, उसके आर्म्स टूट गए,
उसका रिमोट कंट्रोलर खराब हो गया, टूट गया, या फिर ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर मदरबोर्ड खराब हो गया, मेरे को नया डाला, इन दैट सीनरियो क्या करेगा वो ड्रोन, मेरे को कोई मतलब काम का नहीं है। आई मे रिपेयर इट, बट रिपेयर करेगा तो मुझे नया फ्लाइट कंट्रोलर डालना पड़ेगा, नया प्रोपेलर डालने पड़ेंगे, नया कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, व्हाटएवर इट इज। पुराने में से मैं सर्टेन कंपोनेंट्स यूज कर पाऊंगा, सर्टेन कंपोनेंट्स आई कैन नॉट। दैट मींस माय एग्जिस्टिंग ड्रोन इज ऑफ नो यूज, अनरिकवरेबल है, राइट? तो इन दैट सिनेरियो आई शुड ऑलवेज डीरेजिस्टर दैट ड्रोन। ओके, डीरेजिस्टर करो, तो डीरेजिस्टर करने के लिए भी डी फॉर्म ही यूज होता है। ओके, उसमें आपको एक कैटेगरी है, देखो नीचे नेम ऑफ ट्रांजैक्शन है, देखो लास्ट में, आइदर इट इज ट्रांसफर और डीरेजिस्ट्रेशन, तो दोनों में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली द डीपीसीए विल टेक अ रिक्वायरमेंट, और वो एक नंबर जनरेट करके देते हैं, तो आपके पास वो एक कॉपी रहेगा कि भाई मैंने मेरा ड्रोन डीरेजिस्टर किया है, यानी कि वो यूआईएन नंबर वाला यूज कर देते हैं। जैसे कोई कोई लोग नंबर प्लेट यूज करते हैं, गलत नंबर प्लेट यूज करते हैं कार में और क्राइम करते हैं ऑल दैट, तो आप अगर आपका ड्रोन क्रैश हुआ है या अनरिकवेबल है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप दिखा सकते हो, भाई ये मेरा डीरजिस्टर्ड है, तो ये ड्रोन मैं फ्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? यस कुंदन। वही पूछने का था, लाइक एप्लीकेशन और अपना लाइक अब मैं किसको लिस्ट पे दे रहा हूँ तो भी D3 फॉर्म यूज करना है और डी रजिस्टर को भी D3 करना है। करेक्ट, बट उसमें देखो नीचे 12 नंबर कॉलम में देखो, रो में सॉरी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन करके लिखा हुआ है, उसमें ट्रांसफर या डीरजिस्ट्रेशन। अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर में एक्टिव कर रहा है, अगर डीरजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो डीरजिस्ट्रेशन, अकॉर्डिंगली वो आईडी जनरेट होता है। जो नीचे लिखा है ना लास्ट लाइन देखो, रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय डायरेक्टर जनरल एंड ट्रांजैक्शन नंबर शैल बी जनरेटेड ऑन द डिजिटल सर्वर। यानी ये ट्रांजैक्शन नंबर आपको लेना है कि मैंने ड्रोन को ट्रांसफर किया या फिर ड्रोन को डीरजिस्टर किया, वो एक ट्रांजैक्शन नंबर रहता है, वो आपको सेव करके रखना है फ्यूचर के लिए, लाइक फॉर सेफ्टी। ठीक है? तो these were three forms, D1 for tax certification, D2 for registration, D3 for transfer and deregistration। तीनों का फीस है 100 रुपीज। तो रूल नंबर 46 इज अबाउट फीस। फीस कितना है तीनों का? D1, D2, D3 100 रुपीज ओनली। ठीक है? सो क्लियर ऑन द थ्री फॉर्म्स? यस सर। D3 is for deregistration, right? ट्रांसफर एंड डीरजिस्ट्रेशन। ठीक है? क्लियर? या D1 is for sir टाइप सर्टिफिकेशन, टाइप सर्टिफिकेशन। type D2 is certification for registration, UI number। okay। The important topic, this is the most important topic of your operations of drones। देखो यहाँ पे अभी कैसा है ना, आपका ड्रोन एक पर्टिकुलर लोकेशन को कंसीडर करके आपका जोन्स डिफाइन किए, तो वी ऑलवेज कंसीडर हाई सिक्योरिटी एरिया। नाउ व्हाट कुड बी द हाई सिक्योरिटी एरिया? इट कैन बी एयरपोर्ट, इट कुड बी डिफेंस लोकेशंस, it could be some important government buildings or infrastructure, it could be nuclear facilities, BRC facilities, है ना, या फिर medical facilities, या फिर temples, right? कुछ important temples है, पारसी टेम्पल है, सिद्धिविनायक टेम्पल है, शाही शिरडी टेम्पल है, फिर मदुरई का टेम्पल है, तिरुपति टेम्पल है ना, अमृतसर का टेम्पल है। All these temples, Gurudwara, all these locations are highly security और secure area और restricted zone। आपका पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, these are all high security area और मंत्रालय, these are all restricted area। हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जोन्स के लिए हम लोग एयरपोर्ट एज अ एग्जांपल लेते हैं एज ऑफ नाउ टू अंडरस्टैंड द जोन्स। ओके, तो एयरपोर्ट इज अ हाई सिक्योरिटी एरिया। तो आपका ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे इसके ऊपर लैंडिंग स्ट्रिप रहेगा या रनवे रहेगा आपका, राइट? रनवे, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का एरिया और उसका एक बाउंड्री रहेगा which we call as a perimeter। That is a high security area। So that high security area is always called as red zone। यानी पार्लियामेंट भी बाउंड्री है, पार्लियामेंट हाउस है उसके बाजू में बाउंड्री है, that area is red zone। राष्ट्रपति भवन बंगलो है बड़ा, उसको बाउंड्री है, आई थिंक ऑल्सो रेड जोन। तो वो रेड जोन कितना बड़ा है, बाउंड्री उसका या पेरिमीटर से भी बड़ा जोन। बाउंड्री से यहाँ पे देखिए
Sir, voice crack or voice is breaking. From the perimeter or the boundary up to 5 kilometers. You see here written 5 kilometer. Up to 5 kilometer is your red zone. यानी Red zone. आपका एयरपोर्ट का बाउंड्री से 5 किलोमीटर, बाउंड्री से 5 किलोमीटर 5 kilometer. is your red zone. Red zone. From 5 kilometers, another 3 kilometers is your inner yellow zone. देखो यहाँ पे 3 किलोमीटर लिखा हुआ है, राइट? From 5 kilometers till another 3 kilometers, यानी 5 kilometers to 8 kilometers is your inner yellow zone. Clear? From 8 kilometers, another 4 kilometers, there is something called outer yellow zone. But outer yellow zone दो सेगमेंट में डिवाइडेड है. एक है आउटर येलो जोन में, दैट इज फ्रॉम 8 किलोमीटर्स टू 12 किलोमीटर्स. इसमें 200 फीट तक इज कॉल्ड एज ग्रीन जोन. ओके, सो इन अ आउटर येलो जोन यू हैव अ ग्रीन जोन which has a restriction of altitude up to 200 feet. कितना? 200 feet तक. 200 feet. About 200 feet up to 400 feet is called outer yellow zone. क्या बोला जाता है? From 200 feet to about 200 feet up to 400 feet is called outer yellow zone. Okay? From 12 kilometers and beyond, 12 kilometers and beyond, यहाँ पे देखो ये पॉइंट पे. ओके, ये 12 किलोमीटर हुआ, राइट? 5 plus 3 is 8, 8 plus 4 is 12. तो यहाँ पे आपका 12 किलोमीटर हुआ. तो यहाँ से क्या चालू हुआ आपका? ग्रीन जोन. तो ये पूरा ग्रीन जोन है. तो बियॉन्ड फ्रॉम योर एयरपोर्ट 12 किलोमीटर का जो डायमीटर बच जाता है, उसके बाद आपका ग्रीन जोन चालू हो जाता है. बट वो ग्रीन जोन का लिमिटेशन क्या है? हाइट का. वो कहाँ तक? 200 feet. 200 feet. You can fly only up to 400 feet. उसके ऊपर आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? What is above the green zone? Is yellow zone. Yellow zone. सभी जगह पे येलो जोन है. एक्चुअली देखा जाए तो पूरा एयर स्पेस इज येलो जोन. ओके, तो एयर येलो जोन के अंदर आपने जोन बनाया है ग्रीन जोन, विच इज फ्रॉम द एयरपोर्ट 12 किलोमीटर्स. हाइट कितना है? लिमिटेशन 400 फीट. 400 फीट के ऊपर आप ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते. विद इन 400 फीट आपको ड्रोन फ्लाई करना परमिसेबल है इन ग्रीन जोन. अगर 400 फीट के ऊपर फ्लाई करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा. ओके, तो येलो जोन में अगर आपको फ्लाई करना है तो आपको एटीसी का अप्रूवल लेना पड़ता है. किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? ATC. येलो जोन, either it is inner yellow zone or outer yellow zone, you are want to fly, you have to take a permission of ATC. ATC है क्या? Air traffic controller. Air traffic. They are monitoring this place, क्योंकि येलो जोन में आपके कमर्शियल सिविल एयरलाइंस फ्लाई करते हैं. तो उस जोन में अगर आपको ड्रोन फ्लाई करना है तो आपको परमिशन पहले लेना पड़ेगा. इसके बिना आप ड्रोन फ्लाई नहीं लेते. और सीधा आपको ऑफेंस है, आपको सीधा जेल हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी. ओके, एंड ये जो पेनल्टीज और जेल जो होता है ना, ये नॉन बेलेबल है. तो इट इज कॉल्ड नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. यानी इसमें आपकी बेल नहीं होती है, आपको सीधा कोर्ट में सबमिट किया जाता है. आपको मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाता है और आपको प्रूव करना है कि आप गिल्टी नहीं हो. अगर आप नहीं प्रूव कर पाए आप गिल्टी नहीं हो तो आपको जेल हो गई, पेनल्टी लगेगी 101%. ओके, तो इतना स्ट्रिक्ट रूल है ड्रोन का. तो कहीं पे भी ड्रोन विद इन सिटी फ्लाई करने का कोशिश मत करो. अंडरस्टैंड? अगर नहीं क्लियरिटी है, ऑलवेज रीच आउट टू योर गाइड, ऑलवेज रीच आउट टू योर इंस्ट्रक्टर, मेंटर, whosoever it is, जिससे आप आपको प्रॉपर गाइडेंस, एक या दो, whosoever it is. हाँ, आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर आपकी कंपनी में आपके इंस्ट्रक्टर्स होंगे, गाइड होंगे, ऑपरेशन हेड होगा, या फिर आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हो और आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, या फिर आपके आपके और भी कॉन्टैक्ट्स बनेंगे तो आप उनको भी रीच आउट करो. ठीक है, क्या बात? If I am flying on a land which is under construction, so we have a site, which we use it for building. एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आपका क्वेरी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं.
मीरा रोड में नया बिल्डिंग बन रहा है. ओके. मीरा रोड इज ऑलमोस्ट ग्रीन जोन भी हो सकता है, नहीं भी है. ओके, बाउंड्री पे समझ लो. अभी वो विद इन सिटी लिमिट है, रेसिडेंशियल एरिया है, बिल्डिंग बन रहा है. वहां पे आपको पहला तो नो नो है. रूल क्या बोलता है? नो. नो. क्योंकि वो रेड या येलो जोन में आएगा. ग्रीन जोन में भी आएगा तो भी रेसिडेंशियल एरिया है. रेसिडेंशियल एरिया में पहला तो नो है अप्लाई करने का. इन दैट सिनेरियो यू हैव टू अप्लाई एप्लीकेशन टू लोकल पुलिस फर्स्ट. ओके. भाई मेरा ड्रोन मैं सर्टिफाइड पायलट हूँ. मेरा ड्रोन रजिस्टर्ड है. so and so details of my drone is there. I need to fly in my area or my customer's area. I have authorization for customer for flying the drone. Please provide your police clear. ओके. तो वो आपको कंसीडर करके ओके बोलेंगे. सर यू आर नॉट ऑडिबल सर. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो आपको लिखित में कुछ नहीं देंगे. They will just say go ahead and do it. ओके. You are responsible. कुछ गलती नहीं होना चाहिए. अगर कुछ इश्यू हुआ you are responsible. अंडरस्टूड. आप जो बोल रहे हो वो दायरे में अप्लाई करो. No problem. And if the land is in the green zone, so our one site is in here in Gujarat, Kevadia. So if it's a green zone, I can fly there, right? Or do I have to again? You can fly. मैं और examples देता हूँ. आपको clarity है. Just wait for. I'll take that scenario also. Okay, आप फ्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए भी क्या करना है मैं बताता हूँ. आप समझो अंडरस्टैंड करो. पहले लेट्स अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज ऑफ द जोन, देन आई विल कम टू अप्रूवल. ओके, तो मैंने क्या बोला, ग्रीन जोन में आप फ्लाई कर सकते हो विदाउट एनी रिक्वायरमेंट. बट ऐसा नहीं, अभी मेरा रिसोर्ट है, मेरा जमीन है, कोई भी आके ड्रोन उड़ा सकता है? नहीं. मेरा फार्म है, नहीं उड़ा सकता है. डैम है, फॉरेस्ट एरिया है, उड़ा सकते हो ग्रीन जोन में? नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिशियल आ जाएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाला आ जाएगा. आप कोई फोर्ट पे, रायगढ़ पे चले गए, दौलताबाद फोर्ट पे चले गए, या फिर सपोज कोई ऐसा आर्कियोलॉजिकल लोकेशन है, अजंता एलोरा जैसा लोकेशन है, वहां पे आप फ्लाई करने जाओगे, आप नहीं फ्लाई कर सकते. वहां पे आपको रिलेवेंट बॉडीज का परमिशन लेना पड़ेगा. आप क्यों फ्लाई करना पड़ेगा? आपके पास अप्रूवल होगा तो ही. दो इट इज बिलोंगिंग टू ग्रीन जोन, still you need to say that area belongs to what, whether it is a completely unrestricted area. ऐसा कोई जगह नहीं है it is completely unrestricted. वो कोई ना कोई गवर्नमेंट या कोई ना कोई बॉडी आएगी, राइट. फॉरेस्ट में आएगी, एग्रीकल्चर के अंदर आएगी, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा. एमएससीबी में आएगा, कोई भी आएगा, नेचर वाला आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा आपका. तो यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट एंड टेक अप्रूवल. मेरा रिसोर्ट है, आप रिसोर्ट में फंक्शन कर रहे हो, वहां पे आप एज अ वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर आए हो, आप कर रहे हो, तो रिसोर्ट का आपको परमिशन लेना पड़ेगा. रिसोर्ट वाले को बोलना पड़ेगा आपको अगर पुलिस का परमिशन चाहिए तो आप ले लो. आपकी जिम्मेदारी नहीं है वहां पे, बट आपको रिसोर्ट वाले को बोलना पड़ेगा. रिसोर्ट वाला आपको परमिशन दिया, आप रिसोर्ट के अंदर फॉलो करो, बिकॉज रिसोर्ट इज मैनेज्ड बाय ओनर. ओनर को ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. अभी भी वो रिसोर्ट में शादी हो रही है, वहां पे फ्लाई कर रहा है, वहां पे कोई शादी में कोई बंदा ऑब्जेक्शन उठा रहा है, आप ड्रोन कैसे फ्लाई करो? तब आप बोलोगे मैंने रिसोर्ट वाले ने मुझे ऑथराइज किया है, रिसोर्ट वाले से परमिशन ली है. आपको अगर कुछ लिए है तो आप रिसोर्ट वाले से बात करो. मैंने एज अ रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं सर्टिफाइड पायलट है, मेरा ड्रोन सर्टिफाइड है, आई हैव एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड. आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो आप रिसोर्ट वाले से बात कीजिए. यू स्टॉप द एक्टिविटी फॉर अ पॉइंट इन टाइम फॉर दैट पॉइंट. ओके, then let him talk, let the resort owner and they sort it out. You can fly this. अगर वो एग्री करते हैं तो अप्लाई करो, नहीं तो फिर आप रिसोर्ट ओनर को बोलो तो अगर आपका बंदा ऑब्जेक्शन ले रहा है तो आप सॉर्ट आउट करो. अगर मैं कोई विलेज में फ्लाई कर रहा हूँ, ओके, विलेज बिलोंग्स टू हू गवर्न्स द विलेज? पंचायत, ग्राम पंचायत. and the police station in that jurisdiction of that village comes, right? तो आपका वहां का लोकल पुलिस स्टेशन और पंचायत से आपको परमिशन लेना पड़ेगा. अगर मैं वो विलेज में कोई फार्म में उड़ा रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फार्म जिसका बिलोंग करता है उससे एक नो ऑब्जेक्शन लेटर पे साइन करके लेना पड़ेगा. आई एम ऑथराइजिंग पार्थ फारवाल फॉर फ्लाइंग अ एग्रीकल्चर ड्रोन फॉर सर्वेलेंस और फॉर स्प्रेइंग सीडिंग एक्टिविटीज सो एंड सो. दैट्स इट. क्लियर? अभी आपके डाउट्स क्लियर हो गए कैसे परमिशन लेने. भले ग्रीन जोन है, आप ऐसे ही फ्लाई नहीं कर सकते हो. कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस पर बैठा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है. तो
आपको कैसे प्लेस सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई होटल में जा रहा हूँ, कोई होटल में फ्लाई कर रहा हूँ, वहां पे मुझे परमिशन है। जैसे अभी मैंने दौलताबाद फोर्ट पे सर्वेलेंस एक्टिविटी किया था या सर्वे किया था पूरा दौलताबाद फोर्ट पे, मैं और मेरे फ्रेंड ने। तो हमने ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन से हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया था। तो जब हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला तब हमने प्लान किया फ्लाइंग करने का। 3 दिन का हमारा फ्लाइंग एक्टिविटी था। तब हम वहां पे गए, हमने ड्रोन फ्लाई किया, सारा फुटेज कलेक्ट किया और जो कंपनी को चाहिए था उनको दे दिया। हाँ बोलिए कुछ। आता सर मी उरणचा आहे, इथला लोकलच आहे मी. तर उरणला आपली जागा आहे, लाईक उरण आपलं लँड आहे. तर आता मी माझ्या लँडवरती ड्रोन तुम्हारे खुद हे के करू लैंड पे, शकतो. तुम्हारे खुद के लैंड पे तुमको फ्लाई करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अच्छा. बट तुम तुम्हारे लैंड में ही फ्लाई कर रहे हो, नहीं तो तुम हा तुम्हारे नाही म्हणजे आपलं तुम्हारा उड़ान में लैंड है, तुम फ्लाई करोगे, टेक ऑफ करोगे और उधर नया एयरपोर्ट बना है वहां पे तक लेके जाओगे। नाही नाही मतलब ये ना मैं टास्क है. एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हारा लैंड जो है, सपोज 1 एकड़ का लैंड है, वो 1 एकड़ के बाउंड्री में आप फ्लाई कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, प्रोवाइडेड इट इज इन अ ग्रीन जोन। फार्मिंगच आपलं. हो प्रोवाइडेड यू आर फ्लाइंग विद इन 400 फीट। हो 400 फीट के ऊपर जाओगे तो आपको ऑफेंस हो जाएगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा। किसी ने पता चल लिया, किसी ने फोटो ले लिया, किसी ने देख लिया, आपका ड्रोन कॉन्फिगरेट, आपको जेल में डाला जाएगा पहले। बरोबर. क्लियर? आई थिंक डाउट्स Yes, आर sir. क्लियर नाउ ऑन ऑल these examples. So coming Exactly. back, हाई सिक्योरिटी एरिया के बाउंड्री से 5 किलोमीटर इज योर रेड जोन. ओके, from 5 kilometers to 3 kilometers, additional 3 kilometers, that is 8 kilometers is your inner yellow zone. From 8 kilometers, another 4 kilometers, that is from 8 kilometers to 12 kilometers is your outer yellow zone. Outer yellow zone is divided into 2 segments. From 0 to 200 is called green zone. From 200 feet to above 400 feet, up to 400 feet is outer yellow zone. Above 400 feet, it is a complete yellow zone. Okay, so यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये inner yellow zone, outer yellow zone and yellow zone above 400 feet, ये कहीं पे भी आपको ड्रोन फ्लाई करना है तो आपको ATC का परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर? ग्रीन जोन में मैंने आपको बताया कहाँ पे कैसे कैसे क्या अप्रूवल्स लेना है, पुलिस से लेना है, ग्राम पंचायत से लेना है, होटल ओनर से लेना है, जिसका भी प्रेमाइसेस है। अगर मैं ड्रोन लेके आता हूँ कुंदन की जगह पे तो मुझे कुंदन से परमिशन लेना पड़ेगा। दो इट बिलोंग्स टू कुंदन, कुंदन इज माय स्टूडेंट, स्टिल आई एम शोइंग अ ड्रोन, आई एम फ्लाइंग ऑन हिज प्रॉपर्टी एज अ रिस्पांसिबल पायलट, एज अ रिस्पांसिबल पायलट इन कमांड। I am flying drone on Kundan's property. I have to take a permission from Kundan. एक NOC डॉक्यूमेंट साइन करके लेना पड़ेगा। कोई मैं नहीं तो मेरा स्टूडेंट है मैं बोल के फ्लाई नहीं कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि कल कुंदन का डैडी आके ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। बरोबर. राइट? या तो रिस्पॉन्सिबल, यू वांट टू बी ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल. यही तो सेफ्टी सेफ्टी सिक्योरिटी रूल्स रेगुलेशन यही एज अ पायलट आपको फॉलो करना। आपको यही सोचना है। अगर ये सब चीजें सोच लिए ना तो आपका ड्रोन फ्लाइंग इजी हो जाएगा। ये क्लैरिटी नहीं रहती है लोगों को। अब जो बिफोर अभी ये क्लास अटेंड करने आपके पास भी ये क्लैरिटी नहीं था, अभी कैसे आपके पास क्लैरिटी आती जाएगी। अभी नेक्स्ट 5 डेज में आपका पूरा डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, जैसे जैसे आप सिनेरियोस आप एक्सप्लेन करते जाओगे, देखते जाओगे, जब आप फील्ड पे जाएंगे उधर का सिनेरियो देखिए, सब कुछ आपको समझना है। ठीक है, तो जोन्स क्लियर हो गया आपका? यस सर. एनी क्वेश्चंस? सर ये सब आएगा ना सॉफ्ट कॉपी में शाम को? ये सब इमेजेस आ जाएंगे, ये सारा जो लिखा कीड़ा है सब कुछ ड्रोन रूल्स में है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। नो जस्ट मेकिंग श्योर लाइक ये जो अभी ये स्लाइड देख रहे हो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये सब ड्रोन रूल्स 2021 में मैं आपको ये दिखाऊंगा भी। ये जो स्लाइड्स में वर्ड दिखाएगा वो आपको ड्रोन रूल्स के डॉक्यूमेंट में भी दिखाऊंगा। ओके, इवनिंग में मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाने वाला हूँ, रन थ्रू करने वाला हूँ 15 मिनट के लिए। उसमें ये सारे वर्ड्स जो आपको सामने दिख रहे हैं वो सारे वो डॉक्यूमेंट में कहाँ पे वो दिखाऊंगा। क्योंकि अगर मैं वो डॉक्यूमेंट रीड करूंगा तो आपको समझेगा नहीं। यहाँ पे कैसे मैं आपको एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो मैंडेटरी फील्ड साइड वेरिफिकेशन। अभी आपका क्या है, देखो आप ग्रीन जोन में अप्लाई कर रहे हो। अभी मेरा ऑथराइज बेस है, राइट, मुझे ऑथराइजेशन है DGCA के साथ, मैं वहां पे फ्लाई कर सकता हूँ। मेरा ड्रोन ऑथराइज, मेरा साइट ऑथराइज है फ्लाइंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। बट उसका ये मतलब नहीं, इवन ग्रीन जोन में भी जैसे आप
कुंदन आप बोल रहे हो मेरा लैंड है ग्रीन जोन में है, बाहर है, आउटसाइड एरिया है, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी आपका एरिया भी रेड जोन में जा सकता है। या करके वो ओएनजीसी से बहुत नजदीक है हम लोग से। करेक्ट, नहीं कभी कभी मैं बता, कमिंग टू पॉइंट, कभी कभी वो प्लेटफॉर्म पे वो जोन को अभी ग्रीन जोन दिखा रहा है, उसको रेड जोन हो सकता है। तो आपका जिम्मेदारी है कि आपको देखना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक नेचर ऑफ जोनिंग। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पालघर इज अ ग्रीन जोन, पूरन इज अ ग्रीन जोन, पनवेल इज अ ग्रीन जोन, लोनावला इज अ ग्रीन जोन, बट वहां पे सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, व्हिच कैन बिकम अ येलो जोन और अ रेड जोन आल्सो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पूना, सोलापुर और अहमदनगर, पूरा चार तीनों डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मतलब बहुत बड़ा एरिया, राइट? डिस्ट्रिक्ट है तो ग्रीन जोन होगा, राइट? ग्रीन जोन होना चाहिए, लेकिन अगर आप अभी जाके प्लेटफॉर्म पे चेक करोगे तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट इज रेड जोन। फॉर एग्जांपल गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, these are all districts, these are all green, supposed to be in green zone, लेकिन वॉर के टाइम में मई में एक महीने के लिए ये सारे डिस्ट्रिक्ट वेर इन रेड जोन। ओके पर अभी अभी देखोगे शायद जम्मू कश्मीर भी शायद वापस रेड जोन में डाला गया है। ओके, तो डायनेमिक नेचर है, यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी जोन कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका जो रेड जोन जो है, रेड जोन का अगर आपको फ्लाई करना है तो आपको परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, मिनिस्टर कडून घ्यायला लागणार बरोबर। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन से, डीजीसीए से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप रेड जोन में अगर आपको ड्रोन फ्लाई करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है। येलो जोन में फ्लाई करना है तो एटीसी से लेना पड़ता है। इसे ये समझो, रेड जोन कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे आपका लोकल पुलिस, रेड जोन में लोकल पुलिस, लोकल कोई भी बॉडी, कोई भी नहीं आता है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इवन स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट ऑथराइज फ्लाइंग ड्रोन इन रेड जोन। जैसे कि मुंबई इज इन रेड जोन, मुंबई में फ्लाई करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकता है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑथराइजेशन टू गिव यू परमिशन बिकॉज इट इज कंप्लीटली रेड जोन। In yellow zone, येलो जोन इट इज एटीसी, ATC. एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो दीज आर मैंडेट। तो आपका ग्रीन जोन भी कभी भी रेड जोन हो सकता है। तो आपका जिम्मेदारी क्या है? आपको देखना है प्लेटफॉर्म पे, चेक द कंडीशन, फ्लाई करना है, वो कौन से जोन में है। वो कभी कभी रेड जोन में भी होता है। तो मैं जब भी फ्लाइंग साइड पे जाता हूँ, फ्लाइंग करने जाता हूँ, 4 डे पे मॉर्निंग में 9 बजे, बिफोर गेटिंग आउट ऑफ माई रूम, आई विल मेक श्योर, आई विल चेक ऑन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म कि मेरा साइड पे कोई रेस्ट्रिक्शंस है या नहीं है। ये पायलट की जिम्मेदारी है। अभी आप पायलट नहीं हो, पर लेकिन कल आप जब पायलट बन जाओगे, ऑथराइज लाइसेंस पायलट बन जाओगे, आप जहाँ पे भी फ्लाई कर रहे हो, आपको मालूम है मैं ड्रोन उड़न में फ्लाई कर रहा हूँ, मैं जामनगर में फ्लाई कर रहा हूँ, मैं राजकोट में फ्लाई कर रहा हूँ, एनीवेयर आई एम फ्लाइंग, मेरा जिम्मेदारी है प्लेटफॉर्म पे जाके देखना मैं जो मेरा एरिया ऑफ फ्लाइंग है वो कौन सा जोन में है। अगर रेड जोन में है तो मैं फ्लाई नहीं कर सकता हूँ, अगर ग्रीन जोन में है तो फ्लाई कर सकता हूँ विद एप्रोप्रिएट परमिशंस ऑफ द लोकल। ओके, क्लियर? ये स्टेटमेंट क्लियर हो गए। तो नो पर्सन कैन ऑपरेट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इन रेड जोन और येलो जोन विदाउट प्रायर परमिशन, नो प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड। ओके, ये बहुत ओपन स्टेटमेंट है। ये सेकंड स्टेटमेंट को ग्रांटेड मत लेना। मैंने बताया आपको क्राइटेरिया, ग्रीन जोन में भी फ्लाई करना है तो क्या करना है। वो वैसे बोलता है नो परमिशन रिक्वायर्ड, बट अगर मैं डैम के यहाँ पे फ्लाई कर रहा हूँ, फॉरेस्ट में फ्लाई कर रहा हूँ, या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी पे फ्लाई कर रहा हूँ, या फिर तारापुर रिसर्च की जगह पे कर रहा हूँ, न्यूक्लियर टेस्ट फैसिलिटी है वहां पे कर रहा हूँ, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे वहाँ पे कर रहा हूँ, या जामनगर रिफाइनरी पे फ्लाई कर रहा हूँ, तो दे आर इन पार्ट ऑफ ग्रीन जोन। दे आर नॉट ग्रीन जोन, दे आर रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। दे आर ग्रीन जोन बट दे आर इन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, वहां पे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, अभी जैसे रिफाइनरीज जो होती है ना वो मिलिट्री के अंडर होती है, उसका जो सिक्योरिटी जो रहता है रिफाइनरीज का, तो अभी जैसे जामनगर रिफाइनरी बिलोंग्स टू मिस्टर मुकेश अंबानी,
बट Yeah. रिफाइनरी का सिक्योरिटी किसके अंदर है? मिलिट्री के अंदर। सेपरेट Military. मिलिट्री बॉडी है वो पूरा उसका सिक्योरिटी, क्योंकि इट इज अ वेरी क्रिटिकल साइट। जैसे अभी तारापुर साइट जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी है, दैट इज स्टिल बिलोंग्स टू टीएफआर। ओके, टाइम्स का फंडामेंटल रिसर्च के अंदर आता है वो, बट स्टिल दैट इज, उसका जो सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास है, बिकॉज दोस आर वेरी हाईली क्रिटिकल सेंसिटिव एरियाज। हाँ बोलिए बात। Yes. So, like you mentioned, the Jamnagar authority is owned by Ambani. So, I have to tell you that my office, we work with Reliance, the hotel which they have built in Jamnagar, which is built by my company, and like I have been a part of that project as well. So tomorrow, if I so we like every 2 months or 3 months we visit Jamnagar to the hotel for our for the work or social media content for shooting and all. So if tomorrow if I buy a drone, and then do I have to take, obviously I have to take a permission from the Reliance, करेक्ट। right? Okay. फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अभी जैसे मैं जब आई वॉज वर्किंग इन डेल, आप जो भी अभी रिलायंस का 4G 5G यूज कर रहे हो ना, वो पूरा सेटअप was done by me. Okay. It's by my team. I was Okay. heading that team. I have done all the pan India deployments for your 4G 5G towers से लेके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप किया हुआ है, आज आपके पास जो 4G का नेटवर्क जो चल रहा है रिलायंस का, was built by me. Right up to from जम्मू से कन्याकुमारी से लेके जामनगर से लेके गुवाहाटी up to पोर्ट ब्लेयर, जितने भी 50-60 लोकेशंस पे हमने सेटअप किया है, was done by me. अभी मेरा जामनगर में भी सेटअप होता था, मैं इंजीनियर यूज्ड टू गो देयर विजिट, ड्यूरिंग कोविड टाइम भी विजिट करता था, तो होटल में रुकना है तो 3 दिन 4 दिन वो होटल में क्वारंटाइन में रहना पड़ता था, फिर वहाँ पे लोकली परमिशन सब लेना पड़ता है और फिर तभी एंट्री होती थी। तो ये सारा जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। तो जिस जामनगर, जैसे अभी मुंबई में भी माहुल में भी रिफाइनरी है, चेंबूर में, ओके, हाँ, तो वो भी अभी इंडियन गवर्नमेंट का मिलिट्री के अंदर है। वहाँ पे भी आपको परमिशन जो भी करना है, अगर वहाँ पे अगर मुझको ड्रोन फ्लाई करना है फॉर सम सर्वेलेंस इंस्पेक्शन एक्टिविटी, तो वहाँ पे रिफाइनरी का बॉडी से भी मुझे अप्रूवल लेना पड़ता है, और वो सिक्योरिटी वहाँ पे जो प्रोवाइड करके उनको भी इंटीमेट करना पड़ता है, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट बॉडीज। देखो रिफाइनरी परमिशन देगी बिकॉज वो उनकी एक्टिविटी है, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, बट वो बोलेंगे आप उनको भी इंटीमेट करो और उनसे भी अप्रूवल लो, देन ओनली यू कंडक्ट योर एक्टिविटी। तो सिमिलरली मुझे वहां पे उनको भी एप्लीकेशन देना पड़ता है। So you have to physically go there or you have to do it online? ऑनलाइन में फिजिकली, ये सब Physically, you have to take a drone also. ड्रोन लेके जाने की जरूरत नहीं, ड्रोन के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने Documents and की। license आप and पहले everything. उनसे कांटेक्ट करो, जो कि क्या रिक्वायरमेंट है। और Understood. आप मतलब कोई बॉडी क्या बोलती है, आप एप्लीकेशन दो या फिर आप हार्ड कॉपी एप्लीकेशन दो या सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन। तो हार्ड कॉपी में तो आपको सारे पेपर्स बनाने पड़ेंगे, सॉफ्ट कॉपी में भी आप पेपर बनाओगे और हमें ईमेल कर दो, ईमेल पे आपको रिप्लाई आएगा कि वी टेकन नोट ऑफ योर एक्टिविटी एंड यू आर गिवन परमिशन। आपने अगर आपने डिफाइन किया रहेगा कि भाई मुझे रिलायंस रिफाइनरी में फ्रॉम 21 अगस्त से 25 अगस्त 5 दिन के लिए मुझे अप्रूवल चाहिए, वो उतना टाइम के लिए आपको अप्रूवल दे देगा, अप्रूवल इज ग्रांटेड टू यू, आपको बोला जाए। तो मे बी उसका एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल आ सकता है, या फिर हार्ड कॉपी सबमिट किया तो आपको डुप्लीकेट कॉपी सबमिट करने के लिए बोलेगा, उसके ऊपर वो लोग ओके करके या रिसीव करके आपको दे देंगे। वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कल कोई क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि रिफाइनरी में अप्रूवल देने वाले लोग अलग होते हैं और काम करने वाले लोग अलग रहते हैं ग्राउंड पे। तभी वो सवाल पूछ सकते हैं, आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, ऐसे कैसे अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी फलाना ठिकाना मैनेजर आके आपको रोक सकता है आपका काम, तो यू आर लूजिंग योर टाइम। वो नहीं हो चाहिए, तो आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द एक्टिविटी। इवन आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो आपका लाइसेंस का हार्ड कॉपी, आपका ड्रोन का रजिस्ट्रेशन का हार्ड कॉपी, आपका ड्रोन का परचेस डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी फॉर्मेट में आपके पास हमेशा होने चाहिए। जैसे आप कार जब ड्राइव करते हो तो आपका लाइसेंस कैरी करते हो, पीयूसी कैरी करते हो, आप इंश्योरेंस कैरी करते हो, आपका आरटीओ का डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हो, वैसे ड्रोन के लिए भी एप्लीकेबल है। And one more question. When you fly a drone, so when you on a drone, so do the drone shows the zone also automatically on the screen that you are not allowed? नहीं,
No. So is there any app where we can check is this अभी a मैं वही बोल रहा हूँ, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इज एन ऐप जो digital हमारा scan? 12th मॉड्यूल है। Okay. लेकिन मैं आज भी थोड़ा पार्ट दिखाऊंगा, ये जोन का पार्ट आपको दिखाऊंगा। ओके, टोटल डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म आई विल एक्सप्लेन यू इन द 12th मॉड्यूल, बट जोन पार्ट मैं आज दिखाऊंगा आपको। ये Okay. मॉड्यूल के बाद जैसे हमारा लंच ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आई विल शो यू। ओके, ये जोन के स्पेशली जोन का एक्टिविटी, तो उस जोन एक्टिविटी में उस मॉड्यूल में आप देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा। ओके, Okay. बट अभी तक वही मैं बोल रहा हूँ, यूटीएम करके एक फीचर है, अनमैन ट्रैफिक मैनेजमेंट, Okay. सब कुछ मॉनिटर हो सकता है, जब कुछ पता चल सकता है। अभी हमारा ड्रोन कुछ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट नहीं करता, तो कैसे पता चलेगा ड्रोन कहाँ फ्लाई हो रहा है, राइट? तो वो यूटीएम मॉड्यूल नहीं है, एडीएसपी फीचर एनेबल्ड नहीं है, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट देयर, सो ये चीजें अभी नहीं है। इसीलिए अभी अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने बीवीएलएस रूल्स भी रिलीज इसीलिए नहीं किए, क्योंकि ये सब इकोसिस्टम चाहिए बीवीएलएस में फ्लाई करने के लिए। बिकॉज बीवीएलएस में क्या होगा, आपका ड्रोन आपके आंखों के सामने नहीं है, 5 किलोमीटर दूर फ्लाई हो रहा है ड्रोन, आपको पता ही नहीं ड्रोन कहाँ पे फ्लाई हो रहा है, तो आप मॉनिटर कैसे करोगे? ये सब सिस्टम चाहिए ना, यूटीएम सिस्टम Understood. चाहिए, उसमें कैसे फ्लाई होगा, कैसे ऑब्स्टिकल्स होगा, आपके ऑब्स्टिकल सेंसर्स क्या होंगे। अभी अगर आप देखोगे ड्रोन जो हम लोग टाइप सर्टिफाइड किए उसमें 3 ही सेंसर्स है, ऑप्टिकल सेंसर्स, जबकि आप डीजीआई के ड्रोन्स में देखो 60 सेंसर्स लगे हुए। Hmm. ओके, तो इसीलिए डीजीआई ड्रोन आप 2 4 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर फ्लाई कर सकते हो, Hmm. तो इट इज नॉट ऑथराइज्ड, बट डीजीआई ड्रोन्स हैज कैपेबिलिटी ऑफ दैट। Right. Okay, because they are built for that kind of environment, but they are not authorized for that. Okay, तो टेम्पररी रेड जोन मैं बोला ना, जैसे कि अभी वॉर था तो तभी टेम्पररी जोन है, मुंबई बीच में टेम्पररी जोन, वॉर के टाइम पे मुंबई का भी एरिया काफी बड़ा कर दिया था रेड जोन में। फिर अभी जैसे पूना है, अहमदनगर है, सोलापुर है, ये टेम्पररी जोन है। फिर देर आर सब, बीच में गोवा भी टेम्पररी जोन में था, तो देर आर सम टेम्पररी जोन। तो कौन कर सकता है, कौन 96 आवर्स। अभी कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस हो सकते हैं, कभी कभी कोई बोलते हैं ना, कुछ अनरेस्ट सिचुएशंस हो जाते हैं, कुछ तो मतलब दंगे हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो टेम्पररी पीरियड के लिए ड्रोन फ्लाइंग बंद किया जाता है। वॉर जैसा सिचुएशन होता है, इलेक्शन हो जाता है, तो वो टाइम पे टेम्पररी वो लोकेशन, जैसे पालघर में इलेक्शन थे तो उसको टेम्पररी 3 दिन के लिए ड्रोन फ्लाइंग बैन कर दिया था। या फिर 31 मतलब 21 से लेके 31 जनवरी तक पालघर एरिया पूरा रेड जोन में होता है, और ऑलमोस्ट 40 डेज वो जोन, बिकॉज ऑफ द कोस्टल एरिया, हाई सिक्योरिटी एरिया की वजह से, तो पालघर एरिया को टेम्पररी रेड जोन में क्रिएट किया जाता है। राइट फ्रॉम विरार वसई टिल पालघर, ये पूरा जोन रेड जोन में कन्वर्ट किया जाता है, फ्रॉम 21 दिसंबर टिल 31 जनवरी। ओके, पूरा 40 दिन के लिए वो रेड जोन में कन्वर्ट किया जाता है। तो कौन कर सकता है, बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और a person equivalent to superintendent of police, they can create a temporary red zone. Okay, अभी देखो वो ये temporary red zone मिला, temporary red zone बना है, तो they will intimate the people who are in that zone that information that this particular zone is created as a red zone. But इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर information आपके पास नहीं आई, ओके, वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई, इसका मतलब नहीं है कि आपको पता नहीं आ रहा है, मेरे को तो लगा रेड जोन में है, मैं तो पालघर में हूँ, मैं उड़न में हूँ, मेरा तो ग्रीन जोन में है, अभी कैसे मुझे नहीं मालूम रहे, यू कैन नॉट से दैट। तो लास्ट लाइन देखो, इट शैल नॉट, बट इन केस सच नो इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड इट शैल नॉट इंस्टॉल द रिमोट पायलट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई द जोनल रेस्ट्रिक्शन ऑन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म before commencing an unmanned aircraft system operation। यानी आप ड्रोन पायलट हो, आप सर्टिफाइड पायलट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर द फ्लाइट टू चेक द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म कि जहां पे मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ वो जोनल रेस्ट्रिक्शन में है या नहीं। क्लियर? अगर रेड जोन में है तो आपको फ्लाई नहीं करना है, येलो जोन में है तो फ्लाई नहीं करना है, ग्रीन जोन है तो आप फ्लाई कर सकते हो प्रोवाइडेड यू हैव अप्रोप्रिएट अप्रूवल। जैसे मेरा रिसोर्ट है पालघर में, ओके, वहां पे मैं फ्लाइंग करता हूँ या वहां पे मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ, मैं कंपटीशन करता हूँ, ड्रोन फ्लाइंग की कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो इट इज अ ग्रीन जोन। मैं जब भी कंपटीशन एक्टिविटी करता हूँ मैं वहां पे लोकल पुलिस अथॉरिटी का इंटीमेशन देता हूँ, अप्रूवल लेता हूँ कि भाई मैं सो एंड सो एक्टिविटी कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे मुंबई से लोग आने वाले ड्रोन देखने, और मेरे एरिया में विच इज अंडर अ ग्रीन जोन, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सो एंड सो पर्सन,
उनका अप्रूवल है, उनका लोकल पुलिस स्टेशन में मैं एप्लीकेशन देके, वो मेरे को ऐसा लिखित अप्रूवल नहीं देते हाँ भाई करो करके, वो बोलते ठीक है आपने मेरे को इंटीमेट किया, विद इन द रूल्स रेगुलेशंस एंड विद इन द बाउंड्री यू डू, बाउंड्री के बाहर कुछ नहीं करना है, बाउंड्री के ऊपर कुछ नहीं करना, दैट इज इट। वो एक्नॉलेज करके रिसीव करके मेरे को देता है, एक्नॉलेज मतलब ओके करके नहीं देता, रिसीव्ड, आपने एप्लीकेशन दिया कर। कल अगर कोई आता है, क्योंकि वहां पे कैसा ना लोकल पुलिस अलग है, पोस्टल पुलिस अलग है, फॉरेस्ट पुलिस अलग है, अलग अलग लोग आते हैं, फलाना ठिकाना कोई भी आ जाता है, बोलते हैं मैं ये कोई आता है, वो उधर आदिवासी के लोग आ गए थे, अरे ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, उनको लगा कि हम ड्रोन सर्वेलेंस करके उनकी जमीन हथियाने आए हैं, राइट। तो ऐसा भी ऑब्जेक्शन आ गया उनके ड्रोन के, मतलब एग्री क्या बोलते हैं, अग्री संस्था के लोग आ गए, आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये हमारा जमीन है, हमारा लैंड है। मैं बोला तुम्हारा जमीन तुम्हारा लैंड सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हारे लैंड पे फ्लाई नहीं करूँ, मैं मेरे जमीन मेरा एग्रीकल्चर लैंड पे फ्लाई करूँ, मैं मेरा रिपोर्ट में फ्लाई करूँ। बट वो ऊपर से दिखता है तो उनको लगता है कि कहाँ पूरा ऊपर से सब जगह फ्लाई कर रहे हो, तो ऐसा लगता है, पता नहीं चलता। तो it is your responsibility as a pilot to make sure you have all the documentation, all the approvals, and all the features you have validated, and then only you do the flights. ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बोला ऑपरेशंस ऑफ यूएस, अगर डेंजरस गुड्स है तो आप डेंजरस गुड्स, जैसे आपने सुना रहेगा काफी बार पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं एम्युनिशन के साथ, ड्रग्स के साथ, वो सब चीजें नहीं करनी। ओके, सो दीज आर एप्लीकेबल। तो कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स, राइट ऑफ वे, फॉर एग्जाम्पल आप येलो जोन में फ्लाई कर रहे हो और वहां पे आपका एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है और वहां पे आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो राइट ऑफ वे इज व्हाट सेइंग, नो पर्सन ऑपरेटिंग एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट शैल वायलेट द राइट ऑफ वे ऑफ मैन्ड एयरक्राफ्ट। यानी एरोप्लेन को पहली प्रायोरिटी, यानी कमर्शियल एरोप्लेन, सिविल एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सॉरी नॉट जेट एयरवेज, जेट एरोप्लेन जो मिलिट्री वाले फ्लाई करते हैं जिसमें पायलट है, उनका मैन्ड एयरक्राफ्ट, मैन्ड एयरक्राफ्ट को प्रायोरिटी पहले है। तो आपको आपका ड्रोन डाउन करना है, लैंड करना है या नीचे लेके आना है, व्हाटएवर इट इज। फर्स्ट वे इज राइट ऑफ वे। ओके, ये राइट ऑफ वे ना बहुत बड़ा एक वर्ड है। ओके, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली जब हम लोग फील्ड पे जाएंगे तब मैं और इसके बारे में बात करूंगा। जस्ट मुझे याद दिलाना राइट ऑफ वे के बारे में, कुछ सिनेरियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि राइट ऑफ वे क्या होता है। ओके, तो राइट ऑफ वे एज ऑफ नाउ यू जस्ट इमेजिन ड्रोन है और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है अपना और मैन्ड एयरक्राफ्ट है, ये दोनों में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? मैन्ड एयरक्राफ्ट। ओके, सिमिलरली अगर आप फ्लाई कर रहे हो और आपका ड्रोन को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो विद इन 48 आवर्स आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे उसको बताना पड़ेगा, तभी आपको आप मतलब बोलते हैं ना, जैसे हम लोग अगर एक्सीडेंट करते कार से हमने किसी को ठोक दिया तो हम क्या करते जाते, पहले पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करते, राइट, इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई मेरा ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा ऐसा चीज हुआ, व्हाटएवर इट इज, तभी मेरे को इंश्योरेंस वाला भी मुझे क्लेम करने देगा, राइट। ये सब चीजें होगी तो ही मेरे को इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस मेरे को कंपनसेट कर पाएगा। सिमिलरली ड्रोन का भी इंश्योरेंस अगर किया रहेगा तो कंपनसेट करने के लिए आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बिना आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्लियर? So let's see couple of slides about do's and don'ts. Okay, so do's and don'ts में क्या बोल रहा है, जो भी आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, know the characteristics of the aircraft and how to fly it safely। ये स्लाइड्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। Okay, ensure that aircraft is safe flight, यानी कि आप जो भी फ्लाई कर रहे हो, ये चीजें, ये जो do's जो लिखा हुआ है या don'ts जो लिखा है, ये हम रिपीट करेंगे प्रैक्टिकल ऑन डे 4। Okay, so know the characteristics, यानी ड्रोन जो भी आप फ्लाई करने वाले हो, जब मैं आपको फ्लाइंग करने वाले सिखाने वाला भी हूँ, I will make sure that you know the components of the drone. I will make sure that drone which we are flying, it is safe for flight. Rule number 2. Rule number 2. Fly only in good visibility and weather condition. अगर बारिश हो रही है, foggy environment है, in that scenario I will not fly the drone. Right? So fly only in good condition. Keep your aircraft within your sight at all times because we are flying in VLOS conditions. Visual line of sight में fly कर रहे हैं। तो हमेशा ड्रोन आपके नजरों के सामने होना चाहिए। तो आपके नजरों के सामने मतलब कितना दूर आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हो, बताओ कितना दूर आप फ्लाई कर सकते हो ड्रोन? कोई लिमिट हो सकती है? कोई लिमिट हो सकती है? 2 kilometers 1। Okay, so we'll come to that point
आइडियली विजुअल लाइन ऑफ साइट इज 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर. 2 to 2.5 किलोमीटर. सब्जेक्टिव है क्योंकि कुंदन की आई साइट, पार्क की आई साइट, मेरी आई साइट डिफर करती है, तो हर किसी की विजिबिलिटी डिफर कर सकती है. सिमिलरली विजिबल कंडीशंस, अभी आज थोड़ा क्लाइमेट अच्छा है तो मेरे को दूर तक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर क्लाउडी है, फॉगी है, तो मेरे मुझे ओके 2 किलोमीटर भी नहीं, कभी कभी तो मेरे को 100 मीटर्स पे भी नहीं दिखाई देता है. तो फ्लाइंग कंडीशन डिफर्स, राइट. अगेन दैट इज सब्जेक्टिव. तो विजिबल साइट डिपेंड्स अपॉन योर आई साइट एंड द आई सेट eyesight and the conditions, flying conditions or weather conditions. Okay. Fifth is ensure operations of transmission device complies with ID. मतलब आप authorized devices use करो. Okay. कोई भी एरा गेरा रिमोट कंट्रोल ये ऐसा नहीं यूज कर सकते हो. You have to IDA requirements वाले components आप यूज करना चाहिए. Keep sufficient distance from people and property and other unmanned and manned aircraft. यानी आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, लोगों के ऊपर नहीं फ्लाई करना है, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं फ्लाई करना है, until unless you have requirement and authorization and approval. जैसे पार्क बोल रहे हैं कि हम होटल का सर्वेलेंस करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, है ना, या फिर आप कोई फॉरेस्ट एरिया में कर रहे हो, इरिगेशन डैम का ले रहे हो, कोई रोड का कर रहे हो, रेलवे ट्रैफिक का कर रहे हो, या ब्रिज का कर रहे हो, कोई आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी का, आर्कियोलॉजिकल बॉडी का कर रहे हो, एनीवेयर यू. आप पहले देखो कि कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे लोग नहीं होने चाहिए, लोग हैं तो आपके पास एप्रोप्रिएट परमिशन, अप्रूवल्स, ऑथराइजेशन होना चाहिए. तो दिस इज रूल्स. लेट्स सी व्हाट आर डोंट्स. डोंट्स में क्या है? डू नॉट फ्लाई ओवर द एयरक्राफ्ट. ओके. क्राउड, कोई क्राउड पे, तो आपने देखा रहेगा रिसेंटली कुंभ मेला हुआ था, तो क्या आपने लोगों, अभी जैसे रिसेंटली आपका ये हुआ था पिलग्रिमेज का, राइट, 2-3 जन का ड्रोन जब्त कर लिया था, राइट, आपने सुना था. दैट इज नॉट ऑथराइज्ड. ओनली अनटिल यू आर ऑथराइज्ड. आप एप्लीकेशन करके ऑथराइजेशन लिया होता तो आप अप्लाई कर सकते हो. अगर अपने पास ऑथराइजेशन नहीं है तो आपका ड्रोन कॉन्फिस्केट किया जाएगा. डू नॉट फ्लाई एन एयरक्राफ्ट वेइंग मोर देन 7 kg. ये 7 kg उनका लिमिट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डूज एंड डोंट्स है. ये यूएस का यूएस वालों ने बनाया है, सम जनरल पर्सन है, इसलिए 7 kg. हमारे यहाँ पे लिमिट है 2 kg, क्योंकि 2 kg के ऊपर आपको लाइसेंस चाहिए, ऑथराइजेशन लगता है. बिलो 2 kg इज नैनो एंड माइक्रो, तो उसमें आपको ऑथराइजेशन नहीं लगेगा. बट सेइंग डू नॉट फ्लाई एयरक्राफ्ट वेइंग मोर देन 7 kg, हमारे लिए क्या होगा? 2 kg इन टोटल. डू नॉट सस्पेंड और कैरी अटैच एनी आइटम टू एयरक्राफ्ट अनलेस इट इज मैन्युफैक्चर्ड टू होल्ड इट. यानी अगर आपका ड्रोन कैमरा होल्ड करने के लिए बनाया गया है कोई करो, नहीं तो क्या होता है, कोई लोग अभी आजकल में देखा है मैंने कि वो फैंटम ड्रोन लेते हैं, नीचे का कैमरा का मॉड्यूल निकाल देते हैं और उसके नीचे एक डब्बा लगा देते हैं. तो एक मैकेनिज्म बनाते हैं और दूल्हा दुल्हन के ऊपर लेके जाते हैं और वो डब्बा खुलता है, उसमें से फ्लावर गिरते हैं, राइट, या फिर कुछ ऐसा परफ्यूम कुछ ना कुछ लोगों ने किया हुआ है, राइट. ऐसे चीजें जो ऑथराइज नहीं है वो चीजें मत करो आप. ओके. अनटिल अनलेस दैट ड्रोन इज बीइंग मेंट फॉर दैट एक्टिविटी. डू नॉट कैरी हैजर्डस सिस्टम एयरक्राफ्ट. Do not drop or discharge any items or substance from the aircraft. यही वो एग्जांपल है, फ्लावर ड्रॉपिंग, परफ्यूम स्प्रेइंग. तो कभी-कभी परफ्यूम स्प्रे करने वाला भी ड्रोन है, जैसे स्प्रे करते हैं तो किसी के आंख में जा सकता है, डेंजरस होता है. तो यू डोंट डू ऑल दोस थिंग्स. डू नॉट फ्लाई. कोई लोग मस्ती वाले रहते हैं, DJI ड्रोन्स फ्लाई करते हैं और कोई व्हीकल के नजदीक, यू कैन डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर, डिस्ट्रैक्ट द इमरजेंसी व्हीकल्स लाइक एम्बुलेंस हो सकता है, या सर्वेलेंस वाले कार्स हो सकते हैं, ऑल दैट. सो डोंट डू ऑल दिस थिंग्स. इसलिए आप वो ड्राइवर की या व्हीकल की या सम डेंजर यू कैन क्रिएट, endanger the lives as well as the vehicle also. Do not fly aircraft over within the restricted, prohibited, danger area including security sensitive. तो ये जनरल स्लाइड है, जनरल डॉक्यूमेंट है, तो बोल रहा है कि आप restricted area, prohibited area, danger area, security sensitive location पे आप रोड फ्लाई मत करो. फ्लाई करना है तो आपको अप्रूवल, ऑथराइजेशन चाहिए. And do not fly within 5 kilometer of any airport or military airbase or higher than 200 feet. क्यों बोल रहा है? क्योंकि येलो जोन ऊपर चालू हो जाता है, 200 फीट के ऊपर येलो जोन चालू हो जाता है, तो आप फ्लाई मत करो. Okay, so these are do's and don'ts.
Okay, I am going to share these slides to you. Don't worry, आप उसको बाद में और डिटेल में देख सकते हैं. Okay. बाद में 2021 में there are certain points जैसे रिमोट पायलट, आपने अभी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो you know these are the guidelines. 18 and above, 10 सर्टिफिकेट पास होना चाहिए, ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए. ऑल दिस गाइडलाइंस इज बीन डिफाइंड इन ड्रोन रूल्स अंडर सेगमेंट फॉर ड्रोन पायलट रिमोट पायलट सर्टिफिकेट. ओके, तो अगेन ड्रोन जब ये आपको करना है D4, तो ये D4 फॉर्म फिल करना पड़ेगा. जब से आपका ड्रोन का सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा BFC को ये एप्लीकेशन करना पड़ेगा. तो behalf of you, we will be doing the application. We are supposed to do it. So this year to be filled by RPTO. ये आपको देना है, ये हम भरेंगे. तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स हमने लिया आपसे, डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपके फोटोग्राफ्स है ना, आपका एडमिशन फॉर्म, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारा डॉक्यूमेंट मैंने आपसे जो कलेक्ट करूंगा. मैं अभी मैंने फिजिकली कलेक्ट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ आपसे सॉफ्ट कॉपी लिया है. फिजिकल कभी लूंगा थर्ड डे पे, जब आप मेरे साथ फ्लाइंग करने आओगे, तब मैं आपका पहला चीज यही करूंगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं पहले कलेक्ट करके आपकी एक फाइल बनाऊंगा. ओके, सो ये जो फाइल मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये मेरे एडमिन को देना पड़ेगा. तो एडमिन मेरा जब बाद में फ्राइडे कब का टेस्ट रिजल्ट सब मैं सबमिट करूंगा, तब ये एप्लीकेशन किया जाएगा. तो 5वें यानी 6ठे 7वें दिन पे ये आपका एप्लीकेशन हम बनाएंगे और सबमिट करेंगे DGC. तो which form will be used? D4 फॉर्म. ओके, तो ये D फॉर्म हम फिल करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच किए जाएंगे और सबमिट किया जाएगा. और ये डॉक्यूमेंट्स सब वेरीफाई होने के बाद 5 से 10 दिन के अंदर आपका लाइसेंस अवेलेबल होगा. क्लियर? तो ऑनलाइन रहेगा कि लाइक अभी ऑनलाइन प्रोसेस, अभी माइग्रेशन हो गया है. 30 जुलाई को माइग्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो अभी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा. ओके, आपको सिर्फ फिजिकल कॉपी, मतलब मुझे आपको मेरा BFC का सर्टिफिकेट और लॉग बुक, ये फिजिकल कॉपी में आपको हैंड ओवर करूंगा. आपका RPC जो है वो आपको ऑनलाइन आपके लॉगिन में आएगा. वो अभी एक एडिशनल एक्टिविटी अभी बढ़ गई है. यू आर दी फर्स्ट बैच गोइंग अंडर दैट एक्टिविटी. ओके, मैं अभी क्या बोल रहा था आपको, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म. एक्चुअली ये सारा जो एक्टिविटी है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे होता था, अभी उसका माइग्रेशन हुआ है नया प्लेटफॉर्म पे, इज कॉल्ड एज EGCA. ये मैं आपको दिखाऊंगा प्लेटफॉर्म, वो भी प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा मैं आपको. तो उसके ऊपर मुझे कुछ एक्टिविटीज आपके लिए करनी है और आपसे भी करवानी है, तो मैं आपको गाइड करूंगा आफ्टरवर्ड्स. ओके, तब आपको करनी है जब आपको वो सब करना है. ठीक है, तो ये D4 एक्टिविटी है, ये जो लाइसेंस का एक्टिविटी है, ये आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यू डोंट रिक्वायर टू वरी अबाउट दिस स्लाइड्स, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ओके, सो वैलिडिटी ऑफ योर लाइसेंस इज फॉर 10 years. 10 years. Yes, it is suspended or cancelled. ओके, 10 साल के बाद आपको रिफ्रेशर कोर्स करना है और इस पे करके आपको लाइसेंस को रिन्यूअल करना है, यानी कि 2035 में आपको करना है 10 साल के बाद. डोंट वरी अबाउट इट, दैट टाइम पे क्या रेगुलेशन रहेगा. Who is exempted from obtaining this license? If you are flying a nano drone and if you are flying micro drone for non-commercial purpose. जैसे पार्थ आपने एग्जांपल दिया Air 3S, yes, द माइक्रो, और आप कमर्शियल एक्टिविटी तो आपको लाइसेंस लगेगा. माइक्रो का लाइसेंस लगता है. अभी तक माइक्रो का लाइसेंस कोई वैलिड देता नहीं है. देयर आर ओनली 3 बॉडीज व्हिच गिव द माइक्रो लाइसेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट नोबडी. ऐसे आपको माइक्रो का लाइसेंस की जरूरत नहीं है. आप स्मॉल के लाइसेंस के ऊपर भी फ्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, अगर आपको रियली सेपरेट चाहिए तो आप ले सकते हो. फ्रॉम कपल ऑफ हमने भी अप्लाई किया हुआ है, अभी तक हमको ऑथराइजेशन नहीं दिया हुआ है DPC. ओके, so DGA 3S comes under micro, right? सॉरी, DGA 3S micro. माइक्रो 700 ग्राम है वो, 724 ग्राम्स. ओके, तो अभी हमने भी अप्लाई DPCA को हमने 2 क्लास के लिए दिया है, एक माइक्रो के लिए दिया है और मीडियम का तो हमारा हो जाएगा 2-3 महीने में, लेकिन माइक्रो हमको दे नहीं रहे अभी तक. ओके, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम प्रमोट करें, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करे स्मॉल और मीडियम, माइक्रो को प्रमोट ना करे, इसीलिए वो लोग लाइसेंस और ऑथराइजेशन नहीं दे रहे किसी.
They don't want the drones below 2 kg to be flown. Okay, they Yeah. want drones to be about 2 kg. Okay, so commercial drones should be about 2 kg only. That is what it is. Clear? फिर जैसे मैंने बोला मैंडेटरी ड्रोन इंश्योरेंस आपको लेना है. एनी ड्रोन यू आर फ्लाइंग मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग. सो ड्रोन इंश्योरेंस, पहले ड्रोन इंश्योरेंस कैसे देंगे किसी को मालूम नहीं था क्योंकि ड्रोन इंश्योरेंस एग्जिस्ट ही नहीं होता था. ओके, तब क्या किया, ड्रोन रूल्स 2021 में बोला गया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ऑफ 1988 का 59 नंबर वाला जो रूल है, मोटर एक्ट व्हीकल एक्ट में 59 रूल है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर ड्रोन रूल, ड्रोन इंश्योरेंस. तो तभी 2021 के बाद, अगस्त 2021 के बाद इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड गिविंग ड्रोन इंश्योरेंस. ओके, दे स्टार्टेड गिविंग ड्रोन इंश्योरेंस. इनिशियली दो ही ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक नेशनल इंश्योरेंस था और एक था एक नेशनल इंश्योरेंस था और एक क्या बॉडी था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल. ओके, दीज वर द टू कंपनीज दैट स्टार्टेड गिविंग. अभी कुछ 5 या 10 मैक्सिमम और भी आ गए हैं इंश्योरेंस कंपनी. Even HDFC is giving insurance and all that. Okay. Nano is exempted from getting the insurance. Nano unmanned aircraft system may operate without third party insurance. Okay. Now insurance कौन regulate करता है? IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority of India. इनका जो से मतलब ICICI है, HDFC है, National Insurance है, Standard Insurance है, Bajaj Allianz है. All the insurance companies are governed by IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority of India. They should be registered under this body. नहीं तो कोई भी नहीं, मैं अपना एक कंपनी बनाता हूँ ABC इंश्योरेंस कंपनी और आपको इंश्योरेंस दे सकता हूँ और बोलूँगा मेरा, since my ABC insurance company is not registered under IRDA and not authorized or you are not supposed to take insurance from that company. Okay, वो legally नहीं है, वो fraud company. So whenever you are taking insurance, you make sure that your insurance company is a registered Legal. insurance company of IRD. Okay, why insurance is important? Because drone is meant for crash. आपका drone crash हो सकता है, it can injure, drone टूट सकता है, it can injure person, it can damage property, all that things. Okay, तो आपको cover करना है. इधर नहीं तो आप जिम्मेदार हो जाओगे. किसी का लाइफ का प्रॉब्लम हो गया, अगर इंजर्ड हो गया, डैमेज हो गया, लाइफ लॉस हो गई या प्रॉपर्टी डैमेज हो गई तो आप लायबल हो जाओगे. हाँ, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो डैमेज जो भी होता है उसको कवर करना है तो आप क्या करते हो, आप जो रिस्क फैक्टर है वो आप क्या कर रहे हो, थर्ड पार्टी पे ट्रांसफर कर रहे हो. तो इंश्योरेंस कंपनी इज बेयरिंग दैट रिस्क बिहाफ ऑफ यू. So how much is the like तो insurance? वो आपके डिफाइन करते हैं. आपका ड्रोन का कॉस्ट आपको कितना, 10 लाख का चाहिए, 5 लाख, like basic thing like बेसिक. अगर आपने जैसा मेरा ड्रोन है, मेरा ड्रोन का मैंने इंश्योरेंस किया है, मेरे को मालूम है मेरा ड्रोन मैं अपने फील्ड में ही फ्लाई करने वाला हूँ. मेरा 8.5 लाख रुपए का ड्रोन है, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है उसके ऊपर. तो आई कैन गॉट अ प्रीमियम ऑफ समवेयर अराउंड 11,000 रुपीज फॉर ईयर. अगर मैं वो कैपेसिटी इंक्रीज करता हूँ, 10 लाख के ऊपर करता हूँ, तो मेरा ड्रोन का प्रीमियम कुड बी अराउंड 30,000. So depending upon what are the terms in my insurance policy, मेरा प्रीमियम डिफाइन करता है. अभी जैसे मुझे ड्रोन फ्लाई करना था दौलताबाद पोर्ट पे, मुझे इंश्योरेंस लेना है, मैं फ्लाई करने वाला हूँ 5 दिन के लिए, मेरा एक्टिविटी 3 दिन, फ्लाइंग मेरा एक्चुअली 3 दिन का ही है, बट ओवरऑल मैंने 5 दिन का, मैंने सोचा कि मैं 5 दिन के लिए इंश्योरेंस ले रहा हूँ. मैंने 5 दिन का इंश्योरेंस लिया जो मेरे को कॉस्ट किया समवेयर अराउंड 1,500 रुपीज. अगर मैं साल भर के लिए लेता तो मुझे शायद 10, 12, 15 हजार रुपए लगता. लेकिन मेरे तो एक्टिविटी 5 दिन के लिए, तो मैंने शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस ले. जैसे कि हम लोग ट्रैवल के टाइम, हम लोग एरोप्लेन में ट्रैवल करते तो हम इंश्योरेंस लेते शॉर्ट टर्म के लिए, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट या तो छोटा इंश्योरेंस वैल्यू कम हो जाता है टाइम फ्रेम. अगर उस दौरान मुझे अगर कुछ होता है तो आई एम कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस. Typically, you can define insurance based on hours, day or year. What you need to cover, whether you are only covering drone, whether you are covering a property, whether you are covering a human life, depending upon that. So 10 लाख से 20 लाख आप इंश्योरेंस ले सकते हो. 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक आप ले सकते हो. मतलब you, that is all up to you. What, how much you want to cover. Okay.
how much time you need to define. 4 hours, 1 day, 1 year, 3 months, 6 months, 1 month, 10 days. ये आपको पॉलिसी में आप डिफाइन कर सकते हो. जब आप इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हो तो आप ये सारे, जैसा भी मेरा ड्रोन है, मैं जब इंश्योरेंस लिया था तो मुझे पहले प्रीमियम आया 6,000 रुपए. तो मैं सोचा, मैंने पूछा, लकीली मैंने पूछा, भाई मेरा ड्रोन का इंश्योरेंस आप नहीं दे रहे हो, उसमें क्या कवर कर रहा है, व्हाट इज द कवरेज. तो उन्होंने बोला कि आप डे टाइम में कवर हो. मैं बोला क्यों, मैं तो नाइट में भी फ्लाई करने वाला हूँ ड्रोन, आफ्टर द सनसेट भी फ्लाई करना. तो फिर बोला आपको 24/7 आपको कवरेज लेना पड़ेगा. तो मेरा इंश्योरेंस 6,000 से 11,000 रुपया हो गया, बिकॉज आई हैव मेड श्योर दैट माय ड्रोन इज कवर्ड 24/7 एंड 365 days ऑफ ईयर. ओके, सो अकॉर्डिंगली मेरा प्रीमियम चेंज हो गया. तो अकॉर्डिंग आस्क, व्हेनेवर यू आस्क इंश्योरेंस कंपनी, सिंपल, अगर आपको ड्रोन समझ में नहीं आ रहा है डॉक्यूमेंट, सिंपल पूछो भाई इसमें क्या कवर नहीं हो रहा है, what is not covered, what is exempted, what is not considered. ये पूछो, उल्टा पूछो आप, तो वो बताएगा ये नहीं कवर है, वो नहीं कवर है, ये नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं होगा. Then accordingly you can discuss and put those clause terms. But then वो जैसे terms clause add on हो जाएंगे, आपका प्रीमियम भी वेरी है. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आपको इसमें पार्टिसिपेट करके रीड करके आपको लेना पड़ेगा अकॉर्डिंगली. और उनके कुछ स्टैंडर्ड प्लान्स भी होते हैं. अगर स्टैंडर्ड प्लान भी लेते हो तो स्टैंडर्ड प्लान में सिर्फ पूछो कि व्हाट इज नॉट कवर्ड, व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड, ये पूछो तो आपको क्लैरिटी मिलेगा भाई मेरा क्या क्या कवर है और क्या नहीं कवर है. ठीक है, या फिर पूछो क्या कवर है और क्या नहीं कवर है, क्या कंसीडर किया है, नहीं क्या नहीं कवर. तो कितना लायबिलिटी कवर्ड है, 5 लाख का है, 7 लाख. जैसे हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो पूछते हैं कि भाई मेडिकली में कितना, मेरा कितने कौन से इलनेस के लिए कवर्ड है, कितना अमाउंट के लिए मैं मेडिकल बिल्स दे सकता हूँ, 5 लाख का दे सकता हूँ, 7 लाख का ले सकता हूँ, 10 लाख का. हार्ट अटैक के लिए, कैंसर के लिए है, आई साइट के लिए है, वट एवर इट इज. क्या नहीं कवर है, वो बोलेगा नहीं ये पर्टिकुलर इलनेस के लिए हम लोग कवर नहीं. अगर ये पर्टिकुलर इलनेस कवर करना है तो हम कवर करते हैं, बट उसके लिए एडिशनल प्रीमियम चार्ज लगेगा. यू नो, सेम ही और ट्रू. क्लियर. फीस का हमने डिस्कशन किया था. तो 1 2 3 मैंने जैसे बोला, टाइप सर्टिफिकेशन है, ट्रांसफर है, इश्यूएंस है, डी रजिस्ट्रेशन है, या फिर आपका पायलट लाइसेंस बनाना है. फीस है 100 रुपीज. मुझे मेरे को मेरा ड्रोन का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो उसका फीस है 1,000 रुपीज. तो मैं जब 1,000 रुपीज इगतपुरी में मैंने एप्लीकेशन किया तो आई हैव पेड 1,000 रुपीज एज अ फी. ओके, लेकिन मेरे को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए मुझे कम से कम 1.5 करोड़ रुपया खर्चा आया, क्योंकि 1 करोड़ रुपया का जमीन, सॉरी 1 करोड़ नहीं, 1 एकड़ का जमीन मुझे मिनिमम चाहिए एज पर डीजीसी रेगुलेशंस. वो 1 एकड़ का जमीन मुझे 90 लाख रुपया खर्चा आया. 2 ड्रोन खरीदे, 20 लाख रुपया खर्चा आया. क्लासरूम सेटअप किया, सिमुलेटर सेटअप किया, एरिया सेटअप किया, ऑल दैट सेटअप, स्टोर सेटअप किया, चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया. ऑल दैट सेटअप करने के लिए मेरे को मोटा मोटा 40 लाख रुपया खर्चा आया. तो 90 प्लस 20 40, तो 1 करोड़ 30 लाख रुपया खर्चा आया. फिर मेरे को इंस्ट्रक्टर्स 6 महीने के लिए, बिकॉज 6 महीना लगा मुझे सेटअप करने के लिए, पूरा ऑथराइजेशन लाने के लिए. तो 6 महीना मुझे इंस्ट्रक्टर हायर करके उनको सैलरी देना पड़ा. तो वो 6 महीने का सैलरी अगर मैं सपोज एज्यूम करता हूँ लाख रुपया खर्चा आ रहा है सैलरी का पर इंस्ट्रक्टर, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इंटू 6 मंथ्स, 12 लाख रुपीज मेरे को सिर्फ सैलरी का खर्चा आया अप्रोक्सीमेट. तो सोचो 130 140 हुआ. और छोटा मोटा खर्चा, स्टेयर्स है, जमीन का लेवलिंग करना पड़ा, ये करना पड़ा, फलाना ठिकाना, यू नो. डीजीसीए 1.5 डीजीसीए जब मेरे साइट पे आता है ऑडिट करने के लिए, तो उनको नागपुर से पिकअप करके ड्रॉप करना है, तो मेरे को इनोवा हायर करना पड़ा, उनका रहने खाने का खर्चा करना पड़ा, खाना पीना का खर्चा करना पड़ा. तो वो खर्चा आया. तो मोटा मोटा 1.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ टू सेटअप दी आरपीटीओ एट इगतपुरी. ओके, भले So that- करने के लिए 1,000 रुपया खर्चा हुआ, लेकिन सेटअप करने के लिए 1.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ. so that is your property, right? In Igatpur? यस, आवर प्रॉपर्टी मतलब ये रिसोर्ट का प्रॉपर्टी है, हमने लीज पे लिया है. बट वो प्रॉपर्टी रिसोर्ट ने खरीदा हुआ है ना. वो प्लॉट जो जिसपे हमने फ्लाइंग का ऑथराइजेशन लिया हुआ है, वो रिसोर्ट ने परचेज किया हुआ लैंड. तो रिसोर्ट को 90 लाख रुपया खर्चा आया, बाई करना पड़ा ना उनको लैंड. कि रिसोर्ट के अंदर फ्लाई नहीं कर सकता हूँ, इट हैज टू बी अ सेपरेट लैंड, समबडी हैज टू ओन. No. तो रिसोर्ट ने वो परचेज किया लैंड, और रिसोर्ट ने
बीएफसी को लीज पे दिया है 10 साल के लिए। Okay. ठीक है? तो हमारा एग्रीमेंट No, है no, sir. रिसोर्ट एंड द बीएफसी। Okay. क्लियर? Yes, sir. So that is to be done in D5 form. Okay? In case of कुछ भी आपने ऑफेंस किया ये किया तो आपका लाइसेंस, ऑथराइजेशन, सर्टिफिकेट, अप्रूवल, कुछ भी जो भी आपको डीजीसीए मिला है वो कैंसिल हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। Yeah. कैंसिल मतलब अगर आपने जस्टिफाई नहीं किया, भाई कुछ भी गलत किया है, जो भी जस्टिफाई नहीं किया तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इनिशियली वो सस्पेंड मोड में रखते हैं, आपको टाइम दिया जाता है 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, व्हाटएवर डिपेंडिंग अपॉन आपका ऑफेंस, आपको जस्टिफाई करने के लिए। अगर 3 महीने के अंदर आपने कर दिया तो आपको दोबारा वापस मिल जाएगा, आपको लाइसेंस, सर्टिफिकेशन, ऑथराइजेशन, अप्रूवल जो भी है आपको वापस मिलेगा। अगर आपने नहीं जस्टिफाई कर पाए तो आपका लाइसेंस, ऑथराइजेशन, सर्टिफिकेट जो भी है आपका कैंसिल हो जाएगा। Okay. ठीक है? तो पेनल्टीज भी लग सकती है। पहले जैसे मैंने बोला 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख पेनल्टी था, अभी मिनिमम उसके नीचे होती है, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं है। 1 लाख रुपए के ऊपर पेनल्टी, तो मिनिमम पेनल्टी एज पर ड्रोन रूल्स 2021 इज 1 लाख रुपीज, उससे ज्यादा नहीं है। अभी देखो गवर्नमेंट डीजीसीए को पावर टू इंस्पेक्ट का पूरा रूल है, वो कभी भी आके आपकी साइट वेरीफाई कर सकते हैं, कभी भी डिमांड कर सकते हैं, भाई कुंदन आपका सर्टिफिकेट दिखाओ, पार्थ आपका लाइसेंस दिखाओ, आपका ड्रोन का डॉक्यूमेंट दिखाओ। दे हैव अ पावर टू इंस्पेक्ट, ड्रोन रूल्स दे आर ऑथराइज्ड टू पावर टू इंस्पेक्ट। अगर आपने नहीं दिखाया, नहीं किया तो दे कैन पेनलाइज एंड टेक एक्शन। Yeah. So with this we complete the drone rules 2021. Okay, so this is just a summary slide which says registration for nano, micro, small and medium and large. Drone registration is mandatory. Certification is not required for nano, लेकिन micro, small, medium, large के लिए है। Pilot license is not required for flying nano drones, but micro, small और medium और large के लिए required है। Green zone में आपको permission की जरूरत नहीं है। Permission in yellow zone for all the drones is required. Permission for red zone is required. R&D एजुकेशन और टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं। ये टॉपिक में आपको जब ड्रोन रूल्स डॉक्यूमेंट रीड करूंगा तब मैं आपको ये लाइन आइटम एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। ओके, R&D एजुकेशन एंड टेस्टिंग। जैसे अभी आपने कुंदन, आपने आपके पास लैंड है, आपने सोचा मैं आप ड्रोन बनाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और मैं अपना R&D करना चाहता हूँ, एजुकेशन पर्पस टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो वो टाइम पे आप फ्लाई कर सकते हो विदाउट टाइप सर्टिफाइड, विदाउट ड्रोन लाइसेंस, विदाउट गेटिंग एनीथिंग, बट विद इन सर्टेन बाउंड्रीज एंड सर्टेन एरिया ओनली। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एज पर टॉपिक। ठीक है, तो विद दैट वी कंप्लीट आवर फर्स्ट मॉड्यूल। देखो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल ऑलमोस्ट लंबा चला, काफी डिटेलिंग हमने डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 2.5 घंटा हमको लगा एक्चुअली, राइट? 10 बजे से हम लोग लगे हैं। एक्चुअली हमारा 10:30 को स्टार्ट हुआ, 10:30 ऑलमोस्ट 3 आवर्स हमको लगे, बट आई थिंक इट वाज वर्थवाइल एंड रिक्वायर्ड बिकॉज एज आई सेड दिस इज अ इम्पोर्टेंट मॉड्यूल